Yes, good morning and welcome to the important day, the semi-finale, the big semi-finale. DPX Dynamites have won the toss and have decided to field first. Welcome all the viewers, those who are connected through YouTube. This is Jinharsh Timken Ador Cup 2023. In fact, the tournament has been a very promising one where we saw some fantastic matches coming to the latter part of the innings. So everybody who's connected, have a very good morning on this wonderful day. Will this Thursday be a thunderous one? That's those two guys, Sumit and Sandeep. Two guys with different personalities, with different approach. That's nicely done. Using soft hands, Sumit gets off the mark. Sumit Shah, he's also one of our committee members. This guy has put in a lot of hard work to get this tournament through, and this is a very important encounter. The wicket on this side has been slightly slow. The other side will get us a few more shots to go in. It depends actually and how you go about your things. So after every 10 overs we are going to change sides, because every over if you change sides that's going to take a lot of time, and this is going to be an important innings. This man is their anchor man. This man is your anchor man, Sandeep Walecha. He can go for the long innings. He was the one who got almost 50 runs in this first match. He starts off with a single. Well, Sumit has not been able to be that consistent. He has shown some glimpses of brilliance in the short cameos. In fact, he got out a couple of times quite early. So today might be his day, because this is the day, this is the match which is going to matter a lot. Sandeep, instead of going for those shots which are too risky and giving it away, needs to stay there, even if there are a few dot balls or that bounce little sharply. That can happen when the ball bounces on the seam. Sandeep's very quick, that tall height helping him out. That was a very risky single taken in. But the understanding between the two is good. Once you have that good understanding, if you run immediately after the ball being hit, you most times, 9 times out of 10 you get through. In fact, 99 times out of 100 you get through. So Jigar, he has bowled well. He has been a fantastic all-rounder for the. This is beautifully done. Just using the wrist and hitting the ball into that cow corner mid-wicket region. So some crucial players for this team. These guys are Sandeep and Jigar. Jigar is a very perfect all-rounder to have. A nice bowler, a Sam Curran type of player who can bat and bowl both. Oh, that's what I was talking about, Sumit. He gives it away. Goes for too many risky shots. That was the leading edge. He went for that cross-batted. He is a very good player to be missing out. That's an excel wicket powered by Viper Drive Industries. You could have been a little more prudent. This was a very important match. Such a good player just gives it away. He is the new man. Kumar also is a good all-rounder. He has promoted himself. He has gone up. Kumar, Bagadia, Sandeep Walecha. His presence is going to be important. That small little partnership they need to stitch. Sandeep is pretty strong. He can hold one end. It depends upon how the others are going to support him. HE Warriors.
Richie Warriors, of course, Neerav's team. That's a wide. That's the first bad ball which he has bowled. Jigar, a very important player for the team, is doing a great job. Just bowling the perfect first over. That's pushed off the back foot for a single. The score at the end of over number 1 is 6 for the loss of. In fact, it is going for extras. Will it go all the way? It will be a couple of runs more. So the score at the end of the over number 1 is 8 for the loss of the opening batter. Yes, those 8 for 1 is what the start is. They lost Sumit, who has just failed to deliver this tournament. He's such a good player, but hasn't been the one who has got this tournament on fire with the bat in his hand. Let's see what happens in the second over. This is going to be a very, very interesting encounter because we have Neerav, who has come in form. There is Sandeep, who is a very consistent player. The things are going to be very interesting. That's a very good shot of the back foot straight to the player though. There is Neil in this team who's going to be a match winner for them. So Neil Shah's presence is going to be important. Neil Shah's batting bowling performance has been supreme. He just won the match with both ball in his hand and bat with some fantastic work. He got a 50 and also got to bowl those important overs, 16th and the 18th one, and got his team to a very, very strong position. And he is the one who's responsible for this team to come in the semi-finale. HE Warriors versus DPX Dynamites. So all those guys who have
Back live we are. After a small break, there was some problem with the footing, so that has been done and dusted because of the dew or some water on the ground. The batsman wasn't able to grind his feet on the right place. So we are back live, and back is Neil. He's probably performed the best in the first match. In fact, the second match he was just absolutely brilliant. He was the difference between the two teams, and he's responsible for taking his team to this position. Man of the match in both the matches. Oh, that would be another reason for him being the. Oh, that's a great catch. Brilliantly done. What a good catch that is from the senior pro. That's an excel wicket powered by Viper Drive Industries. Fabulously done. It's a catch. Simple catch. Actually, it was lobbed up, but it was far away from the wicketkeeper, who takes it brilliantly. Excel wicket powered by Viper Drive Industries. That's a very big wicket because Kumar can play a very good innings. He is being sent back. Now it all comes down to the two big all-rounders of this team. There are two big players in this team. One is Nirav Shah and the other one is Neil Shah. The two Shahs from different teams. It would be battle of Shahs over here. Nirav or Neil. And last time match, this man was the one who made all the difference. Forget about Nirav. He was the one who made a 50. He also got 3-4 wickets, and he was a surprise package. So Dhaval Gogari, he was the one who made all the difference. He came in when things were slightly difficult. Both of them were going great guns, 30-40 runs in just 20-25 balls initially, and after that Nirav got out, but he stayed there to complete his half century and also bowled really well to get a lot of wickets. So that has been the day for him. The HE Warriors have begun slightly in a manner which Nirav Shah wouldn't have dreamt of, but that's been a dream start for DPX Dynamites. The Dynamites have just exploded, and exploded at the right time, at the right day, at the right occasion, at the semi-finale. And this man, he has got a wicket of this first over and has conceded a run. Also, the man at the other end, Jigar, has got a wicket, has conceded 8, but both the two big wickets. And just as I was going gaga about their very good bowling and appreciating their good work, he bowls one down the leg side and gives that first run away of his bowling. That doesn't matter though. He's got 2, and if Nirav does not come good, Sandeep Walecha does not come good, HE Warriors are going to win this easily. And Nirav gets half as good what he is, he's going to make a match of it. And if Sandeep stays there for a long time, it's going to be a very good score, and it will be not easy for them to chase. Oh, this is how he got wickets in the previous match. Oh, shouldn't be dropping a man who got 50 in the last match. He's dropped on the score of 0. Remember, Rohit Sharma was dropped on 4 by Thisara Pereira for the score of 4, and then he added 260 runs to it. He made 264. Nishant Sharma also has a distinction. Every time Nishant Sharma drops a catch, the opposite team's minimum scores are 200 or a 300. That kind of records many people have. There are many records in the cricketing history where we have seen different people with different records. Like Sachin Tendulkar, when he played very well, we defeated Pakistan in a match. He defeated Pakistan 4-1 in Sahara Cup, which was in Toronto, Canada. After that, he named his daughter as Sarah. Also, Brian Lara, his favorite ground was Sydney. So after we got a good score over there, he named his daughter Sydney over there. So Sydney is one of her daughter's names. So you get these names from the grounds which we play. At times at the tournaments which we play, we have seen some special records. But talking about records, he was dropped on 0. Let's see what he does now. He comes on strike again with Jigar. Jigar like floats those balls. So he gives the swing. But that's beautifully played. He doesn't get a run though, but that's nicely coming into the position. Those are good signs for that, because his footwork was positive, clear and distinct. So that's what is more important. Whatever things you do, they have to be done in slightly positive manner, so that there are no two ways about it.
So let's see. Drop, catch. Will they cost 30, 40, 50 runs? But that's beautifully bowled Yorker and well dug out. That's what you say good form is about. Oh, you must. That would have been very, very dangerous. The score moves on to 10 now, double figures. And Sandeep, he has got 2. Dhawal, he has got 2. Sandeep has lost 2 of his mates. So all of those who have got up a little early and kept their work aside and been watching this match, we welcome you all for this very, very important encounter. Most of these guys are from business. Most of them are entrepreneurs, and it's a time where they will be getting ready for their offices, or some of them may be already reached there, and for them this is their passion. These guys, when you ask them a question, why, how do you get time during these weekdays, he said, it's not about money all the time, it's not about work all the time, your passion also has to be taken care of. And one of the players says, shauk bhi to badi cheez hai. Yes, it is. Life is all about having all ingredients together. Yes, it's important to work for your livelihood, but it's also important for work your heart and soul, and heart and soul is there in this game. So we welcome all those players or viewers who have been watching this matches, 30-40 of them. Soon we'll see the numbers increasing, some families coming in to see their partners playing, their fathers playing, some of the brothers playing, and even some bosses of some employees playing. So we'll get a few more people coming in to watch. So we welcome you all. We would like to have a few of your comments also. We can read them and keep it slightly positive, and let us know what you feel about these matches. And if you have not subscribed to the channel, just subscribe to JFSC, because you will have a GGYG group tournament on 14th and 15th. Also we have the grand finale on the 18th. It's a beautiful ground, almost a feeling of a stadium. That's nicely done, but that's again a wicket. 1, 2, 3. Dhawal, who has got a chance on the initial score of 0, misses out. He gets out. It's an excellent wicket powered by Viper Drive Industries. Deep, deep, deep trouble are HE Warriors in. Dhawal gets out. It's going to be, just have a look at it. It was short and wide, the right choice of shot to play. It was floated out. It was nicely done, probably a little close to the body, but it just lobbed up, had no pace into it. That's what allowed the fielder to get under it. It's an excellent wicket powered by Viper Drive Industries. Mr. Pratik Shah and Rahul Shah. So the skipper comes in along with his most trusted player Sandeep Walecha. They have to do the resurrection job now. Let's see what's going to happen. That's again very well bowled and equally that's a lot of confusion. They have just lost the semi-finals. They could have just sealed it. They could have just sealed it. Had they taken that run out, things would have been done and dusted. Things would have been done and dusted. That was so crucial. How can you do that? How can you do that? You cannot be missing out on those.
Score is oh, that's wonderfully played. Will that be the first? Yes, it is. What a good shot to just shut off the pressure. That's the first boundary sponsored by KD Corporation. Fantastic way to get off the mark in the boundary column. That's the way you shrug off the pressure. Counter attack, and they just got a reprieve some time back when they almost lost the 4th wicket of the skipper Nirav Shah. But HE Warriors, they're hanging on. They're hanging on, these guys. Oh, that's beautifully turned away. That will race away for a couple of runs minimum. The ball will just stop because some early morning dew, which was there overnight dew, is just not allowed to get through. A couple of runs added. The score moves on to 18 now. So good positivity added to the total now. This is a team which needs these two guys to perform. One of them could have done, but right now they want both of them to perform and stay there for minimum 10 overs, so that we can get a cliffhanger of a semi-final. If they happen to get 120, 130, that would be chased down very easily. So they need to have a score of minimum 140, and 160 also is a probability these two guys stay. So that's down the leg side. We'll wait for the umpire signal. Umpire says, yeah, it's out the bat, he says. In fact, they didn't go for a run. So it remains on 18 for 3. You might just see him going for a big one. Yes, he does turn it away, but straight to the fielder. This time they take a single, and anything towards his right and left would have fetched him 4 runs because there was nobody over there in that long stop and square leg region. So with that single, the score moves on to 19 now. 19 runs on the scorecard. 19 for 3. The last ball of the 4th over, a very eventful one where we have seen some runs being scored off, and Nirav is yet to get off the mark. He's just faced one. Oh, what a good way. He's getting it off the middle of the bat. That's what is important. The score at the end of over number 4 is 19 for the loss of 3 wickets. They are going touch under 4 runs per over. 3.75 to be precise. Oh, that just popped out, and every time the ball has been in air, the hearts of them would be in their mouths of HE Warriors now. 4.1 overs, 21 for the 4.1 ओवर हो चुके हैं और 21 पे 3 है, तो थोड़ी सी दुविधा में तो है ये टीम, लेकिन इससे वो बाहर आ सकती है. 21 रन और 3 विकेट के नुकसान, लेकिन ये दो बल्लेबाज हैं, ये इस टीम की नैया पार कर सके. इन दोनों पर वो जिम्मेदारी होगी कि वो अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर एक छोटी सी साझेदारी जो बना ले, एक 7-8 ओवर तक अपना विकेट ना गंवाएं, उसके बाद वो शायद अपना गेयर बदल सकते हैं. तो देखते हैं ये दोनों खिलाड़ी. ये बहुत ही रिस्की शॉट था. अक्रॉस द लाइन जब आप खेलते हो तो आपके शॉट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं और आउट होने के ज़्यादा. तो अगर आपको सीधे बल्ले से आप जितना खेलेंगे, जो नीरव काफ़ी अच्छा खेलते हैं, और अगर आप लेफ्ट हैंडर का एंगल देखोगे तो वो एंगल बाहर की तरफ निकलेगा. या तो आप एक्स्ट्रा कवर्स में मार सकते हो, या तो उसको डाउन द ग्राउंड वी में खेल सकते हो. अगर आप उसको अक्रॉस द लाइन खेलने जाओगे तो आपको मुसीबतें हो सकती हो. हाँ, बिल्कुल इसी जगह में कवर्स की दिशा में
सीधा इस बार क्षेत्र रक्षक की दिशा में है, लेकिन शॉट का जो चयन था वो बिल्कुल उपयुक्त था, बिकॉज जिस दिशा से गेंद आ रही है उसी दिशा में उसको ढकलने का प्रयास आ रहा है. देखिए एक 30 डिग्री के एंगल से वो गेंद आती है जब वो लेफ्ट आर्मर अपनी गेंदबाजी करता है, उसी के विरुद्ध दिशा में उसको मतलब सामने कवर्स की दिशा में मारने का प्रयास होता है. अगर उसको खींच के उल्टी तरफ मारने जाएंगे तो आपका विकेट जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ये फिर उसी तरह का प्रयास था, लेकिन इस बार वो प्रयास बिल्कुल सक्सेसफुल. 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25. हेलो हेलो. हेलो. So the score is 26 now, 26 for 3. Sandeep Alich has got a boundary. Neerav Shah has got a fantastic boundary towards the left of the long on. That was a fantastic late KD Corporation boundary. So they need a lot of this. 26 for 3. We are into the 6th over. अभी समझता है सब उसमें स्विचिंग का ही थोड़ा इशू रहेगा, तो उस उधर ही कर देने का था ना 1-2. Okay, the score is 26 now, 26 for 3. Bhavin Mehta, he bowled really well in the previous match. He was very good. These guys have bowled really well in the previous encounter. They batted little abruptly in the beginning, but Neil Shah took care of the batting later on when he scored that crucial 50. And both the matches, in fact, he was very well man of the match in both the matches, just accentuating the fact how important this player is for them. So 26 for 3 is what the score is, and Sandeep and Neerav are the two main players. Sandeep has got a reprieve and Neerav has got a reprieve of the run out. So one life for Neerav, which was a clear chance for him to be dismissed on a score of 1. That's beautifully bowled. Just cramped him up. Not the right choice of shot to be played. He is a very strong player, player all around the wicket, but he actually goes for a lot of cross-batted shots. So this guy can play all around. He has a fantastic cover drive, can play inside out, can play cut shots, can play pull shots, but he almost goes for that big heave into that cow corner region, and almost does not give that kind of credit to some bowling, because he feels he can handle this kind of bowling really well. So at times he's slightly overconfident, that's what I'm talking about. He just goes for that cross-batted heaves, whereas he could have got, oh, that's poor fielding, and that is in fact worse. Such a good player, he is a very safe fielder, the boundary rider, but he did not do the right thing over there. So 2 mistakes, in fact 3 mistakes: a full toss ball, then a misfield in the circle which could have been stopped, maybe slightly bad bounce. No, it's a fairly good outfield. He did not bend, and the thirdly, using the big foot. It's not football, my friend, because you can't be. It's a good fielder, but he missed out this time. 4 runs, 30 for 3 now. That's what, again, he's just playing some tennis cricket. Australian Open is somewhere around the corner, the first Grand Slam. He's playing some tennis shots over here, and the ball might have just landed on the seam and it just bounced abruptly. Otherwise it's a very fair, nice, true wicket where you can play some good shots, and there are no chance of being injured.
He might go for a big one. I strongly feel that on this ball. Yes, he does. And he goes very hard for a fantastic KD Corporation boundary. That was fiercely hit. Fantastic boundary hit. A KD Corporation boundary. KDC Super 4. KDC are 4 and 6 sponsors. So the score is 34-2. Very good in boundaries against a bowler who has bowled really well, Bhavin Mehta, all throughout the tournament. And that was good. That's what I was feeling. This guy will not take a backward step, because that's what his playing style is, taking the attack to the opposition, whatever be the situation is. He is one of those top players of this tournament, along with Neil Shah and also Jigar, who has played well. Some of the players have just shown very brightly. Don't forget Rajiv Taparia's team, because Rajiv Shah's team, in fact, they are a good bunch of players where everyone performs and contributes in one form or another. Rajiv and his mate was simply sensational on the other day. We'll have Rajiv playing the next match, so he is the attraction, the 52-year-old youngster. But right now, this man, the owner of Hasti Engineering Warriors, Nirav Shah. That's poor ball. That was short and wide, but thankfully did not go for many. The score at the end of over number 6 is 35 for the loss of 3 wickets. 6 runs per over, but they have lost 3 wickets. So 35 for 3 is what the score is. Ali Asgar comes in to bowl the 7th over. Nirav Shah, I think he'll go strong against him. Oh, that was a chance. Again, too difficult. This was a slightly difficult one, but he should have held on to this one. If they hold on to Nirav's catch, it will be almost the end of the innings for them, because he is their very, very important player who is remaining now. Sandeep can play well, but he is the enforcer, Nirav Shah. He has got 15 of 13. Sandeep is 11 of 10. He is smart. Sandeep is very smart, very prudent, very safe. He'll hold one on one end and keep batting till the 19th, 20th over. In fact, in the first match, he was there till the 20th over. And he's the one who can stay there for longer periods of time. 37 for 3, 6.2 overs. Nirav Shah is 15 of 13. Sandeep Walecha 12 of 11. Expect a big shot coming, even in spite of him being dropped. Oh, that's smart. That's smart. That's good. A single will take the score to 38. 38 for 3. He is the one, I think, the one with the ball in his hand. Neil should have been persisted with for a few more overs, because he could have got Nirav Shah. They could have just thrown the dice to Nirav and Neil to continue till they get these two men out, because if they get these two men, the opposition would be dented back very badly. Sandeep is smart though. Sandeep won't give his wicket away. He is very compact, and more importantly has a very strong temperament of sticking there and not giving his wicket away. He is a street fighter, this man, and a very patient one. He won't mind a few dot deliveries,
because he understands and not every ball has to be scored off. Even in business and all, it's not bumper sale on every day. Sometimes you do not have that many customers. Sometimes you have a few more. Sometimes you have bumper sale where you have almost 16-17 hours of non-stop work. So that's what is in life is in cricket also. You might get a few overs in which you get 2-3 runs. You might get a few overs you get 6-7 runs. You might get a few overs you will get 15 runs, 20 runs also. That's what is life. That's what is cricket. That's what business is. You will get your time. Just have to be patient and wait for it. And that's good bowling by Ali Asgar. Not trying to do anything different, just keeping it straight and simple. KISS, kiss. Keep it straight and simple. The score at the end of over number 7 is 38 for the loss of 3 wickets. Back live, yeah, the score is 38 for 3. Oh, that's wide. Has to be a wide. That was quite outside the option. The score moves on to 39 now. 39 for 3. We are into the 8th over, and we might see a few shots coming in now by this man. Nirav, he's not going to take a step backwards. We are in the 7th over. If he bats till the 12th over, he'll get his 50 even. Next 5 overs. That's beautifully bowled. And just check this shot because they have lost quite a lot of wickets over here. If they had been say 60 for 3 or 70 for 3, this ball he would have just dispatched down the ground because that was there in his slot. He cannot take the chances of going aerial because he might lose. So he might go strong but all along the carpet. Oh, he goes for a big one instead. That's what I was talking about. That goes all the way for a fantastic KD Corporation sixer. That's what I was talking about. This man can do. He can hit some fantastic sixes. Have a look at that shot. That was simply outstanding. Look at that. Good work by the cameraman. Chasing the ball all the way. And it fell just over the 2 fielders who were trying to stop that ball from tipping over. It just went over them in that cow corner region. That's what I was talking about. He might go bang bang. That's smart batting. Get a sixer, get a single, get off to the other end. That's what I was saying. He stays there for 12 overs, next 5 overs, 4.3 overs, he'll get his 50. That kind of a batsman he is. 5.3 overs, he might get his 30-40 runs on his own. Forget about the team's total. He'll get racing along. Oh, that's smart. Oh, you cannot be doing that after bowling so well. You cannot be misfielding and dropping catches and missing out on opportunities to bowl those dot balls. You need to field well. These guys have been working so very well. DPX Dynamites, they should be avoiding such small errors. Sandeep Walecha, he's on 14 or 15. DPX Dynamites have bowled really well. Oh, he goes for that. Wasn't needed. They already had got a 6. In fact, it also goes all the way. I thought he was in some spot of bother because he couldn't connect well, and that's very unlike of Sandeep. That's a KDC maximum. He does not take chance when already runs are scored. He is a very calm and quiet cricketer, but he also went for that big one, saw the occasion and hitting one of the better bowlers of the opposition, Bhavin Mehta, for a sixer. 54 for 3. So the run rate which was below 6 suddenly has got to 7 runs per over now. So just in space of 2 overs they have got a leap of more than 1 as far as the run rate is concerned. That's good batting. Just 19 runs in the last 11 balls. That is superb and fascinating. The Jinharsh Timken Ador Cup 2023. This is the grand semi-finale. Semi-finale number 1 between HE Warriors and DPX Dynamite. DPX Dynamite has exploded like a dynamite, taking first 3 wickets. The opening batter is still there, Sandeep Walecha. Number 2, 3, 4 batsmen back in the hut. And the batsman who comes on number 5 position is Nirav Shah. Sandeep is on 20, Nirav is on 23. Well, that has to be a wide. Bhavin has come under pressure. Such a good bowler.
Such beautiful, nice action, beautiful turn, and he's being taken for runs. At times, your turn helps the batsman to get that into your arc. Even if it's a mistimed, it goes with that. That's what I was talking about. Straight down the ground. The score at the end of over number 8 is 56 for the loss of 3 wickets, exactly 7 runs per over. So we are into the 9th over. That's beautifully bowled. That's nicely hit off the back foot. The ball is racing and would be just a single. And these two guys would be eyeing up to get a few runs against the soft spinners who have bowled well. Both of them created chances, Bhavin and Ali Asghar. Ali Asghar, in fact, almost got Neerav's wicket, and then he bowled a very good first over in which he gave 3 runs. Take my word, this over is going to go for a few. Minimum of 2 boundaries would be hit in the next 4 balls. This man will go very strongly against Ali Asghar. Might just see him. Yes, that's what I was talking about. He goes and there's a chance. Oh, you cannot be doing that. You cannot. You have dropped him twice. He's going to hurt you, Ali Asghar. Such a good chance being wasted. He was going to go. There wasn't any rocket science in it. And you created a chance and you missed out on your own opportunity. Such a good player gets a reprieve. And I think he needs to rethink now. Not hitting every ball is important. Sandeep Alecha, what will he do? He is also going for his shots. Both of them have decided not to take, and he's a best fielder over there. He makes a mistake. Dharamveer. He's a strong fielder. One of the best fielders, DJ. And he has fielded really well all throughout the tournament. He's a very nice rocket arm, and he has a very safe pair of hands. And if he goes to him, DJ, Neerav would be caught. He is not going to drop. He has to avoid that man on the long on because he is a good fielder. That's good batting. That's good batting. That's smart batting. That's the way the captain should be playing. Respecting the good balls. Ali Asghar, who did not bowl that well in the first match, was very good in the second match and comes back really well in the semi-finals. That's beautifully done. The score at the end of over number 9, just 3 runs in it, 59 for 3. So back live we are. It's going to be the bowling change now. A new man who comes in, a left armer, experienced one. Jayesh Bhai comes in to bowl. There is another Jayesh. They are out of the tournament, but he was so very good in the matches which he bowled. He is unfortunately crashed out of the first round. Oh, that's falls in no man's land. How did you miss that? He could have gone for the catch. And just stopped. Sandeep, he's on 23. Neerav on 24. He's trying to go for some shots which he's not used to. He's not the one who will go for his shots. I think he should play his normal game. And they're just trying to consolidate it now, trying to up the ante, trying to be a little explosive.
but there's no need of it. They got 25 in the last 3.2, which is getting almost 8 runs per over, and he might go big on this ball. That's a big wide. The score moves on to 61 now. That's fine. That's fine. Anything around 65, 70 is fine, because you can always add 80, 90 runs in the night and take it to 140, 150, and even more than that. That's good if you have lost 3 wickets in a power play. And scoring that 150 runs is always good. If this is in his half, take my word, the next ball is going to go very far. Maybe in that cow corner or mid wicket region. Cow corner, mid wicket should be alert. He's going to hit it over there. That's what I was talking. Cow corner it goes, and it is hammered for a fantastic boundary. 65 for 3 now. What a good shot that is. A KD Corporation fantastic boundary, hit with a lot of brute force. That's what's always going to happen. And luckily he just pitched it little back, otherwise if it was pitched further up it would have been gone for a maximum. But that we should be giving that flight, asking him to go big, creating that chance. That's how you can get this man out. That's how you can keep him quiet. If you want to keep him quiet, get him out. And we are approaching, I have told, if he stays there for 12th over, he'll get a 50. Oh, this is smashed. This is the best shot. Instead he has gone just for a single, but that is the best shot. Look at how straight that fielder at long off is. He's almost perpendicular and just a few meters away, because that was smashed. Good replay, good camera work, and good reflexes by the umpire. And that was travelling. That was straight as an arrow, 90 degree almost, but good work by the fielder over there. That was the best shot, just going for a single. That could have been a boundary on most occasions. A couple of runs. Those misfields are the ones which have bothered them a lot. The score at the end of over number 10 is 68 for 3, 6.8 runs per over. A good over in which they got 9 runs.
Score is 79 for 3. This is what I was talking about, these two guys. They both are in their 30s now. I just thought one of them would get a 50 in the 12th over. He might get 1 or 2 overs more. That's nicely left. There he does rerun Ravichandran Ashwin. The same thing what we did against Mohammad Nawaz. Score is 80 now, 80 for 3. The scoring has just skyrocketed. He might just go for a big one of the last ball. He got a boundary of the first ball. He might just get a. But that's again a wide. Yes, that's a wide. And by Parker from Oman. Just officiated a few matches in Oman a month. He officiated in an India-Oman match. 81 for 3, the last ball. 3 in a row, will it be? Wait to the umpire signal. The umpire says a leg by. The score at the end of over number 12 is 82 for the loss of 3 wickets. There was a chance again, missed out. You cannot be doing that. You cannot be doing that. Sandeep comes on strike. He's on 34. Nirav is on 33. They got a run of the overthrow. Sandeep has looked different in this match. In fact, his strike rate is better than Nirav. And it's very unlike of him because he is the one who generally goes along at not that fair clip. He's gone faster than Nirav. That was very well run. 84 for 3. They're going along 7 runs per over almost now. And they go batting like this, they might get close to 150, 160. Because 136 is the projected score as per the current run rate, but they might just go above 150. Nirav stays there, they might go 160 plus even. Maybe beyond that. Nirav gets out 140, 145. Even Nirav and Sandeep both now. Nirav might just go for a big one on this ball. I just strongly feel. Very well bowled. What a good ball that was. Just crammed him. Babin, he is easily one of their best bowlers, but today he has been taken for a few runs. That can happen to the best of the bowlers. He turns it so well, gives it nice flight, nice smooth action, almost like a T20 player, but he's been taken for a few runs. But that wasn't the shot where he meant to hit it. But that will still fetch him 4 runs. Not a good shot, that a great shot because he wanted to hit it in the covers. He in fact dragged it from outside because of the turn on the ball. Just got dragged down to the mid wicket. So when it's not your day, it's not your day. Such a good ball, mistimed shot, going for 4 runs, not fielded well. So that's a KD Corporation Super 4. That's smashed. Again he wanted to hit it in the cover. The ball has gone to the wide-ish long off, and that's again a KD Corporation boundary. Unfortunate. He was trying to keep both the long off and long on straight. In the process, hit on 2 different sides. Wide-ish long on and wide-ish long off this time. So 2 consecutive boundaries. The danger was from Nirav's end. Sandeep Walicha is the one who has just turned the screws on. A KD Corporation fantastic foe. .93 for 3.
12.5 overs. He's got 2 boundaries in this over. Almost got. Oh, that a fantastic effort that was. Such good bowling, such brilliant effort, but he has given away 39. Sometimes the figures don't do justice. The score at the end of 13 overs is 94 for the loss of 3 wickets. They are going over 7 runs per over at the end of. The left armer continues. It's going to be Jayesh. But that's beautifully turned away for a single. The score moves on to 95 now. 95 for 3. We are into the 14th over. Nirav is on 34. Sandeep Walecha is on 45. Still I feel Nirav would get his 50 before Sandeep would, because Nirav can shift his gears anytime. He just saw Sandeep going well. He's taken a back seat. Might see Nirav overtaking Sandeep within no time. That's what I was talking about. What a flat shot this is. Brilliant stuff. Flat and hard. What a shot that is. Just over the fielder who had a chance. Dharam, that's what I said. He's a very good fielder, but good that he did not put his hand between. That's a KD Corporation fantastic boundary. That's a good hit. That's what I was talking. 101 on the scorecard. Gap. So he got a power sixer. He's gone to 40 now. You might just see one more coming in now. Oh, he just wanted to beat the leather out of it. He moves on to 41. 102 for 3. He goes for the big one. The ball has gone straight to the fielder. That's just a single by Neil. And they will be going neck and neck now. Both of them getting closer to the 50. But if I want to bet, I strongly feel Nirav would get it first. 41 of 34. Sandeep has played brilliantly. In fact, he has bettered Nirav's effort, because Sandeep hasn't given that many chances as Nirav has given. That has been more or less a chance. Nirav has got 3 chances. That's a big wide. That's smart bowling though. He's keeping it away. He might have given a wide, but that's good that he's keeping it away so that the batsman will find it difficult to reach the ball, and there is where you get a chance of getting his wicket. I strongly feel this will go for a sixer. Instead he smashes it into the cover straight to the fielder for a single. He moves on to 42. Sandeep Walecha is in 46. One shot away from getting his 50. No, he does not take that single because the ball was straight. It's straight to him. Let's see what he does on the last ball. Will he keep strike or will he go for the big one? I think he'll go for a big one. He just kissed his bat. Same. Oh, missed out Dharam. The score at the end of 14 overs is 105 for the loss of 3 wickets. Sandeep is on 46. Nirav is on 42. So that's a good strategy now, getting Neil back, and that was a mistake which they did. They should have persisted with Neil
and also with Jigar in the initial overs and get rid of these two guys. Bhavin was a very good option, but they were finding the off spinner easy. So off spinners can be really destructive against the lefties. So both these batsmen were finding it easily. So they could have got this man, persisted with him, and I strongly feel he might be the one who might make some difficulties for Nirav. But if he's not being taken out in the next 2 overs, they are going to stare down to a big score. And HE Warriors will be in a strong position, and DPX Dynamites will find they have lost a match which they should have won, because they dropped Neeraj twice, did not get his run out. They have just got a chance to get Sandeep out even once. We cannot be bowling that. We'll wait for the umpire signal. That was very high, and that's gone for a single. So no signal from the ump. 106 for 3. He moves on to 43 now. They have to be a little more circumspect. They need to show a little more respect towards this man, Neil. They cannot be trying to go bang bang over every ball, because they might just lose their wicket. That's what I was talking about. He's special, this boy. Neil Shah. He's good. In fact, he's one of the best all-rounders. He's just like that player who can do both batting and bowling. Like Ian Botham kind of player, Sam Curran kind of player, Hardik Pandya kind of player. But his bowling is better. The best all-rounder in the world, Jack Cullis, of course, about 10,000 runs and 500 wickets. Everything he got. And he was an all-rounder in both formats, one day and test matches. Nirav comes on blacks. Strike, he's on 43. That's the first bad ball which he has bowled. 108 for 3. They are playing him smartly. They are not trying to make too many chances against this man, and that's good, because he is the one who is the major threat. If he's going to bowl balls down the leg side, that won't be of much trouble. I'd like to have your views coming in, some of your important comments coming in. That's nicely played. They are playing it smartly, prudently, and they would attack from the other end, and that too very brutally. (109 for 3). We are into the 15th over. Good bowling. This has been just 3 runs, 4 runs in this over. He has bowled a couple of dot deliveries. That to bowling in the 15th over, when both the batsmen are trying to go very hard. They're scoring along smoothly. They're going around nicely. That's more than 7 runs per over, getting close to that 7.5 mark. And in the last 5 overs, they'll go for 10 runs per over. They'll get to 160. And these two players, that is quite possible. What a good shot that is. That's a brilliant hit down the ground. That would be a KD Corporation. Fantastic boundary coming in at the right. That's his 50. And he has put me wrong. He has got the 50 just before Nirav could, with a fantastic hit down the ground. That's Jinharsh Timken half century. What a good shot to bring it out. So well played, Sandeep Alicha. It's not only Nirav Shah who will do all the runs. It's going to be Sandeep as well. In fact, Sandeep has bettered. Previous match, it was Dhaval Gogaria who did all that batting and bowling. This match, in fact every match, Sandeep Alicha has been putting his hand up with bat and ball and also fielding. In fact, he is more consistent player in their team, more consistent even than Nirav. He has played very well. That is his second half century of the tournament, I think. 113 for 3. Now this is going to be special. This ball, in fact this over, you might see a couple of sixes on Nirav's wicket. Either of the two is going to happen. That's great bowling. Instead he's playing it smartly now.
Nirav has decided to, maybe has decided to give strike to Sandeep, let him do the scoring, and then he'll take over. And that's what I was talking. He might get his wicket. And almost it was a wicket. This is super bowling from Ali Asgar. It has been his first match of the tournament. He was very, very expensive, and Bhavin bowled well in all the matches. And today it's the other way around. So the time changes, day changes, performance changes. That's beautifully bowled. Only 1 run in this over in the first 3 balls. That is brilliant stuff. But that might just change now, because Sandeep has got his 50 and he has been given a clear license to go for bowling. That was a big heave, not well timed, but still his ill-timed shots are going towards the boundary. He gets a couple. He goes on to 53 now. Oh, there's an opportunity. No. A couple of runs added, the score moves on to 116 now. They're closing in the 8 runs per over mark. But that again is not well timed. He wanted to hit it into the straight down the ground. It goes for a single. 117 for 3. Last ball. Might just see Nirav getting his 50. He's on 45. They bowled so well, but they haven't fielded well, HE Warriors. They created so many chances. He goes for the big one, and that is... He wants to keep striking. He's greedy. There was a second in it. Nirav, bad running between the wicket. Just 1 run, some good superb fielding. The score at the end of over number 16 is 118 for 3. They are going along very well. 7.38 runs per over. Jinharsh Timken Ador Cup 2023. Last 4. बैक लाइव वी आर दिस आर नेक्स्ट. ये 6 काफ़ी महत्वपूर्ण गेंदें आने वाले इस गेंदबाज के द्वारा, बिकॉज ये जो आने वाली 6 गेंद है ये नील के स्पेल की आखिरी 6 गेंदें, और वो सबसे बेहतरीन गेंदबाज है. अगर इस ओवर में वो अतिरिक्त चांस लेने जाते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क लेने जाते हैं, तो वही समय होगा कि जब उनका विकेट लेने का मौका मिलेगा सामने वाली टीम को. तो अगर वो समझदार है, प्रूडेंट है, स्मार्ट है, तो शायद इस ओवर को ठीक से खेले, ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए. इस ओवर में 7-8 रन भी आ जाए तो चल जाएगा, क्योंकि आखिर के 3 ओवर्स में आप 35 से 40 भी रन निकाल सकोगे, बिकॉज उनका सबसे अच्छा गेंदबाजों में से एक, उनके सारे चारों के 4 ओवर्स खत्म हो जाएंगे. तो ये टोटल तो यहाँ से 160 के आसपास दिख रहा है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी बात होगी कि ये जो गेंदबाज है नील शाह, उसको वो ठीक से खेले. वो भी एक गंदा या ख़राब गेंद देगा आपको जिस पर आप चौका जड़ सकते हैं, लेकिन हर गेंद पे चौका छक्का जड़ने की ज़रूरत नहीं है. देखते हैं नील कैसी गेंदबाजी करते हैं. ये काफ़ी ख़राब शॉट था, बिल्कुल ख़राब शॉट था. डेक बाइस या बैट का अंदरूनी किनारा, बैट का अंदरूनी किनारा. इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 119 पे. नील शाह आखिर की 5 गेंदें उनकी स्पेल की बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगे ये आगे वाली गेंदें. इस गेंद पर विकेट निकालना ज़रूरी है. मौका तो था. बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और उचित लेंथ, उचित दिशा, और सबसे महत्वपूर्ण उचित पेस के साथ फेंकी हुई. 3 गेंदें शेष, माफ कीजिए 4 गेंदें शेष इनकी स्पेल की. स्ट्राइक पे संदीप, थोड़ा सा फुटवर्क उतना खासा बेहतरीन नहीं था उनका. बेहतरीन यॉर्कर. फिर एक बार ज़बरदस्त गेंदबाजी. आज का स्पेल उनका काफ़ी अच्छा रहा है. पिछले मैच में थोड़े से ज़्यादा रन खर्च कर दिए थे, इस बार फिर एक बार उसी तरह की गेंदबाजी की जिस तरह से उनसे अपेक्षा थी. पहले 2 मैच में बेहतरीन गेंदबाजी, तीसरे मैच में उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई थी, लेकिन जब सबसे महत्वपूर्ण मैच है उसमें क्या बेहतरीन फिगर्स है इस गेंदबाज के. 3.3 ओवर्स और अब तक मात्र 19 रन खर्च किया. आखिर की 3 गेंदें.
और ये काफी बेहतरीन बॉल था, हुक करने का प्रयास, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर मिड विकेट की दिशा में, केडी कॉर्पोरेशन चौका। क्या बेहतरीन शॉट था ये, और ये हाफ सेंचुरी होगी नीरव शाह की। जिनहास टिमकेन हाफ सेंचुरी। दोनों ही बल्लेबाजों को एक ही मैच में हाफ सेंचुरीज लगाते हुए हमने कम अवसरों पर देखा है, और ये पहली बार है इस टूर्नामेंट में। इसके पहले राजीव की और उसके जो उनके जो मित्र थे, उनकी जो इनिंग्स थी जिनेश की, वो याद रखने लायक थी। इसमें 50 और 40 रन बनाए थे दोनों ने। इस मैच में संदीप और नीरव, जो जिन दो बल्लेबाजों का भय था, डर था, उन्होंने वो कर दिखाया है फिर बार। लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत 4 से 5 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज गए। 2-3 तो काफ़ी आसान चांसेस दिए गए थे, खासकर नीरव को 3-4 वो चांसेस मिले। एक चांस शायद संदीप को भी मिला होगा। बेहतरीन यॉर्कर, इसे 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। माफ कीजिए, और एक गेंद 6 से 125 पे 3। तो अगर इस गेंद पर वो विकेट नहीं गंवाते हैं अपना, और नील का ये ओवर जिसमें 7 रन अब तक मिले उससे वो संतुष्ट रहते हैं, तो आखिर के 3 ओवर्स काफ़ी मुश्किल समय होने वाला है डीपीएक्स डायनामाइट्स के लिए। तो नील के पास ये आखिरी मौका इस खिलाड़ी को आउट करने का। एचई वॉरियर्स दैट डीपीएक्स डायनामाइट चाहेंगे कि एक विकेट उखाड़ दें यहाँ पर वो। बहुत ही करीबी मामला, लेग स्टंप की दिशा में जाती हुई गेंद। स्कोर 17 ओवर की समाप्ति पर 125, 3 विकेट के नुकसान पर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। रन रेट जो 7.3 के आसपास है, बिल्कुल वहीं पर है, 7.35। सो बैक लाइव, आखिर के ये जो 3 ओवर्स होने वाला है, शायद इस ओवर में भाविन को कुछ विकेट्स मिले। इतनी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन काफ़ी रन खर्च किए इन्होंने आज। ये शुरुआत तो हो रही है, मौका तो है। पहली गेंद पर भाविन ने सबसे महत्वपूर्ण विकेट लिया। आज दिन उनका नहीं रहा है गेंदबाजी के मामले में, लेकिन उन्होंने नीरव का विकेट चटका दिया। तो कई बार ऐसे होता है कि लाइफ में ये रहा एक ज़बरदस्त एक्सेल विकेट पावर्ड बाय वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज। काफ़ी समय आपके जो निजी जीवन होता है उसमें आप कई बार बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसका आपको उचित फल नहीं मिलता। कई बार कम मेहनत करके भी आपको बहुत सारी सफलताएं मिलते हैं। तो आज उन्होंने गेंदबाजी काफ़ी अच्छी की थी, लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिली थी। पहले 3 ओवर में लगभग 13 की औसत से उनकी धुलाई, उनकी पिटाई हुई आज कहेंगे। लेकिन जो चौथे ओवर में सबसे महत्वपूर्ण आखिर के 18 गेंदें थी, उसमें से सबसे अच्छी गेंद फेंकी है भाविन ने और विकेट चटकाया। इससे अच्छी गेंदें उन्होंने फेंकी थी और उसमें चौके छक्के जड़े थे। ये गेंद उतनी खास नहीं थी, लेकिन विकेट देकर गई एक ऐसे बल्लेबाज का जो अंत में 15 से 20 रनों का अंतर कर सकता था। तो जो रन संख्या अब 55 या 60 तक पहुंचेगी, वो शायद 170 तक भी, माफ कीजिए 165 तक भी पहुंच सकती। 40 रन निकालने की क्षमता थी इस बल्लेबाज में। तो जो 160 165 के आगे ले जाने का आंकड़ा है, उसको सीमित रखने का प्रयास होगा अब, बिकॉज बहुत महत्वपूर्ण नीरव के विकेट उन्होंने ले लिए। लेकिन ये बल्लेबाज भी, ये सुपरस्टार है, यंगस्टर है, इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए लोग राह देख रहे होंगे। पहली बार जब सचिन तेंदुलकर आए थे 1989 में, उसके पहले एक बार जो एक अनऑफिशियल मैच खेला था पाकिस्तान में, बिल्कुल छोटे बच्चा जो 14 साल 16.5 साल का वो बच्चा था, लेकिन ऐसे लग रहा था मात्र 10-12 साल का ही थे। देवांश भी के लिए भी ये यंग बच्चे हैं, इनके लिए नई टूर्नामेंट हो गई है लेदर क्रिकेट में। शायद 19-20-21 साल के यंगस्टर है। काफ़ी अच्छी गेंद सीधी पॉइंट की दिशा में, इनफैक्ट गली की दिशा में 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर जहाँ पहुंचेगा 126 पर 126 पे 4, 1 to 6 for 4। देवांश अगर अच्छा खेल जाता है और देवांश 1-2-4 बड़े हिट लगा देती है, टोटल 160 के आसपास भी पहुंच सकती है। देवांश का आखिर तक रुकना जरूरी है, और संदीप वलेचा का भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ ये भाविन कर सकते हैं। देखिए उनके पहले 3 ओवर में उन्होंने रन खर्च किए थे 39। इस ओवर में उन्होंने 1 ही रन मात्र खर्च किया और एक बहुत बड़ी विकेट भी लिया। उनकी गेंद देखो कितनी टर्न हो रही है, एक प्रॉपर ऑफ ब्रेक की तरफ, बहुत बेहतरीन फ्लाइट भी दे रहे हैं और उचित योग्य। देखिए बिल्कुल समझ में नहीं पाए थे बल्लेबाज,
इस 1 रन के साथ स्कोर जाएगा 127 पर। बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, देखिए अब पेस चेंज कर रहे हैं, धीमी से डाली थी इसके पहले वाली गेंद, थोड़ी सी तेजी से डाली हुई थी और ये शायद एक क्विकर वन आएगी देवांश के लिए, ये टर्न नहीं होगी, ये क्विकर वन आएगी। देखते हैं कैसी गेंद फेंकेंगे। नहीं, वो ब्यूटीफुल बॉल, क्या गेंद थी ये, क्लीन बोल्ड हो चुके हैं शायद, क्लीन बोल्ड। मुझे लगा ये गेंद दस्तानों से जाके टकराई और विकेट पे आई। एक्सेल विकेट स्पॉन्सर्ड बाय वाइपर ड्राइव इंडस्ट्री। जस्ट देखते हैं इसका रीप्ले, किस तरह से वो गेंद आई थी। तो नए बल्लेबाज जो विकेट पे आएंगे वो है समीर मेहता, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विकेट देवांश की, इसलिए मैंने कहा था ना कि भाविन के लिए इस ओवर में शायद काफ़ी विकेट्स आने की आशंका है, बिकॉज बहुत बुरा हो चुका था पहले ही, कई सारे मिसफील्ड हो गए थे उनकी गेंदबाजी पे, लेकिन 2 विकेट्स अंतिम ओवर में। सो स्माइल, और शायद तीसरी भी थी। इतना बेहतरीन गेंदबाज, सबसे अच्छा गेंदबाज, लेकिन आज सबसे महंगा साबित होता हुआ। 41 रन उन्होंने खर्च किए 4 ओवर की समाप्ति पर। आखिर के 2 ओवर्स शेष। इस सो बैक लाइव वी आर, फिर एक बार बहुत ही धीमी गेंद ये, सो 127 पर 5 है स्कोर, इनफैक्ट 128 पे 5। आखिर के 11 ओवर्स, 11 गेंदें माफ कीजिए। स्ट्राइक पे होंगे ये संदीप वलेचा, ये मौका बन सकता है। अगर संदीप वलेचा आउट हो जाते हैं तो 145 भी मुश्किल हो जाएगा। संदीप वलेचा, क्या जयेश उनकी विकेट चटका पाएंगे? काफी धीमी गेंद, 130 पर स्कोर जाता हुआ, 130 फॉर 5, 50 प्लस होंगी ये गेंदबाज। फिर भी क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी की 19वीं ओवर फेंक रहे हैं। पारी का 19 ओवर फेंकना आसान नहीं होता। बेहतरीन गेंदबाजी, सुपर बॉलिंग। दोनों ही गेंदबाज जो पहले अपने 3 ओवर्स में काफ़ी महंगे साबित हुए थे, 39 रन खर्च किए थे भाविन ने और 29 रन खर्च किए थे जयेश ने, लेकिन क्या बेहतरीन कमबैक किया है। ये खराब गेंद थी, शॉट उतना अच्छा नहीं था। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचेगा 131 पर। शॉट थी, गेंद हाफ ट्रैकर थी, कहीं पर भी मार सकते थे, कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं। 131 फॉर 5। संदीप को अभी बड़े हिट के लिए जाना पड़ेगा, शायद वो लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की दिशा में एक बड़ा प्रहार करेंगे। लॉन्ग ऑन की दिशा में मारा जरूर है, लेकिन मात्र 1 रन के लिए। 132 पर 5, 2 गेंदे शेष। फिर एक बार मौका बन सकता है और फिर इसी दिशा में मारने का प्रयास होगा लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन में इस खिलाड़ी का, समीर मेहता का। और शायद वो सर्कल में जो खिलाड़ी है उसको मुस्तैद रहना पड़ेगा। गेंद वहां पर जा सकती है हवा में, नो मैंस लैंड में। स्मार्टली खेला है ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए। 133 फॉर 5। बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा है जिसमें मात्र 5 रन खर्च किए उन्होंने। आखिर की गेंद से ये ओवर बिगड़ सकता है, एक चौका एक छक्का लग सकता है यहाँ पर, लेकिन अगर वो संदीप की विकेट चिटका देते तो सोने पे सुहागा। इनफैक्ट यहां पर ओवर की समाप्ति 133 पर 5। बॉल का पैसा मेरे पास स्ट्राइक संदीप को मिलना जरूरी है। जिगर, ये शायद यहाँ पे थोड़ा उनका जो
स्टैटिस्टिक्स था, मैथमेटिक्स है, जो गणित था वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा है कि 2 ही ओवर डाले जिगर ने जो 3 ओवर डाल सकते थे। क्या बेहतरीन पिकअप शॉट है, क्या ये गेंद ऑल द वे जाएगी? ये जाकर रुक जाएगी। संदीप को जाना होगा तीसरे रन के लिए, वो जा रहे हैं। बेहतरीन रनिंग, 3 रनों के साथ स्ट्राइक संदीप के पास रहेगा और स्कोर जहां पहुंचेगा 136 पर। 136, 4 गेंदे शेष। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, गेंद और आखिरकार 1 2 3 जगल्स के बाद बेहतरीन कैच ले लिया है। अच्छा कैच लिया वहां पे संदीप। एक बेहतरीन इनिंग्स करके एक मैच विनिंग पारी खेली है उनकी टीम के लिए उन्होंने। जैसे हमने सोचा था ये 140 के आसपास पहुंचा सकते हैं अपनी टीम को, उसके आसपास ले जाने का प्रयास। जो 150 दिख रहा था, 155 दिख रहे थे, 160 दिख रहे थे, वो मात्र 136 रन पर आकर सीमित कर दिया। एक्सेल विकेट पावर्ड बाय वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज। तो अभिषेक शाह आएंगे नए बल्लेबाज, और बेहतरीन गेंदबाजी की है जिगर ने। जैक उनको कहा जाता है, उनका निकनेम है जैक। बहुत सारे खिलाड़ियों के निकनेम्स होते हैं। विराट कोहली को चीकू कहते हैं, उसी के साथ जो रिकी पॉन्टिंग को पंटर कहा जाता था, और कई सारे नाम हैं ऐसे खिलाड़ियों के। लिटिल मास्टर कहा जाता था सनी गावस्कर को, और सचिन ऑफ कोर्स द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो कई सारे नाम, कई सारे खिलाड़ियों को उनके निकनेम से बुलाया जाता था। ये खिलाड़ी जैक, जिगर, 3 विकेट चटका चुके हैं और मात्र 20 रन खर्च किए। उनका शायद ये आखिरी ओवर। जिगर 3 for 20, that's what the figure shows। कवर्स की दिशा में मारा अभिषेक, और ये बेहतरीन कैच और एक एक्सेल विकेट। दूसरी अच्छी कैच ली है, एक्सेल विकेट पावर्ड बाय वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज मिस्टर प्रतीक शाह एंड राहुल शाह, और एक इंपॉर्टेंट विकेट। लगातार विकेटों की लड़ी लगी हुई है यहाँ पर। आखिर के ओवर्स में 2 गेंदों पर 2 विकेट्स चटकाए हैं, तो हैट्रिक पर होंगे, बिकॉज वही खिलाड़ी गेंदबाज, वही खिलाड़ी क्षेत्र रक्षक, और शायद तीसरी विकेट भी उसी तरह से जा सकेंगे या देखेंगे। लेकिन जिगर, इसलिए मैं कह रहा था कि लगातार जिगर वो ऐसे प्लेयर है सैम करन की तरह, जो आपको शुरुआत में आएंगे, गेंदबाजी करेंगे, फिर बैटिंग के लिए भी 1 डाउन या शायद ओपनिंग में ही आते हैं, तो वो दोनों काम कर सकते हैं। इंडिया के लिए सबसे पहली बार वो जो किया था वो हुआ करते थे मनोज प्रभाकर, जो 90 के दशक में पहले गेंदबाजी भी करते थे और बल्लेबाजी भी करते थे। और एक जो खिलाड़ी जो टेस्ट में भी उन्होंने काम किया, सुनील गावस्कर, ओपनिंग बैट्समैन भी बनते थे, और कई बार हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं, हमारे पास 4-4 स्पिनर्स होते थे, तो ओपनिंग गेंदबाजी करने भी सुनील गावस्कर आया करते थे। इयन बॉथम एक खिलाड़ी थे जो हरफन मौला थे, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ कर सकते थे। तो देखते हैं आखिर की 2 गेंदे शेष, 136 पे 7। ये मौका है, क्या ये वही खिलाड़ी? बिल्कुल उसके पास ही था। ये तीसरे रनों की कोशिश है, नहीं, ये 2 विकेट और ये टीम हैट्रिक हो जाएगी, 2 रन और विकेट। तो ये वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज पावर्ड एक्सेल विकेट, 3 लगातार विकेट से, लेकिन 2 कैच, 1 रन आउट। उस गेंदबाज को तो वो विकेट नहीं मिलेगी, लेकिन टीम को मिलेगी, तो विकेट हैट्रिक टीम की हो चुकी है। 2 रन मिलेंगे, 138 पे 8। आखिरी गेंद, क्या आखिरी गेंद पे ये वापस हो सकता है? ये हुआ था, कई बार हुआ था, हालांकि बहुत कम रन चाहिए थे, 4 विकेट्स रह गए थे। लसित मलिंगा ने ये काम 2 बार किया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ था वो मैच, और आखिर के 4 विकेट्स को 4 गेंदों पे चटकाया था लसित मलिंगा ने। लगातार 4 गेंदों पे 4 विकेट्स, और श्रीलंका ने मात्र 20-25 ही रन चाहिए थे और 4 विकेट शेष थे। चारों को आखिरी 4 गेंदों में उन्होंने आउट कर दिए थे। पूरा मैच उनके सामने खुला था,
बहुत सारे ओवर्स बाकी थे, लेकिन 4 गेंदों पे 4 विकेट्स लेके लसित मलिंगा ने साउथ अफ्रीका को पराजित किया था। तो यहाँ पे 3 गेंदों पे 3 विकेट्स आए हैं, दो आए हैं विकेट्स कैच के द्वारा, एक आए रनआउट के द्वारा। स्कोर है 138, 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस पारी का, लास्ट बॉल। और ये शायद 1 2 3 4 विकेट्स 4 गेंदों पर। ये हो चुका है 2 कैच और 2 रनआउट, तो आखिर की 4 गेंदें और 4 विकेट्स। तो स्कोर होगा 139 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 140 का टारगेट होगा, 60 रन बने थे 10 ओवर के बाद, 80 रन आए हैं, इनफैक्ट 79 आए हैं अगले 10 ओवर्स में। सो 140 का टारगेट होगा। दोनों ही टीम को इक्वल चांस होगा ये मुकाबला सामना जीतने के लिए।
Yes, the grand semi-final number 1. HE Warriors, they have scored 139. DPX Dynamite needs 140 runs. Exactly at 7 runs per over. They start off with a wide. They start off with a wide, and Jayesh and Jigar, the two opening batters. That's good bowling, keeping it tight. That's what Jigar has come back as an opening batter. He started off with the ball in his hand. He comes back with the bat in his hand. So opening batter, opening bowler Jigar, the Jack. Oh, that was a very good ball, hitting on the seam and bouncing extra. That's what a new ball can do. Nirav is the man for them. He is their main bowler. He was very expensive in the first match. Then he bowled very good in the next 2 matches. Once again, his pace on the ball. Jayesh is the man on strike. And that's beautifully played. A solid block. They don't need too many runs in an over, so even if they don't lose a wicket, get 30-35 runs in the first 6 overs, they can win this one easily. And that's a wide ball. Second wide of the innings. Score moves on to 2. He's bowling from the defense colony end. Will he get the first wicket in his opening over? This beautifully put away. What a good shot that is. Pure timing using the pace of the bowler. That would be KD Corporation first boundary of the innings. Fantastic boundary. Just using the pace of the bowler, guiding the ball in the area where there was no fielder, hitting it between that area of third slip gully and that point area, and getting 4 runs by some delicate touch. Using the pace of the bowler to nicety, getting the first boundary. Jayesh gets 4 runs and 6 runs. It was 8 runs in the first over and they had got a wicket. Let's see whether Nirav gets a wicket in the very first over. It seems to be a very good player. Jayesh had a solid block, then a nice cut shot for a boundary. In fact, that was delicately placed. Last ball of the over. He goes for a full-bladed cover drive. What a shot! Into the covers. Will it go all the way? That's the only question. But that will go for a couple of runs. Will they go for the third one on the throw? Yes, they do. The score at the end of over number 1 is 9 without loss. Fantastic comeback by the batter in the last 2 balls. 9 runs at the end of over number 1. After Nirav Shah's first over, it's going to be the same man who was bowled really well in the previous match, Dhaval Gogaria. Dhaval Gogari who comes into bowl. Dhaval Gogari bowled really well in the previous match, got a lot of wickets. And he does not do anything special, does not move the ball away, take the ball in, ball quick, or bowl with different pace, just puts the ball in the right areas. Simple straight technique of bowling, more like a tennis cricket bowler, but he puts it in the right area, and simple things give greater results at times. Straight bowling, no turn, no seam presentation, no quick bowling, just put it in the right areas. That's what I was talking about. But the new ball is doing something. Nirav can take the ball in, take the ball away, ball quick balls, ball with a high pace, but he's taken 4 runs. Dhaval exactly opposite. He will not try to bowl in swinger, out swinger, off break, leg break, bouncers. He'll just put the ball in the same area over and over again. So that was away. That's an away swinger.
and pitched outside the off stump. And the new ball does a lot of funny things. Even if you don't want to move the ball, the ball actually moves and depends on which part of the seam it lands on. So that swung in the air. That swung in air. It wasn't seam, but it swung in the air. That's very rare. If you see swing, you can always see the ball moving around of the seam, but there was some swing in the air. That's too wide. Second wide of the over. Just like the previous over, the first four balls had a couple of wides. Then we saw a boundary and a 3-4 in the latter part. Jigar hasn't faced a ball. Jayesh has got 7 runs of 9 balls. That's beautifully turned away, just using the pace of the bowler. What a fabulously hit KD Corporation boundary. That's a very nicely hit boundary. Just using the pace of the bowler. It has gone the same way as the previous over. First few balls, they were dot deliveries. Then he got a boundary and a 3-4. And they've got 6 runs in this over so far. Just missed out on his length and line. Length was fuller, line was outside the leg stump. He should have persisted with his bowling. Tried to go for that big magic ball. Keeping to his strength is more important. Yeah, that's what his strength is, outside the off stump. Misfield over there. There's an opportunity. Kumar. Score moves on to 16 now. That's the first ball which Jigar is gonna face. He is a very compact player. He bats almost like Sandeep Valecha. He stays there for longer periods. Slightly more aggressive than Sandeep, this man is. His presence for next 10-12 overs. In fact, he played for 16-17 overs in the first match. He's just like that glue which sticks on to the team, and the whole team bats around him. The score at the end of over number 2 is 16 runs, 7 runs in this over.
So that's a good start by this team. DPX Dynamite in pursuit of 140. They have begun well, and Nirav Shah has to pick up a few wickets. Jigar hasn't got off the mark. Just trying to go crazy. That's good line and good length. He's generally very short or full. This was the right length. Bowls with a lot of venom, lot of pace. He bowls that heavy ball. He's a very quick bowler. His action is very deceptive. Take a short run up and put in a lot of shoulder. And that's the reason people make use of his pace and just try and guide that ball. And every time you bowl with that pace and give offer width, even if the shot is not well timed, the ball is going to fly. So he's trying to get his length right. Length is more important for such kind of bowling. That's not right line this time. That's a wide. But what a good bounce on that ball he got. Great bounce. Balls with a lot of venom, lot of pace. He might just get a wicket in his first few overs. They have to play him well. That's poor. That's not good bowling. 2 wides in a row by Nirav. The owner of HE Enterprises, the captain of HE Enterprises, the main player of HE Enterprises. He needs to find his line right. That's beautifully placed. That's what I say, using the base of the bowler. Score at the end of over number 3 is 21 without loss. They're going along very well. They need 7 runs per over. They're going at 7 runs per over. Yeah, that's good work by the wicketkeeper, stopping it from going over for extras. The score is 22 now. Good batting. This is what DPX. They're motoring along quite well. They haven't lost a wicket. They've scored at a fair clip. That's what is important. You can consolidate your situation in such kind of matches. Score is 22-22. We are into the 4th over. DPX Dynamites versus HE Warriors. That's an opportunity. That's an opportunity. But he is safe. Oh, that's an opportunity. Oh, that would be the first XL wicket. That's a very, very crucial wicket coming in at the right time. XL wicket sponsored by Viper Drive Industries. They needed a wicket badly. They get one. Unfortunately, of a very good batter. And it was a steep bounce which got the wicket. Dhawal again is the magician who has been the one who got a lot of his wickets in the previous match. He does it again. That's a very big wicket because he is the one who can play for a longer innings. A batsman with a strong compact technique, with a good temperament and has a good talent. He gets back. That's a big blow
for the team DPX Dynamites. Yes, Chintan is the new man who comes in. So Chintan has to do all that Chintan, all that introspection, all that work for his mate now. Jigar has got out. That's a big blow. Both the teams know how important Jigar is gonna be, and also remember the batsman who's coming delayed down is Neil. So Neil, if he gets maybe 50-60 runs to be done in last 6, 7, 8 overs, he'll get those for them. He can also come in at the fall of maybe a couple of wickets and do that important part of getting those important runs and getting maybe keeping 20-30 runs for his team to score in the last 5 overs. So his job can go both ways. Either he can come after the fall of a couple of wickets, or maybe he can come low down at 6-7. The score is stuck on 23 now. He just got 2 runs in this over, and he's got a wicket. This man, his figures look exceptional now. 1.5 overs and 8 runs. Remember, he's bowling his second over. The score at the end of over number 4 is 23 for the loss of 1 wicket. They've got Jigar's wicket in this over. So back live we are. The score is 23 now, 23 for 1. And Jigar's back. Jayesh, he has played well. He looked good. He has looked comfortable. He has looked very smart and prudent over there, not taking chances. Using the pace of the bowler, he has got 2 boundaries, one delicate deft touch down the leg side, and another nicely cut in the offside. So he's still there, Jayesh. He's got 13 or 15 balls. He turns it over for a single. Good call by the non-striker Chintan. He comes on strike. 24 for 1 now. Sandeep bowling his first over. Sandeep will bowl those leg breaks. He has a very unique straight action. Does not roll his arms much. Very minimal economical action. And tries to bowl few leg spinners in it. He gets a smallish turn, and which is sometimes sufficient, but bowls very slowly. Just does not offers much pace on the ball. Yes, leg spinners are put on the right areas, but they have run well. Look at Jayesh, so smartly he's batting. He's one of the senior most members. He's batting so very well. Ideal batsmanship for this kind of match, this kind of total. And he's looked very agile, very nimble on his feet. Just run like a teenager, this man. 25 for 1. And look at his batting stance. Everything perfect. Seems like a proper compact batsman.
That's down the leg side, clearly down the leg side. Sandeep isn't happy, no bowler is happy. Couple of balls remaining in this over. He's given away 2 runs, but that was down the leg side. That's a good decision. Anything around middle and off, on the back foot, he could have been a prime candidate for LBW. There's what it was, exactly on middle and off, and thankfully he got his bat down right in time. 3 runs in this over so far. Sandeep Olicha bowling his first over. Chintan is the new man, he's got 1. That's beautifully bowled. The score at the end of over number 5 is 26 for the loss of 1 wicket. Just sped away with this over, this man. And 26 for 1. 26 पे 1 स्ट्राइक पर होंगे जयेश, नॉन स्ट्राइक पर होंगे चिंतन. पारी का ये 6वां ओवर 140 रनों का पीछा करते हुए. और ये क्या शॉट है जयेश का, बेहतरीन टाइमिंग, क्या जबरदस्त हिट है. 6 रन, फैंटास्टिक. केडी कॉर्पोरेशन छक्का. 50 प्लस इनकी उम्र होगी, लेकिन उन बाजुओं में, उन रिस्ट में क्या भरपूर ताकत है. क्या शॉट था ये, देखिए आराम से खेला हुआ. इसमें आप टाइमिंग कह सकते हैं, उसको टेक्निक कह सकते हैं, उसको टेम्परामेंट कह सकते हैं, उसको टैलेंट कह सकते हैं. ये सारे टी जब उस खिलाड़ी में हो, टाइमिंग है, टेम्परामेंट है, टैलेंट है, तो छक्का तो होना ही है. और आसानी से मारा हुआ छक्का है धवल की गेंदबाजी पर. और ये बहुत बड़ी विकेट है. हल्के हाथों से खेलना आते धवल दूसरी ही गेंद पर अपनी विकेट निकालते हुए. एक्सेल विकेट, दूसरा बेहतरीन कैच. वाइपर ड्राइव इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड एक्सेल विकेट, दूसरा विकेट. बहुत बड़ी ये विकेट है, बिकॉज बहुत अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे. एक जबरदस्त छक्का जड़ा था, उसके बाद बल्लेबाज आउट. बहुत बड़ी ये विकेट है. जयेश आउट होकर अपनी टीम के पास. They need 108 runs in the remaining 88 balls. So they are tightening up the scores. Now remember, they were 35 for 3 at the end of over number 6. They got 32 for 2. So 1 wicket less. That's nicely turned away for a single. Chintan has run well. He has just got 1, but he has run those crucial singles well. It's not important how many runs you score off your bat. It's also important how you call and how you run for your partners. And cricket and life is also a game of partnerships where both the partners need to play well. And even if one hits a shot, the other player has to call well, respond well, and he has taken 3-4 very good singles, this man Chintan. He has just got 1 on his own. Score is 33. What a crucial wicket that was. Dhawal with that magic hand.
just cramped him up for some space over there. 2 balls remaining in a very eventful over. They are getting their overs quickly in. Both Dhaval and Sandeep. Sandeep will do that. He'll bowl his balls quickly. Couple of balls remaining in this very eventful over where he was hit for a sixer of the first ball, wicket of the next ball. Next 2 balls he has been right on spot. 33 for 2. He'll strike to smash it. The ball is racing towards that mid-wicket cow corner region. Will it go all the way? That's the only question. The ball will just go and stop over there. They get a couple. Will he go for the third? Yes, he does. Quite easily though. He gets a 3 for Chintan. The score moves on to 36. Last ball. Remember they were 35 for 3. These guys are 36 for 2. So 1 better and 1 wicket less. Let's see what the last ball has in store for us. On strike is the new man Bhavin, who has scored 1 of 1. Bhavin Mehta, who's the perfect all-rounder. And Neil Shah is going to come. He is their match winner. Bhavin Mehta, he's on strike. Last ball of the 6th over. The power play, in fact. Last ball of the power play is going to be number 99, Dhaval Gohari. So the score at the good running by Chintan over. The score at the end of over number 6 is good running, quick running is from Chintan. 37 for the loss of 2 wickets. So they need exactly 103 runs in the next 84 balls. Very important spell of Sandeep Alecha here. He is a miserly bowler. He is the one ideal for this situation where there is a in-between score. He'll bowl his 4 overs for 17-18 runs. That kind of bowler he is. He also is not a big turner of the ball. He just puts the ball in the right area and does that little bit of leg spinner. See, very simple action, very normal action. Just puts the ball. He tries to bowl the leg spinner. That was a poor ball. Generally never bowls short balls, but he bowled on that occasion. But he has gone for Neeraj learns so very well. He is a superb runner between the. In fact, Chintan I'm talking about. He's got 6 of 8, but he has run so very well. Bhavin has got 3 of 3. See, he tries to bowl the leg spinners. That was just short. He has to pitch it up. Number 28. Yeah, that's any other leg spinner. Just tries to bowl with that only one hand. He does not even make use of the left hand and tries and gets the full swing and does not even flight the ball much. He does not make a use of lot of risk.
He does it with fingers actually. So if you're bowling with a leg spinner, if you have a wrist spinner, you will get a lot of purchase out of it. Also you can bowl with that zooter also, which goes the other way. So Shenmon got a lot of wickets of that ball which goes the other way, and which quickly goes actually the other way. We can call him the wrong one, the zooter. And let's see whether he has all that things. He will bowl simple plain leg spin bowling and slowish balls. Yeah, he bowled that little quickly. That's good batting from Bhavin, showing some respect to the bowler. They need 98, not much, so he understands the difference between the number of runs being scored and the balls remaining is just 18, which can be easily negated any time. He's not taking much chances there. Last ball of Sandeep's good over. He has just given 8 runs in 1.5 overs. In this over, he has given away 5. First over, he just gave 3 runs. So the last ball of the over. So that's a full toss, and that's an opportunity for him to get a boundary. In fact, that's all the way. I thought it will go for a boundary. That's the flattest 6. A KD Corporation 6 runs hit into the square leg region. That's a crucial ball. They just need 92 now. So back live we are, and this is very interesting encounter. Next match is going to be a battle between father and son, where we'll see Jayendra and Ronak playing against each other. So Vipsa Warriors versus Ronak's team. That is going to be very crucial. And Jayendra has contributed very well. He is 63. His son may be just around 30s, in 30s. So that's going to be very interesting. The battle of father and son. And I don't know if mother is going to be siding whom, because one of them is going to be very happy, the other one is going to be a little sad, because this is an important encounter. The ticket to the finale. Next match would be a battle of families, where father and son would be. Last year we saw Vatsal and Vipul playing against each other. Let's see what Jayendra. Oh, that's beautifully bowled. Nicely bowled. Krunal, he's there, Jadeja. Let's see whether he performs. He starts off, it's a nice smooth action, bowls round the wicket and tries to bowl his overs quickly. He is also a bowler who will try and bowl economically. Krunal, he has a lot of friends, and they follow him a lot. They were supporting him all throughout the tournament with some lovely comments for him. Let's see Krunal what he does. But that's not the right line. Fortunately, no runs. He is bowling the same way how Ravindra Jadeja bowls. Tries to cram the batsman, tries to bowl that tight line, and tries to bowl very quick economical overs. See, short run up, comes in and bowls quickly. He's taking some time to get his feel right. In fact, the batter is doing it smartly now, taking his time, not trying to hasten up with the game. That's what Ravindra Jadeja does. Just comes back to his place and bowls quickly. They need 91 in the next 76 balls. Somewhere close to 7 runs per over now. That's beautifully turned away. Again the line wrong. Down the leg side, a couple of runs. In fact, it will go for 1, 2, 3 runs. The Dynamites doing it very methodically. They need 7 runs per over. They are going at 7 runs per over. Nothing less, nothing more. Exactly around that 7 runs per over mark. And if they bat this way, they normally bat. DPX Dynamites would just confirm their place. This is the runner-up of last year, HE Warriors, and the defending champions are going to come next, TVX Tufanis. So Tufanis versus Vipsa Warriors.
But that's a chance. That would be up and over, in fact. A full toss. Krunal just erring on line. This time erring on length. That's beautifully bowled. That's a wide. That's going to help. The score is 53 now. 53 for 2. They're motoring along exactly at 7 runs per over. Bhavin has taken good care of the scoring. In fact, he has raised away to 12 of just 8 balls. It's going faster than Chintan even. Oh, that's beautifully played. What a good shot. Fantastic cover drive. Will it go all the way? That's the only question. Yes, it does. That's a KD Corporation. Fantastic cover drive. Crisp as you get. Beautifully hit. Goes for a boundary. Fantastic shot that was. That was a KD Corporation boundary. 58 for 2. It is. And that's the over. I think the umpires will just confirm that. Yes, that's it. That's the over. Score at the end of over number 8 is 58 for the loss of 2 wickets. So Jinharsh Timken Ador Cup 2023 is proudly sponsored by Jinharsh Industrial Private Limited, Jai Prakash Wasa and Mr. Girish Wasa, DYZB Bearings India Solution, Mr. Rakesh Wagila, Mr. Nishant Apparel, sponsor Navkar Enterprise, Mr. Prakash Vilakya, Sagar Vilakya, team sponsor Vipsa Warriors, Doshi Brothers Marketing Private Limited, HMS Auditors, Mr. Mayank, Mr. Jinay and Mr. Hadik, KK Smashers, KK Engineering, Mr. Lalit Ketan, Ankit Ketan, HE Warriors, Hasti Engineering, Mr. Nirav Shah, TUX to Fund, Mr. Kautik and Mr. Hekni Gilani, DPX Dynamic, Dia Internet, Mr. Parinam, Mr. Deepak, Ball and Kit sponsor CME, Boundaries sponsored by KD Corporation, Wicket sponsored by Excel, the food sponsored by DYZB Bearings Private Limited, YouTube Live sponsors Mr. Bhabi Impex, Chitresh Udani, Mr. NK Trading, Sri Sham Impex, Mr. Ajay Agarwal. It's a couple of runs in the first ball. Kumar Bagadia, he comes in to bowl. The left arm batsman, he bowls with right hand. Oh, that's a one-handed pull shot. It goes for a couple of. Will he go for the third one on the throw? No, he doesn't. He goes decide to go again. Chintan wanted. Chintan is a brilliant runner. He's super fit. Yeah, this look at the partnership of 30 of just 18 balls. The important player for that contribution is the man on your screen, Bhavin Mehta. In fact, he's a non-striking. Look at him race. Look at the understanding between them two. Stealing the run underneath their noses. Aankhon ke niche se surma nikal lena. That kind of stuff that was. (63 for 2). We are into the 9th over. This is brilliant stuff. They are going above 7 runs per over now. They need 77 in the next 69 balls, which is going to be easy
if they didn't lose a lot of wickets, because Neil's still there and Bhavin is looking superb. He gave away a lot of runs, 41 while bowling, but he's making more than up for that. It's giving the taste of their own medicine back to the opposition team, and Bhavin is giving in good company. Chintan is giving good company, 14 of 14. The 5 runs he has conceded so far in the first 3 balls. That's nicely bowled. Good full in swinging ball. Oh, that's a cracking shot down the ground. Will it go all the way? Oh, that is super stuff in fielding. He saved a certain boundary. Good work over there. The score moves on to 64. The wicketkeeper is happy with the effort. And Bhavin Mehta is looking dangerous. And he's looking superb without any difficulty. He has got all those runs. As prime all-rounder who just prides his game, has been taken for a few runs in bowling, but he's giving it back in the right manner. 64 for 2. They are above 7 runs per over now when it comes to run rate. Required run rate is less than 7 now. That's a beautiful flick. Will it go all the way? Sandeep has to do a lot of work. The ball will just go and stop over there, and they come back for the third. That is super stuff from Chintan. The score at the end of over number 9 is 67 for the loss of 2 wickets. Are back live VR, and it's 67 for 2. They need 73 runs in the next 66 balls, which is less than 7 runs per over. They need a few wickets. Nirav needs a few wickets, but this man Chintan has run so very well. Bhavin has played so very well after he has come. He has hit some delightful strokes. He's got some important boundaries and sixes. KD Corporation boundaries and sixes. They looked very good, in a very good position to win this one. They need a couple of quick wickets. So 67 for 2 is what the score is. Now guys, those who are watching the game out, you can put in your reactions, your comments, and what you feel about the game, and I'll just read them out for you, so that we'll just get connected and you can ask a few questions, and we'll just try and see what we can get about you from the ground itself. That's nicely bowled. Coming to that first half, remember they got 61-62 runs in the first 10 overs. These guys are slightly ahead. Things can change if they get a couple of quick wickets, especially of these two guys who are playing well. That's a chance, that's a chance. Not a good throw, very weak throw. The ball might have just slipped out of his hands. Not happy would be Sandeep with that effort. He has to get every reason to be disappointed, but there was a chance to get a run out. They need 72 in the next 64.
So halfway through, they've got half the runs, more than half actually. If you talk about the run rate, they have gone just above 7, which is super. Getting his field right. He's got a lot of production. He's got a square leg. He's got a short point. Straight to the fielder. Still they get a single. Sandeep is not happy. He won't be happy with the singles being given away. You need to be alert and stop this from going for runs. That's what he must be telling his guys without telling. His body language suggests that he wants them to be slightly quicker, Zapko, and coming in to stop those singles from being taken easily. It's 71 needed now. That's beautifully driven. The ball is racing towards the covers region for a single. 70 for 2 now. 58 balls done. They've got 70. 62 balls remaining. They need 70. The difference between the number of balls and the runs remaining is just 8 now. Something which was 18, around 20 in the beginning. In fact, it is of 12 now. 71 balls, 70 runs to win. Exactly, sorry, 61 balls, 70 to win. Exactly 7 runs per over from here on. Maybe shade under, but with this next dot ball, if it goes for a dot ball, it will be exactly 7 runs per over needed. So they need exactly 69 runs in the next 10. 6.9 runs from over needed from half the overs done. Slightly more than half the runs are being taken away. They need exactly 69 runs in the next 10.
सो फिलहाल तो जबरदस्त पकड़ बनाई है इस मैच पे, 60 रन मात्र की दूरी है 54 गेंदों में। तो इस मैच को इनके जडेजा ये गेम टर्न करते क्या देखें। लेफ्ट आर्म स्पिनर है कुणाल शाह, सामने होंगे चिंतन और भाविन। क्या जबरदस्त पार्टनरशिप हुई इन दोनों के बीच में, और यही दोनों ही अपनी टीम की नैया पार कर सकेंगे। बहुत ही बेहतरीन वक्त है आज खेलने का। ये विंटर जिसे कहते हैं, ठंडी का मौसम है, अच्छी गुलाबी ठंडी में अब ये दोपहर हो चुकी है, और बहुत ही ज़बरदस्त ग्राउंड है। अब अगर ग्राउंड पर जाकर देखोगे तो बहुत ही हरा भरा ग्राउंड है, और लंबी चौड़ी बाउंड्रीज है। तो आप बहुत ज़्यादा एरिया आपको 2 रन 3 रन निकालने के लिए, चौके छक्के मारने के लिए। सामने की बाउंड्रीज उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन साइड की जो बाउंड्रीज है बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। और बॉल बिल्कुल ऐसे लगता है कि कारपेट बिछा के रखा है, जो उसमें से बहुत तेज़ी से भाग निकलती है गेंद, और उसे खेलने का कुछ और ही मज़ा है। एक इंटरनेशनल ग्राउंड में खेलने का आपको अनुभूति होगी। और ये शॉर्ट पिच गेंद, क्या इंपॉर्टेंट बाउंड्री है ये, फैंटास्टिक। केडी कॉर्पोरेशन चौका, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केडी कॉर्पोरेशन चौका, बिल्कुल सही समय पर आता हुआ। और चिंतन ने आके इस गेम की दशा और दिशा ही बदल दी है। देखो बल्लेबाजी में आने के बाद उन्होंने जो निरंतरता से प्रयास किया है कि लगातार रन्स बनाते रहे। शॉर्ट पिच गेंद को परखा, थोड़े से पीछे चले गए, बैकफुट पर जाके शफल किया और उसको भेज दिया स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। 84 पे तो 11.1 ओवर्स के बाद 56 रन मात्र चाहिए अब 53 गेंदों में। 84 पे 2 तैयार नहीं है बिल्कुल। क्या गेंद थी देखिए। चिंतन शायद थोड़े से नाराज है कि कोई खिलाड़ी उनको गेंद डालते वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे थे। देखिए चौका आने के बाद ज़्यादा प्रयास नहीं करते, हर ओवर में एक चौका जड़ने का प्रयास होता है। अगर आप चौका जड़ ले तो 1-2 डॉट्स भी चले आए तो 7-8 रन हर ओवर में आ रहे हैं। तो अच्छी बल्लेबाजी हो रही है जिसमें हर ओवर में एक चौके की तलाश भी है, और सिंगल्स डबल्स लेके जो स्ट्राइक है उसको रोटेट भी कर रहे हैं। मतलब इक्का दुक्का रन लेके जो स्कोर बोर्ड है उसको ये शॉट उतना अच्छा नहीं था, कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, जगह से ही शॉट खेलने का प्रयास किया था। पहले गेंद पे चौका खाने के बाद क्या बेहतरीन कमबैक किया है। 6.5 रन प्रति ओवर चाहिए, लेकिन अभी भी इस मैच में अगर लगातार 2 विकेट्स आ जाए तो मैच बन सकता है। ये मौका था स्टंपिंग का, शायद कैच भी थी, एज था, निकल गया सुमीत के हाथों से। ये कृणाल को गेंदबाजी देने का निर्णय काफ़ी उचित। पहले ओवर में 10 रन खर्च किए, लेकिन दूसरे ओवर में चौका खाने के बावजूद 3 बेहतरीन गेंदे, और थोड़ी सी मुसीबत में दिख रहे हैं चिंतन कृणाल के खिलाफ। कैच, काफ़ी अच्छा कैच होता, लो डाउन ये कैच। फिर एक बार अगर हम उनको देखें रिप्ले तो कैच का प्रयास ज़रूर था, कैच होते होते रह गया। देवांश वहां पर अच्छे मुस्तैद खिलाड़ी है, 2 अवसर उनके पास गए, तीसरी बार वो आपको छोड़ेंगे नहीं, और करीब आ चुके हैं वो। और ये खराब गेंद, ये जा रही है सिर्फ 1 रन के लिए, खुश नसीब समझेंगे कि 1 से ज़्यादा रन नहीं गए यहाँ पर। स्कोर 12 ओवर की समाप्ति पर 85 फॉर 2। 7 रन की औसत जरूरी है, और 7 रन की औसत से ही जा रहे हैं। जिनहर्ष टिमकन अडोर कप 2023, इस प्रतियोगिता में जितने भी टीम्स पार्टिसिपेट की उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। शुरुआत का दौर था जो गेंदबाजों का था, और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहा हमने ज़बरदस्त बल्लेबाजी भी देखी। और इसमें हमने देखा है कि ज़्यादा जो अनुभवी खिलाड़ी है, जो 50 के ऊपर है, उनका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी सराहनीय रहा था। तो एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें आपको 19-20 साल के लड़के भी दिखाई देंगे, 30-35 साल के जवान भी दिखाई देंगे, और उसके साथ 60 से 65 के खिलाड़ी भी दिखाई। ये ऊंचा शॉट है, मौका है यहाँ पर,
लेकिन मौका होगा दर्शकों को। खिलाड़ी बने दर्शक कहते हैं, दर्शक बने खिलाड़ी। 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचेगा 91 पर। बेहतरीन कवर्स में मारा हुआ छक्का। उतना आसान नहीं होता इनसाइड आउट का छक्का मारना, लेकिन चिंतन ने इस मैच में बिल्कुल अपनी बल्लेबाजी से गेम का रुख ही बदल दिया, मैच को आसान करते हुए और आक्रामक रूप से जाते हुए। बैट गेंद लगी पैड स्कोर स्टंप, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया है। उन्होंने अपना काम कर दिया, अपनी टीम को अच्छी पोजीशन में ला के रखा है और मात्र अब दूरी है 49 रन की, 49 रन की 46 गेंदों में। ये आया एक्सेल विकेट पावर्ड बाय वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज। काफी उचित समय पर आया हुआ ये काफी बड़ी विकेट, एक्सेल विकेट पावर्ड बाय वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज। 91 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। क्या वो नील को भेजेंगे? अगला बल्लेबाज नील होगा। अगर नील को शायद वो पीछे रखना चाहेंगे, अभी कोई और बल्लेबाज जाएगा जो पारी को आगे ले जा सकेगा। यस, अच्छा निर्णय है। नहीं, नील को ही भेजा है, तो उनका सबसे जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है इस टीम का, सबसे बढ़िया बल्लेबाज, उसी को भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए इस इम्पोर्टेंट मौके पर। अगर मैं कप्तान हूँ तो शायद नील को अभी भी थोड़ा सा पीछे रख देता, क्योंकि यहाँ पर लगातार रनों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मात्र 49 रन करने हैं अब 46 गेंदों में। तो अगर यहाँ पर 6-7 रन का भी एवरेज आ जाता है तो कोई बात नहीं, नील आखिर के 3-4 ओवर्स में आके 30-35 रन भी बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर नील की विकेट चली जाती है तो दबाव आ जाएगा, क्योंकि नील और भाविन ये दो अगर फटाफट आउट हो जाते हैं तो शायद इस टीम पर दबाव हो सकता है। इनके पास बाकी भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये उनके दो ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, दो ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स। भाविन मेरे हिसाब से नील जितना ही सक्षम है, उनके लिए उतना दिन अच्छा नहीं गेंदबाजी से, लेकिन उतने ही कारगर और सक्षम है भाविन मेहता 20 रन 15 गेंदों पर। नील शाह नए बल्लेबाज और संदीप वलेचा छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद पर विकेट चटकाते हुए काफ़ी अच्छी इकोनॉमिकल गेंदबाजी के लिए माने जाते हैं। 20 रन पर है भाविन, नए बल्लेबाज नील शाह। ये लेग ब्रेक, क्या ये फिर एज थी, और उनको ये पता है कि अगर ये मैच उन्हें जीतना है तो इस बल्लेबाज को आउट करना ज़रूरी है। वॉज इट अ कैच? क्या वो एज था? ये एजेस को काफ़ी मुश्किल होते हैं, ये पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब विकेट कीपर के स्वरूप में काम करे। गेंद तेज़ी से निकल जाती है, ये सीधी डाली हुई गेंद, उतना सम्मान उसे देते हुए धीरे धीरे बिंदी गेंदी डालकर दबाव बनाना होगा, बिकॉज रन रेट का तो यहाँ पे मसला है नहीं। विकेट्स भी बहुत 3 ही गए हैं। देखो 12 खिलाड़ी यहाँ पर खेल सकते हैं इनके नियमों के अनुसार प्रतियोगिता के। सीधा देवांश की तरफ, इनफैक्ट कोई और खिलाड़ी है वहाँ पर। छक्का खाने के बाद अगली 4 गेंदें विकेट ... 91 पे 3, 12.5 ओवर्स। अब रनों के बीच में और जो गेंदे शेष है उनका अंतर वापस 6 का हो चुका है। वो अंतर कम से कम 10 का रखना पसंद करेंगे ताकि उनको कोई मौका मिले इस प्रतियोगिता में कम बैक करने का। अपने पहले रन के लिए गेंद को घुमा दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, ये थ्रो के ऊपर ही रन ले लिया है। 2 रन के साथ स्कोर जाएगा 93 पर 13 विकेट की समाप्ति पर। 37 रन चाहिए, माफ कीजिए 47 रन चाहिए आने वाली 42 गेंदों में। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आए कृणाल, क्या करते हैं वो देखना है अभी। कृणाल की गेंदबाजी इस मैच की दशा और दिशा निश्चित करेगी। कृणाल अगर अच्छा गेंदबाजी करते हैं तो इस मैच की का रुख बदलने का दमखम रखते हैं।
46 रन को दी हुई है अब 41 गेंदे में, 41 गेंदे और 46 रन। चौरानवे पे तीन है स्कोर। ओ ये बहुत करीब होगा, ये विकेट होगा। यस, काफी जबरदस्त डिसीजन, क्या गेंद थी ये। इसलिए मैंने कहा ये गेंदबाज इस मैच की दशा और दिशा को बदल सकता है। और कृणाल ने सही समय पर, सही वक्त पर, सही दिशा में गेंद फेंकी और सबसे बड़े बल्लेबाज को छलता किया। क्या बेहतरीन गेंद थी ये विद द आर्म गई और सामने वाली टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज की विकेट ली है उन्होंने। और अंपायर की उंगली सीधी आसमान की दिशा में चले गई थी जैसे ही वो गेंद जाके टकराई पैड से। बिल्कुल मिस कर रही थी ऑफ स्टंप, वो मिस कर रही थी लेग स्टंप, वो जाकर हिट करने वाले थी बीच वाले जो विकेट है उनमें जाकर। बेहतरीन गेंदबाज। अब इस मैच में चीजें बदलेंगी। अब इस मैच में थोड़ा सा अलग सा रंग चढ़ेगा। जो मैच बिल्कुल सा एक तरफा लग रहा था, इस मैच में कुछ नया हो रहा है। अब नए आने वाले बल्लेबाज अली असगर शिकारी। अब शिकारी का शिकार होता है या शिकारी सामने वाली टीम के गेंदबाजों की शिकार करता है, वो देखना है। तो 94 पे 4। काफी बेहतरीन ये ओवर। कृणाल फिर एक बार मैच विनर साबित होते हुए अपनी टीम के लिए। ओ ये गेंद बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में जा रहे हैं 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा जहां पहुंचेगा 95 पर। 45 रनों की दूरी है जीत से और 38 गेंद। तो इस मैच का रुख बिल्कुल बदल गया है एक ओवर से। और एक ओवर जिसमें 2-3 रन जाए, फिर जो रनों का और गेंदों का जो अंतर है वो 10 का हो जाए तो चीजें थोड़ी सी मजेदार हो जाएंगी। तो तड़का तो लग चुका है, देखते हैं व्यंजन या जो रेसिपी है किसकी तरफ जाती है, किसकी दाल टेस्टी बनती है, किसकी फीकी, वो देखना है। ये फिर एक बार मौका, ये बहुत बड़ी अपील है। शायद ये गेंद लेग स्टंप पे निकल जाती या लेग स्टंप को थोड़ा सा हल्का सा चुंबन देके निकल जाती, लेकिन बहुत ही जबरदस्त निर्णय दिए। दोनों ही निर्णय अंपायर ने काफी जबरदस्त दिए। एलबीडब्ल्यू का जो डिसीजन दिया था वो भी योग्य था और ये भी काफी अच्छा डिसीजन। लग तो रहा था आउट है लेकिन गेंद लेग की तरफ जा रही थी, इसलिए काफी अच्छा डिसीजन अंपायर जो पारकर सर है उन्होंने दिया है। अंपायर भी काफी प्रेशर में होंगे। काफी बड़ा मैच, काफी अच्छा निर्णय दिया उन्होंने इस बार। 95 पे 4 आखिरी गेंद इस ओवर की। 37 गेंदे 45 रन। और ये काफी खराब शॉट वैसे। भाविन को इस समय विकेट पर रुकना जरूरी है, उन्हें ये चांसेस नहीं लेने चाहिए। 14 ओवर की समाप्ति, स्कोर सोचा है 96 पे 4, 6 ओवर शेष और 44 रनों की दूरी। काफी इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है। सो 44 रन चाहिए 36 गेंदों में, 6 ओवर 44 रन। सो 96 पे 4, 44 रन 36 गेंदों में। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग मजेदार ये मैच होने वाला है।
आगे बढ़ गए, ओ क्या बेहतरीन, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस है यहां पर, ये बहुत 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 बड़ी विकेट, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, सुपर एक्सेल विकेट, क्या विकेट थी ये, एक्सेल विकेट स्पॉन्सर्ड बाय वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज। और ये बहुत ही उम्दा फील्डिंग, भाविन वहां पर है वो अच्छी बात है, लेकिन अली असगर शिकारी जो अच्छे ऑलराउंडर हैं, जो पहले मैच में सलामी बल्लेबाज बन के आए थे, इस बार वो आउट होकर वापस जाएंगे, एक रन चुराने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा चुके हैं। मुझे लगा वो भाविन की विकेट थी, भाविन इस मैच की का जो है निर्णायक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। अब जब नील आउट हो चुके हैं, बाकी प्लेयर्स आउट हो चुके हैं, देखिए इस मैच में बिल्कुल पासा पलट चुका है। तो इसलिए कहते हैं कि लाइफ में और क्रिकेट में कभी भी हार नहीं मारनी चाहिए थी। ऑलमोस्ट इस चीज़ को बिल्कुल भी मौका नहीं था, जब उनके जो बल्लेबाज जा रहे थे बहुत अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, चिंतन वो अच्छी तरह से जा रहे थे, काफ़ी कम रन चाहिए थे, फिर बाद में आउट हो गए नील शाह जो उनका हुक्म का इक्का है, वो आउट हो गए, और अभी आउट हो गए अली असगर। तो लगातार 3 विकेट्स जाने के बाद एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा सामने वाली टीम में आ गई है। तब भाविन पर जिम्मेदारी, अगर मैं ये सोचता हूँ इस मैच को जीतना या हारना है, तो उसका सबसे बड़ा जो यहाँ पर पहलू होने वाला है वो होगा भाविन मेहता। भाविन मेहता इस मैच को जिता सकता है। भाविन मेहता रुक गए तो शायद डीपीएक्स डायनामाइट्स फाइनल में जाने वाली पहली टीम होगी, लेकिन एचई वॉरियर्स ये लगातार दूसरे साल भी अगर इसमें प्रवेश करना चाहती है तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है। क्या बेहतरीन शॉट है ये, लेकिन थोड़ा सा झुकना ज़रूरी था। साउथ की मूवी आई थी जिसमें कहा गया था झुकेगा नहीं, लेकिन यहाँ कर झुकोगे नहीं तो काफ़ी रन कंसीड करोगे। कुमार बगाड़िया अपना दूसरा ओवर फेंकते हुए, देखिए आप निरंतरता से प्रयास करते रहोगे तो आपके लिए सुनहरे मौके खुलेंगे, आपके लिए अवसर आएंगे जिसमें आपको छोटी सी दरार मिलेगी, उस दरार को ही आपको बड़ी कर कर अपना दरवाज़ा करना है, अपना रास्ता बनाना है। बिल्कुल यही कर रहा है इस बार एच वॉरियर्स। ये गेंद थोड़ी सी अनइवन बाउंस हो गई, कुछ अलग सा बाउंस दिखाते हैं यहाँ पे, जो टेनिस बॉल की तरह गेंद बाउंस हो गए। जनरली यहाँ की जो विकेट होते हैं पीछे से होते काफ़ी ट्रू होते हैं, लेकिन इस विकेट थोड़ी सी तैर के आ रही है और एक दो जगह पर गेंद थोड़ी सी अलग सी उछल के आ रही है। ये कब काफ़ी कम बार होता है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सपाट और अच्छी विकेट्स होते हैं, जहाँ पर इस तरह की क्रिकेट के लिए काफ़ी उपयुक्त ये विकेट से, जहां पर खतरा कम होता है खिलाड़ियों के लिए। क्या शॉट है ये, बिल्कुल हल्के हाथे से खेला हुआ, जो काम सुई से होता है उसके लिए तलवार की क्या जरूरत। क्या बेहतरीन ये शॉट था, ये रिप्ले देखिए एक बार फिर से, क्या बेहतरीन ये शॉट था। आप खुश हो जाएंगे शॉट को देखें, देखिए इस शॉट को, क्या देखिए, हल्का नज़ाकत से भरा हुआ, कलाइयों का भरपूर उपयोग, हल्का सा बस गेंद को सहला दिया, बड़े प्यार से जैसे एक चुंबन दे दिया उसके गालों पर गेंद के, और 4 रन थर्ड मैन की दिशा में। बेहतरीन शॉट, इसलिए कहा जो काम सुई से होता है उसे तलवार की क्या ज़रूरत है। कई बार वो हथौड़ा हाथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा सहला देना भी काफ़ी उपयुक्त हो जाता है। फिर एक बार उसी शॉट का प्रयास, लेकिन इस बार ज़्यादा जगह नहीं थी। देखो इस मैच कभी इस पार जा रहा है, कभी उस पार जा रहा है। 101 जिसे एक शुभ आंकड़ा माना जाता है हिंदुओं में जब आप दक्षिणा लेते हैं, 101 पे 5 है स्कोर अब। और गेंदें कितनी हुई हैं, तो हुई है 89। तो आने वाली 31 गेंदों में अब रन बनाने हैं 35, माफ़ कीजिए 39, मतलब 39 रन, 31 गेंद, रनों और गेंदों का अंतर 8 का हो गया है अब। और क्या शॉट था ये, लेकिन बहुत बुरी तरह से लगा है। इनके कंधों पर जिम्मेदारी इस टूर्नामेंट को चलाने की, लेकिन इस बार उनके कदमों में थोड़ी सी चोट आई होगी। 15 ओवर की समाप्ति पर 102, 38 रन चाहिए 30 गेंदों में, ये मैच किसी भी तरफ घूम सकता है। जब तक भाविन है तब तक मैच है। जाने का है क्या तेरे को भी ट्रैकिंग? जाते रहते क्या बात है, ये सीजन नहीं गया, टाइम नहीं मिला। उसका एक बार तुमको क्रेज लग गया तो
बैक लाइव वी आर, बहुत ही ज़बरदस्त ये आखिर के 30 गेंदें होने वाली हैं, भरपूर मनोरंजन होगा और देखना होगा कि कौन सी टीम पहली टीम होती है जो अंतिम मैच के लिए अपने आप की जगह निश्चित करती है। तो ये मैच है टिकट टू फिनाले जिसे कहते हैं, टिकट है ये अंतिम मैच में जाने के लिए। वो एक पड़ाव दूर है इस चमचमाती ट्रॉफी से। जिनहर्ष टिमकेन अडोर का ये गेंद वाइड होगी, निश्चित वाइड होगी। ये गेंदबाज है जिसने इस मैच में रंगत लाई। इन्होंने मात्र एक ही विकेट चटकाया, लेकिन सबसे बड़ा विकेट नील शाह का। और गेंदबाजी देखो, पहले ओवर में उन्होंने 10 रन खर्च किए थे, अगले जो उन्होंने 13 गेंदे या 12 गेंदे फेंके उसमें 9 रन खर्च किए। तो ये कृणाल शाह कर सकते हैं। और कृणाल को गेंदबाजी देने का निर्णय दिया था संदीप ने। उन्होंने कहा था नीरव से कि उनको गेंदबाजी दीजिए। और क्या शॉट है ये, हल्के हाथों से खेल के निकाला, इसलिए भाविन का वहां पर रुकना कितना जरूरी है आपको पता चलेगा। आने वाली 29 गेंदे और रन बनाने 36 का आंकड़ा इंडिया में। भाई जिसी के साथ किसी की लड़ाई हो जाए आपकी तो आप कहते हैं उसके साथ 36 का आंकड़ा हो गया। 36 है, 17 है, ये काफ़ी अलग अलग नंबर्स है जिनसे कई सारी चीज़ें जुड़ती है। 36 का आंकड़ा होगा या मनों का मिलाप होगा, वो देखेंगे। मनों का मिलाप करवाने के लिए ये क्रिकेट के टूर्नामेंट इन सारे कमेटी मेंबर्स ने साथ में आके बनाए थे। ये मौका बन सकता है, ये शायद 2 वाइड्स होंगे। यस, 2 वाइड्स। इतनी अच्छी गेंदबाजी के बाद आप ये चीज़, अब तो हर एक छोटी छोटी चूक भी आपको जीत से दूर ले जाएगी। और इन सारे रनों की ज़रूरत है डीपीएक्स डायनामाइट्स को। दोनों हाथों से स्वीकृत करेंगे इस 2 रन वाइड्स को। बहुत ही मज़ेदार होने वाले आगे वाली गेंदें। देखो बिल्कुल 7 का ही एवरेज चल रहा है। ये शॉट अच्छा नहीं था क्योंकि वाइड हो सकता था, लेकिन हल्के हाथों से स्वीप किया सूर्य कुमार यादव की तरह। ये गेंद जाएगी सीधा 4 रनों के लिए। अपने हाथ से अपना जो उन्होंने महल बनाया था उसे ढा रहे हैं। इस 4 रनों के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं, भाविन है तो मुमकिन है। कहा जाता था कई बार मोदी है तो मुमकिन है, यहां पर भाविन है तो मुमकिन है। 110 पे 5, केडी कॉर्पोरेशन बेहतरीन चौका, उचित समय पे उचित ये चौका। रनों और गेंदों के बीच का अंतर मात्र 2 का करके रख दिया। इन लगातार आने वाले 7 रनों ने 2 गेंदों पर ही 7 रन आ गए, 8 रन आ गए। इतनी बेहतरीन गेंदबाजी आखिरी पड़ाव में आकर लड़खड़ा गए हैं ये गेंदबाज। पहला ओवर उतना अच्छा नहीं था, दूसरा तीसरा ओवर लाजवाब, और चौथे ओवर में थोड़ी सी चूक कर बैठे कृणाल, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि ये विकेट निकाल पाएंगे। ये क्रैकिंग शॉट है, ये जाएगा सीधा। खिलाड़ी ओ माय गॉड, ये ऐसी चूक करेंगे तो आपकी जगह निश्चित नहीं होती है अंतिम में 4 में। ये इसलिए मैं कह रहा था कि भाविन इस मैच को बदलने का दमखम रखते हैं। भाविन मेहता 36 रन 26 गेंदों में। ऐसे समय पर जब लगातार विकेट जा रही है, बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है और जगह निश्चित कर रहा है। डायनामाइट्स की अंतिम 4 में 26 रनों की दूरी है और 27 गेंदों का खेल शेष। और ये बोल्ड होते होते बचा है, लेकिन फिर एक बार भाग्य का साथ उसी को जो साहसी है। जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बिल्कुल उसी तरह से एक अंदरूनी किनारा 2 रनों के लिए जाता हुआ अब चीज़ें बदल चुकी है, पासा पलट चुका है। अब जो रन है वो कम हो चुके हैं। 1 शॉट, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। सीसीटीवी अंपायर से दोनों अंपायर छोटी भी चूक करेंगे तो वो पकड़ लेते हैं। एक ही रन मिलेगा मात्र यहाँ पर। 115, अभी भी 25 रन चाहिए। ये एक बहुत ऊंचा मारा है, ये बहुत लंबा मारा है। ये गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। ये निर्णायक ओवर है। जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने धोखा दे दिया। वो एक सुनील शेट्टी की मूवी आपको याद आई होगी जिसमें धड़कन मूवी में कहा जाता, हमो तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। बिल्कुल उसी तरह का कुछ प्रयास हो चुका है। जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है ना, वही से धोखा हो जाता है। तो ये कोई रोमांटिक लव स्टोरी की बात नहीं कर रहा। कृणाल क्या गेंदबाज है, पूरी टूर्नामेंट में आपने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी गेंदबाजी की, वहीं पर आप चूक कर गए। फुल टॉस डाल दिए, 2 गेंदे राउंड द लेग साइड डाल दिए। मात्र 18 रनों की दूरी है 24 गेंदों में, 25 गेंदों में आप काफी महंगा ओवर। 2 चौके 1 छक्का और 2 वाइड्स। फिर एक बार सूर्य कुमार यादव की तरह इनकी बैट घूम रही है। देखो आप पूरा वेट उस शॉट के पीछे डाल रहे हैं। 2 रनों के साथ जीत
को और पास लाते हुए जोश सुनाई दे रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है, क्योंकि डायनामाइट्स का डायनामाइट एक्सप्लोड हो रहा है। आने वाली 4 ओवर और रन चाहिए मात्र 16। चुका है, चीजें बदल चुकी है, पासा पलट चुका है। लेकिन जब जहाज डूब रहा होता है तो जहाज का कप्तान आके उस चीज़ों को संभालने देखता है, और यही उसी तरह का ये कैप्टन है। ये शायद कैप्टन कुछ चमत्कार कर सकता है। यस, भाग्य लेकिन उनका साथ नहीं दे रहा है। राजेश और एक हमारे कमेटी मेंबर है, दोनों कमेटी मेंबर्स बहुत सारे दोनों ही टीम्स में हैं और एक दूसरे के खिलाफ है इस बार। 15 रनों की दूरी, 23 गेंदे 15 रन। क्या नीरव, एचई वॉरियर्स के कैप्टन, एचई हस्ती इंजीनियरिंग के ओनर, वही ओनर है, वही कैप्टन है, उन्हीं की टीम है ये, वो कुछ चमत्कार कर पाएंगे। ये शॉर्ट पिच गेंद, ये ठीक नहीं है इसके भाविन के खिलाफ, लेकिन क्या स्मार्ट बल्लेबाजी की है भाविन। मैंने कहा था कि भाविन एक ऐसा बल्लेबाज है, देखिए लाइफ में आपको मौके मिलते। भाविन ने 41 रन खर्च किए थे, 3 ओवर में उन्होंने 39 रन दिए, आखिर के ओवर में आके उन्होंने 2 रन दिए और 3 विकेट्स लिए। उसके बाद उनका वक्त बदल चुका है, और वक्त ऐसे बदला है कि पूरा पलट चुका है और सामने वाली टीम को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया उनके बल्लेबाजी ने भी। 48 रन 30 गेंदों में। तो कहा जाता है कि जब वक्त बदलता है, समय बदलता है, तो सारी चीज़ें अनुकूल हो जाती है। फिलहाल तो वक्त बदल चुका है, देखिए जहाँ पर एक भी रन नहीं था वहाँ पर 2 रन हो चुके हैं। तो भाग्य का साथ लेकिन उसी को मिलता है जो लगातार प्रयास करता है। तो भाविन ने अपने आप पे भरोसा रखा, 50 रन अपने पूरे किए मात्र 31 गेंदों में। एक ऐसा बल्लेबाज जिसका शुरुआती जो पहला हाफ था अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद 41 रन उनकी गेंदबाजी पे गए थे, लेकिन क्या कमबैक किया इस बल्लेबाज ने। इसी को कहते हैं चैंपियन मटेरियल। 11 रनों की दूरी। ये अंपायर के इशारे की राह देखेंगे, थोड़ा सा क्लोज था ये। इनफैक्ट यस, लेग बाइस, शायद लेग स्टंप पे जाके गेंद जा सकती थी। 130, 10 रनों की दूरी है और गेंदे शेष हैं 20। अब 3 रन प्रति ओवर चाहिए। राजेश स्ट्राइक पे होंगे। क्या शॉट है ये, ऊपर से निकल जाएगा। 6 रनों की दूरी। ये केडी कॉर्पोरेशन, जबरदस्त चौका, ये निर्णायक चौका था, उसने मुहर लगा दी जीत पर। अब मात्र औपचारिकता बाकी है। एक टीम जो पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम थी, जो दिख रही थी कि ये वापस एक बार फाइनल में प्रवेश करेगी, लेकिन उनका रास्ता भटक गया 16वीं ओवर में। और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 41 रन खर्च किए थे शुरुआती दौर में, दूसरे इनिंग में आकर उन्होंने क्या धमाकेदार बल्लेबाजी की है, अपनी टीम की जीत निश्चित की है। अब आने वाली 3 ओवर और रन बनाने हैं 5। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते हैं कि ये वो आखिरी होगा ओवर होगा या नहीं। इसके बाद होने वाली मैच जबरदस्त होगी। तूफानीज वर्सेस वॉरियर्स। इसलिए आखिरी 6 ओवर्स होते हैं या कुछ और चमत्कार बाकी है। शायद यहाँ पे चमत्कार ही बचा पाएगा। यहाँ पर उनको कुमार को हैट्रिक लेनी पड़ेगी, एक मेडन ओवर डालना पड़ेगा, लेकिन उसका समय खत्म हो चुका है। अब गेंद जारी 1 रन के लिए। भाविन चाहेंगे कि वो मैच को क्लोज कर दे। शायद आने वाली 2 गेंदें इस मैच की आखिरी गेंदें होंगी। शायद यही गेंद आखिरी गेंद भी हो सकती है। जीत के लिए 4 रनों की दूरी और शायद बॉलर के सर के ऊपर से चौका जाने के भरपूर आसार है यहां पर। यस, मिड विकेट का कॉर्नर रीजन में
वो कैच ड्रॉप हो चुका है, गेंद उन्हें जाके बहुत बुरी तरह से लगी है चेस्ट में। आशा करते कि वो उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए। देखिए शॉट बेहतरीन, अच्छा आगे आकर बढ़कर मारा हुआ शॉट, पहला मौका दिया इन्होंने सामने वाली टीम को, और गेंद प्रयास अच्छा था लेकिन गेंद जाकर सीधे उनके चेस्ट में लगी, बहुत बुरी तरह से उन्हें वो लगा है। क्या वो ठीक है? हाँ, आशा करते हैं कि वो खुशहाल है, बिकॉज गेंद काफ़ी ज़ोर से लगी होगी। सीधा जाकर वो गेंद उनके हृदय के पास लगी, बिल्कुल एग्जैक्टली एट द हार्ट, बिकॉज लेफ्ट की तरफ थी, ऊपर की तरफ चेस्ट में लगी गेंद। और अब 3 रन बनाने मात्र, 16 गेंदे और 3 रन। हस्ती इंजीनियरिंग जो लग रहा था एक समय पर कि ये मैच जीत जाएगी, और पासा पलट चुका है। कुणाल की इस ओवर में ये और एक विकेट। देवांश अच्छा कैच लेते हुए। सो 2-3 रनों की दूरी है, आउट हो चुके हैं बल्लेबाज। उनको आवाज है ना, अजय को फोन करो ना, फादर बोला इधर ही आगे आगे। यस, 3 रनों की दूरी है। अब नए बल्लेबाज आएंगे विकेट पर। और ये डाउन द ग्राउंड, ये एक जबरदस्त केडी कॉर्पोरेशन चौका, जीत निश्चित किए। देखिए वो जल्लोश, वो जोश, केडी कॉर्पोरेशन चौका देखिए, ये दौड़ कर आए हैं। और जिन्होंने फाइनल चौका मारा उनको तो देख रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी भाविन मेहता, भाविन के लिए ये मैच लाइफ के उन 2 हिस्सों की तरह की, जिसमें पहले हिस्से में वो लगातार मार खा रहे थे और दूसरे हिस्सों में आकर उन्होंने सूद समेत सारा जो मार खा दिया था उसके सामने वाली टीम को लौटा दिया है। तो भाविन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मैच, हम सब के लिए भी सबक लाइफ में, अगर हम थोड़े से पीछे भी हट जाते हैं तो आपको मौका मिलता है वापस आने का। सो अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ, आप फाइनल में जा रहे हैं। जिनहर्ष टिमकेन अडोर कप 2023 के पहले फाइनलिस्ट है डीपीएक्स डायनामाइट एक्सप्लोसिव टीम, और एक्सप्लोसिव टीम को बाहर कर दिया है एचई वॉरियर्स के। सो देखिए, ये देखने के लिए अच्छा मिलता है कि सारे प्लेयर्स एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। एक अच्छा गेम, एक बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया टीम को पराभूत करके अंतिम मैच में अपने टीम का प्रवेश निश्चित किया है।
सो तूफानी की तूफानी शुरुआत हुई है बिकॉज पहली ओवर में मिहिर ने अपना जलवा दिखा दिया, बहुत बड़ी विकेट। और ये बल्लेबाज जो नया आया है वो इस टीम का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में। जो टॉप 3 बल्लेबाज गेंदबाज हो, 2 मैन ऑफ द मैच शायद साहिल जीत चुके हैं और ये इनके मैच विनर है। तो ये खिलाड़ी इस टीम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साहिल पारेख, विप्सा वॉरियर्स पहले मैच में देखिए उन्होंने कुछ 112 ही रन बनाए थे, कुछ 80-90 पे उनके 9-10 विकेट चले गए थे। उसमें लास्ट में जो राजेंद्र आए थे उन्होंने जब अच्छी बल्लेबाजी की लास्ट विकेट के लिए, उसके बाद गेंदबाजी भी अच्छी करके उन्होंने वो मैच जीता था। 112 रन डिफेंड किए थे। अब ये खिलाड़ी महत्वपूर्ण है इस टीम के लिए, साहिल पारेख। उस मैच में भी उन्होंने 40-50 रन की पारी खेली थी। ये जबरदस्त गेंदबाजी, देखो नई गेंद क्या करती है। ऑफ स्टंप के बाहर अगर आप गेंद डालो और उसे अच्छी जगह पर उसको पिच करो तो अपने आप थोड़ी सी गेम थोड़ी सी हिलेगी। और उसी को खेलना बड़े से बड़े खिलाड़ियों के लिए भी आसान नहीं होता। कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, आप विश्व के सबसे अच्छे बल्लेबाज क्यों ना हो, जो नई गेंद होती है जब वो कुछ यहाँ वहाँ जब घूमती है गेंद तो मुश्किल हो जाता है अच्छे से अच्छे बैट्समैन के लिए। ये वाइड है, कोई बात नहीं, वाइड भी अगर चले जाए, लेकिन एक गेंद को बाहर निकाल रहे, एक गेंद को अंदर ला रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं, दुविधा में डाल रहे हैं बल्लेबाज साहिल पारेख को। दोनों गेंद, एक गेंद बाहर जाती हुई एक अंदर लाने का प्रयास था उनका, तो दोनों अवे गोइंग डिलीवरी और इनकमिंग डिलीवरी, बाहर जाने वाले अंदर वाले गेंद। और ये ओवर पिच गेंद थी सीधा खिलाड़ी के हाथ में, लेकिन ये अच्छा नहीं है। वहाँ पर क्षेत्र रक्षण अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दबाव नहीं बना पाएंगे। 2 रन से खाता खोलेंगे साहिल पारेख। साहिल की इनिंग्स इस सेकंड सेमीफाइनल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। एक टीम है रेड में जो है तूफानी, TUX तूफानी, कलर ही उनके तूफान का है लाल, और दूसरा है ये जो भगवा रंग है, केशरी रंग है, टीम विप्सा वॉरियर्स का। तो आज कौन सा रंग हो जाता है, ये भगवा रंग हो जाता है या लाल रंग, कौन सा रंग भारी पड़ेगा? देखिए दोनों ही टीम्स, द टीम इन रेड जिसे कहा जाएगा तूफानी, और द टीम इन सैफरन टीम विप्सा वॉरियर्स। लाल रंग अग्रेशन प्रतीक का प्रतीक माना जाए, दूसरा भगवा रंग जिसे हिंदू मान्यता में एक पवित्र रंग माना जाता है। हल्के हाथों से खेल चुका है, चेंज जा रही है सीधा फाइन लेग की दिशा में 1 रन के लिए। राजीव है वहां पर, सबसे धाकड़ बल्लेबाज रहे हैं इस टूर्नामेंट के। इनफैक्ट राजीव विकेटों के पीछे हैं। स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे पहला ही विकेट मिला है मिहिर को। मिहिर पहली ओवर करने आए थे, काफी अच्छा निर्णय। अब दूसरा ओवर फेंकने के लिए आएंगे गेंदबाज देवांग काफी अच्छी गेंद का। देवांग देखो आपको उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे गेंदबाज, जो ऑफ ब्रेक गेंद ज्यादा डालेंगे और उंगलियों को फेरेंगे जब नए गेंद पे, तो स्लोअर वंस आते, लूपी डिलीवरी आते उनकी। या ये दिखा, ये एक बार स्लोअर डलाने का प्रयास जरूर था, लेकिन गेंद जाएगी सीधा, रफू चक्कर हो गई स्क्वायर लेग की दिशा में 2 रनों के लिए। आप साहिल को ऐसे गेंदे नहीं डाल सकते। साहिल को अगर आप अच्छी गेंदे पर भी, चौका मारने वाला बल्लेबाज है, अगर उन्हें ऐसा ये गिफ्ट देंगे वो दोनों हाथ से स्वीकृत करेंगे। 8 रन के बाद इसी लगा जब बंद करना, 8 रन के बाद हम दूसरे इसे हम बंद कर दें। 8 रन हो चुका है और सामने होंगे बल्लेबाज साहिल। और देखिए ये स्लोअर वंस डालेंगे, उंगलियों को फेरेंगे। या देखिए इस बार क्षेत्र रक्षण जबरदस्त हुआ है। ये इनकी विशेषता है गेंदबाजी की। एक तरफ मिहिर है जो प्रॉपर एक मीडियम पेसर, एक सीमर की तरह गेंदबाजी करते हैं। दूसरी तरफ ये गेंदबाज है देवांग जो उंगलियों को फेरेंगे
और स्लोअर डिलीवरी, ऑफ ब्रेक पद्धति की गेंदबाजी करने का उनका प्रयास होता है लगातार। 8-1 है स्कोर। देखिए फिर एक बार उसी तरह से गेंदबाजी करने का प्रयास, स्लोअर ऑफ ब्रेक। एक ऐसे गेंदबाज से 90 के दशक में एक गेंदबाज से फैनी डिविलियर्स, सचिन तेंदुलकर ऑफ ब्रेक गेंदबाजी को थोड़े से उनको मुसीबत आती थी और दूसरी आती थी स्लोअर वन से। सचिन तेंदुलकर ने एक गेंदबाज में सबसे ज़्यादा परेशान किया था, वो फैनी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के थे। उनका अगर इकोनॉमी रेट अगर आप देखेंगे तो 4 रन और 3 रन के नीचे वो डाला करते थे और सचिन तेंदुलकर को पहले 10 ओवर में बिल्कुल बांध कर रखते थे एक ओवर से, वो थे फैनी डिविलियर्स। वो भी स्लोअर डिलीवरीज डालते थे और लगातार 6 के 6 स्लोअर ऑफ ब्रेक डालते थे सचिन को। सचिन को वो एक ऐसा गेंदबाज था जिन्होंने परेशान किया था और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और सचिन अगर किसी टाइप की गेंदबाजी से थोड़े से त्रस्त हुआ करते थे तो वो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी। और शकील मुश्ताक ने जब उनका विकेट लिया था, जब मैच थी इंडिया पाकिस्तान की जो टेस्ट मैच थी, उसमें उनकी जो 93 रन की जो इनिंग्स थी वो सबसे बेहतरीन मानी जाती है। जब इंडिया हार चुकी थी, लेकिन उस मैच में शकील मुश्ताक ने दूसरा अपना जो मिड ऑफ था उसको आधे एक 3/4 पोजीशन पे रखा था और उन्होंने सचिन की विकेट चटकाई थी 9 for 1। तो ये जो विशेष शैली है इनकी गेंदबाजी के, बिल्कुल फैनी डिविलियर्स की तरह स्लोअर डिलीवरीज डाल रहे। ये हल्के हाथों से खेला, बहुत ही समझदार सूझबूझ वाला बल्लेबाज है ये। कभी भी जाकर किसी गेंदबाज को कम समाक कर बड़ा हिट लगाने के प्रयास में नहीं होता। कभी भी आपको उसको ऐसे रैश शॉट, जिसे गलत शॉट्स कहते हैं कि सामने वाले को कमज़ोर समझकर खेलने वाले शॉट्स आपको देखने नहीं मिलेंगे आपको साहिल पारिक से। तो एक काफ़ी सुलझा हुआ बल्लेबाज है और जनरली चेस करने के लिए साहिल पारिक बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है। लेकिन जब आप बल्लेबाजी करते हो, जब नॉकआउट मैच होती है, तो अगर आपको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिले तो रन्स ऑन द बोर्ड जिसे कहते हैं कि जब आप स्कोर बना लेते हो तो चेस करना उतना आसान नहीं होता। 11 पे 1 सारे 1-1-1 के आंकड़े हैं। देखिए स्कोर कार्ड पे 11 पे 1 और 11 गेंदें भी हो चुकी है। 11 रन 1 विकेट और 11 गेंदें 1.5 ओवर्स, मतलब 11 गेंदें हो चुकी है, 11 रन हो चुके हैं और 1 विकेट भी गया। सब 1-1-1 है विकेट पे, स्कोर कार्ड पे ऑलमोस्ट। तो 12 रन 12 गेंदें और 1 विकेट के नुकसान पर तूफानीस, ये अच्छी गेंदबाजी के विप्सा वॉरियर्स हैं 12 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर। तो आखिरी ओवर में बिल्कुल पिटाई हुई थी इनकी पिछली मैच में, लेकिन उन्होंने जो दूसरा और तीसरा ओवर डाला था पिछली मैच में, प्रिंस दोषी ने, इस टीम के राजकुमार है गेंदबाजी बल्लेबाजी में प्रिंस दोषी, वो आएंगे गेंदबाजी करने के लिए विप्सा की तूफानी के लिए। ये कर सकते हैं प्रिंस इस बार उन्हें ज़्यादा गेंद को जो मूवमेंट है वो नहीं मिल रही है, गेंद उनकी लहरा नहीं रही है। लेकिन पहले मैच में, इसके पहले वाले मैच में जब गेंदबाजी की थी, लास्ट मैच था उसमें, उनकी गेंद बहुत ही बेहतरीन इन स्विंग हो रही थी। तो बहुत ही अच्छा उनको जो मूवमेंट जिसे कहते हैं, हवा में मूवमेंट भी मिल रहा था, उसके बाद गेंद पड़ने के बाद सीम भी हो रही थी। तो काफ़ी मुश्किलें आ रही थी बल्लेबाजों को। एक सबसे अच्छा ओवर उन्होंने इस टूर्नामेंट का डाला था। आप पिछले मैच में जाकर देखोगे तो पहला या दूसरा ओवर जो उनका था सबसे बेहतरीन ओवर था इस टूर्नामेंट का। उन्होंने 1 रन खर्च किया था, 1 विकेट भी चटकाया था उसमें। तो क्या वो फिर एक बार उस चीज़ की पुनरावृत्ति करेंगे? ये शॉट शायद आक्रामक भी था, तो फिर आगे बढ़ के डांसिंग डाउन द विकेट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वैसे आकर खेलकर बड़ा शॉट लगाने के बनस्पत उन्होंने उसको रोकना ज़्यादा समझदारी का समझा। देखो यॉर्क हो गए थे अपने आप और उन्होंने रोक दिया इस गेंद को। तो लगातार प्रयास है देखो बल्लेबाज का कि वो रनों की कोशिश करे। और कई बार आप जब शफल करते हैं, डाउन द ग्राउंड आते हैं, तो हर बार चौका छक्का जगने का इशारा नहीं होता, लेकिन गेंदबाजी की जो लय है, उसकी रिदम, उसको बिगाड़ने का भी प्रयास होता है। तो ये शॉर्टर गेंद है और ये शायद वाइड होगी। यस, काफ़ी बाहर ऑफ स्टंप के और उचित निर्णय। इनकी गेंद आज ज़्यादा लहरा नहीं रही है, लेकिन अगर आपको गेंद को स्विंग लाना है, आपको गेंद को सीम लाना है और उसके साथ आपको कुछ उसका असर देखना आपको चाहते हैं बहुत, तो आपको गेंद आगे करनी पड़ेगी। आप शॉर्ट पिच डाल के या गुड लेंथ पे डाल के नहीं कर सकते। जितनी गेंद आप आगे डालोगे उतना ही अवसर मिलेगा गेंद को घूमने का।
उतना ही स्विंग होगी और उतना ही सीम भी होगी गेंद। आपको थोड़ी सी आगे गेंद पिच करनी पड़ेगी। यस, बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल इस तरह। यॉर्कर थी ये, थोड़ी सी शायद ज़्यादा ऊपर थी, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पर आपको विकेट लेने का अवसर मिल सकता है। नया गेंद है, उसको आपने अच्छी तरह से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये वही समय है जब गेंदबाज को विकेट्स भी मिल सकते हैं, बल्लेबाजों को रन मिलने का भी भरपूर मौका होता है, क्योंकि नई गेंद होती है, बहुत तेज़ी से वो ट्रैवल करती है, लेकिन उतना ही मौका गेंदबाज को भी होता है विकेट सटकाने का। देखिए इसकी गेंद इनकी हिलेगी, लहराएगी, और ये वाइड का उचित निर्णय। गेंद अच्छी लहरा रही थी, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर से वो आउट स्विंगर भी गई, लेकिन दिशा थोड़ी सी गलत। लेकिन फिर एक बार वो रिदम दिख रहा है प्रिंस की गेंदबाजी में। वो गेंद जो घूम रही है या लहरा रही है, वो वापस एक बार वो स्विंग दिख रही है, वो लहर दिख रही है। तो शायद अगर ये गेंद, ये शायद विकेट पे स्लिप इनकी गेंदबाजी पे होना ज़रूरी है, वहाँ से गेंद जा सकती है। बेहतरीन यॉर्कर। इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया है प्रियेश। थोड़े से गड़बड़ा रहे, लेकिन ज़रूरत नहीं है उन्हें ज़्यादा जल्दबाजी करने के लिए, क्योंकि रन्स हो चुके हैं, 1 विकेट गंवा चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 60-70 रन आपको पहले 6 ओवर्स में ही बनाने हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी की थी तूफानी पिछले मैच में, 6 ओवर में 75 रन बना लिए थे उन्होंने। फिर एक बार अपने आप को यॉर्क कर रहे हैं, जितनी बार कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को यॉर्क कर रहे हैं। तो एक साधारण सी गेंद को भी एक बहुत अच्छी गेंद कर रहे हैं अपनी फुटवर्क से। कई बार फुटवर्क से आपको फ़ायदा होता है, लेकिन तीनों बार जो पिछले तीनों गेंदों पे आ गया है, उनसे उनका नुकसान ही हुआ है। तो अब पहले से जब आप सोच के निकल जाते हो कि मुझे ये करना है, तब मुसीबतें आ जाती है। आपको रुकना है, गेंद को परखना है, फिर आप अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गेंद को डिलीवर करने से पहले, आने से पहले ही वो बल्लेबाज अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। देखो फिर एक बार आपने आपको यॉर्क कर लिया, लेकिन इस बार कवर्स की दिशा में 1 रन मिलेगा प्रियेश को, और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15, 2 रन, 1 वाइड और 1 सिंगल इस ओवर में। आपको जो चित्र दिख रहे हैं वो JFSC के माध्यम से आपको, अगर आप नागदेवी के मैचेस को फॉलो कर रहे हैं, आने वाले 14-15 तारीख को भी GGYG कप होगा, तो इसी चैनल से आपको वो मैचेस देखने का अवसर मिलेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि जब ये क्रिकेट के मैचेस होते हैं, ऐसे सब टूर्नामेंट्स होते हैं, सारे लोग जो अपने ही समाज के हैं और शायद एक ही जगह से है, वो सारों को वापस एक जगह पर लाने का एक अवसर मिलता है। अलग अलग जो आयु के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, वो एक साथ है। कोई डॉक्टर होगा तो कोई सिविल इंजीनियर होगा, कोई स्टूडेंट होगा तो कोई साधारण सा एक छोटा काम करने वाला व्यक्ति होगा, कोई अच्छा बिजनेसमैन होगा, कोई उभरता हुआ बिजनेसमैन होगा। कई लोग जो अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग हिस्सों से आते हैं, वो एक साथ आते हैं। नए दोस्त बनते हैं, जो पुराने दोस्ती होती है वो और मजबूत होती है ऐसे टूर्नामेंट से। इसी के साथ जब ये खेलते हैं तो उसमें जब अंपायर्स होते हैं, कोई स्कोरर्स होते हैं, कई सारे हेल्पर बॉयज़ होते हैं, कई सारे लोग केटरिंग्स के लिए इस क्षेत्र से जुड़े होते हैं, कई सारे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े होते हैं, कोई ग्राउंड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये सारे लोगों का रोज़गार का भी साधन हो जाता है। इन सारों का भी घर चलता है जब ये सारे मैचेस टूर्नामेंट्स जब चलती हैं। ये एक बेहतरीन शॉट है, ये करारा प्रहार है, ये जाएगा सीधा 4 रनों के लिए। KDC जबरदस्त सुपर चौका, ये बहुत ही जबरदस्त चौका 4 रनों के लिए इस जबरदस्त अवसर पर। 4 KDC कॉर्पोरेशन जबरदस्त चौका। देखिए ये रन्स काफ़ी ज़रूरी होते, इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप लोग खेलते हैं तो कई घर चलते हैं। जब आप क्रिकेट खेलते, कई लोग खेलते हैं, आप खेलते हैं तो कई घर चलते हैं। 19 पे 1, चौथा ओवर। ये अच्छी गेंद थी, बेहतरीन कमबैक किया है देवांश ने। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत कम अवसर देते हैं चौके छक्के जड़ने का। पिछली बार गेंद उतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन प्रियेश लगातार उसके पहले वाले ओवर में जो आगे बढ़कर मारने का प्रयास कर रहे थे, उसी प्रयास में सफल हो गए, लेकिन उस ओवर में नहीं, इस ओवर में।
ये अच्छी गेंद थी, बैक फुट पर जाए या फ्रंट फुट पर जाए, लेकिन एक रन निकाल लिया उन्होंने। स्कोर 1 से आगे बढ़ेगा, जहां पहुंचेगा अब 20 पर। 24-1 देवांश अपना दूसरा ओवर लगातार फेंकते हुए, पहला ओवर डाला था मिहिर ने, दूसरा ओवर डाला था देवांश ने, तीसरा ओवर डाला था प्रिंस ने, और चौथे ओवर के लिए फिर एक बार देवांश को आमंत्रित किया गया है। देवांश अपनी पारी की चौथी ओवर फेंकते हुए। ये गेंद को पुल कर दिया, उतनी शॉट थी नहीं, लेकिन गेंद जाएगी काउ कॉर्नर रीजन में। एक जबर, ओ माय गॉड, आखिरी मौके पर आकर रौनक है वहां पर। 2 रनों को रोक लिया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचेगा 22 पर। इस चौथी ओवर की आखिरी गेंद, 23 गेंदों का खेल हो चुका है, 22 रन बना चुके हैं। सो एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। हालांकि पहले ही ओवर में दूसरे गेंद पर विकेट गई थी बहुत बड़ी, उसके बाद अपने आप को अच्छी तरह से संवारा है, और ये बल्लेबाज चौके छक्के जड़ सकते हैं। शायद ये आखिरी गेंद भी चौके के लिए जा सकती है। 22 रन हो चुके स्कोर कार्ड पर। फिर एक बार 2 रनों की गुंजाइश है वहां पर, नहीं, 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर की समाप्ति पर। सो विप्सा वॉरियर्स वर्सेस टीवीएक्स तूफानी। विप्सा वॉरियर्स 23 रन बना चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो इस मैच में 2 टीम्स लड़ रही हैं, वो लड़ेंगे जाकर डीपीएक्स डायनामाइट्स के साथ। तो डायनामाइट्स के साथ वॉरियर्स लड़ेंगे या तूफान टकराएगा, वो देखेंगे हम। 23 पे 1, 5वां ओवर। मिहिर, ये थोड़ा सा मुझे अजीब निर्णय लगा था जब इन्होंने इतना बेहतरीन पहला ओवर डाला था, जब गेंद को ज़बरदस्त तरीके से वो आउट स्विंगर कर रहे थे, उनको गेंदबाजी से हटाकर उन्होंने प्रिंस को आमंत्रित किया। और इसके सामने, इस बल्लेबाज के सामने तो प्रिंस को आपको लाना ही है। क्या बेहतरीन इनकमिंग डिलीवरी थी। देखिए गेंदबाजी के एक्शन बिल्कुल जो गेंदबाज है ना हेजलवुड, उनकी तरह है। हेजलवुड ज़्यादातर गेंदें इनकमिंग डिलीवरी, इन स्विंगर्स डालते हैं, और अवे गोइंग डिलीवर्स भी बहुत अच्छी तरह से डालते हैं आउट स्विंगर्स। वो हेजलवुड बहुत बड़े गेंदबाज है, लेकिन उनकी जो गेंदबाजी की शैली, शांत स्वभाव से गेंदबाजी का, मिहिर भी बिल्कुल उसी तरह के हैं। वो गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की, हेजलवुड उनकी तरह उनकी गेंदबाजी की शैली है। ये गेंद डाउन द लेग साइड है। हेजलवुड की और एक निशानी है कि वो बहुत ही सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हैं। आप उन्हें बिल्कुल नहीं पाएंगे कि उनकी गेंद इधर उधर जाएगी। वो बस उसी बॉक्स में, उसी कॉलम में, जैसे कहते हैं कॉइन बॉक्स बॉलिंग, वैसे आप एक छोटा सा कॉइन बॉक्स होता है जिसमें आप कॉइन डालते थे बचपन में, उसके अंदर जो बहुत कम जगह होती है, वैसे तरह की गेंदबाजी, उसी छोटी सी जगह में वो लगातार गेंदबाजी करेंगे। ये और एक बार वाइड होगी। क्रैम्प करने का प्रयास है, गेंदों को पैड्स पर और बैट के बीच में डालने का प्रयास है। उसी प्रयास में जब बल्लेबाज अंदर की तरफ आ जाता है तो गेंद लेग स्टंप की दिशा में निकल जाती है। जैसे वो नवाज की आपको इनिंग गेंदबाजी याद रही होगी। नवाज गेंदबाजी कर रहे थे रविचंद्रन अश्विन के सामने, जब हमें 1 गेंदों पे 2 रन की जरूरत थी, उन्होंने वाइड फेंक दिया, रविचंद्रन अश्विन अंदर आ गए थे। बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है कुछ, और ये कुछ अंदर ही ज़्यादा ही आ गए थे, लेकिन हल्के हाथों से फेर दिया है। यहाँ पे अच्छी तरह से भागेंगे तो 2 रन निश्चित होंगे, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर जाएगा 26 पर। 26 गेंदे 26 रन फिलहाल तो ये स्कोर कार्ड आपको दर्शाता हुआ। स्ट्राइक पर आएंगे प्रियेश जो लगातार कदमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके सामने एक ऐसा गेंदबाज जो गेंद को लहरा रहा है। पहली ओवर जिन्होंने काफ़ी तूफानी डाली थी, दूसरी ओवर में 2 वाइड्स डाल चुके हैं। ये शायद गेंद बाहर की तरफ निकलेगी। यस, अवे गोइंग डिलीवरी, एक अवे स्विंगर डालने का प्रयास किया था। साहिल के लिए उन्हें लगातार 3 गेंदे का ऐसा चयन किया था कि गेंद अंदर की तरफ आए।
प्रियेश के लिए थोड़ा सा गेंद बाहर ले जाने का प्रयास उनका। प्रियेश में देखेंगे तो काफ़ी सकारात्मकता आपको देखने मिले, काफ़ी पॉजिटिविटी देखने मिलेंगे। उनका फुटवर्क हो या कुछ भी हो, जो अप्रोच है, जो उनका जो चेहरे पे जो आत्मविश्वास दिखता है वो सराहनीय है। अब बहुत ही अच्छी तरह से गेंदों का सामना कर रहे हैं वो। देखिए आगे बढ़ रहे हैं और खेल रहे, भले वो उसमें रन आए या ना आए, लेकिन जो भी कर रहे हैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। और जब भी आप कोई चीज़ आत्मविश्वास से करते हो, खुद पे विश्वास रख के करते हो, उसका आपको निश्चित ही फल मिलता है। स्कोर जा पहुंचा है 26 पर और इस ओवर में अब तक रन आए हैं 3। कुछ चीज़ें बताते हुए, टिप्स देते हुए साहिल उन्हें से कह रहे होंगे अपनी जगह से खेलिए गेंदे, आगे बढ़कर हिट करने का प्रयास ना करें। हल्के हाथों से खेल दिया है। इस 1 रन के साथ स्कोर जाएगा 27 पर। इस ओवर की आखिरी गेंद उतनी अच्छी ओवर नहीं रही है जितनी अच्छी पहली ओवर थी। पहले ओवर में भले ही 6 रन खर्च किए उन्होंने, लेकिन क्या बेहतरीन विकेट ली थी, क्लीन बोल्ड कर दिया था बल्लेबाज को। 27 पे 1 आखिरी गेंद दूसरी ओवर की, प्रिंस की इस इनिंग्स की। 27 पे 1 इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए हैं। देखते हैं आखिरी गेंद पे विकेट चटकाते हैं या साहिल एक चौका जड़ देते हैं उनको। बिकॉज पावर प्ले की ओवर है तो हर गेंद पे चौका आने की गुंजाइश होती है, लेकिन इस बार गेंदबाजी इतनी सटीक हो रही है कि उतने मौके नहीं दे रहे वो। इस ओवर की आखिरी गेंद, 5वें ओवर की आखिरी गेंद, ये हल्के हाथों से, क्या बेहतरीन शॉट है ये, देखिए क्या खूबसूरती से वो खेला हुआ शॉट। और फुटबॉल फीफा 2022 वहाँ पे लियोनेल मेसी और एम्बापे का मिश्रण हो गए थे वो। 1 रन रोक दिया अपनी टीम के लिए। इन 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचेगा 30 पर 30, 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोर जा पहुंचा है 30 पर 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्टार्ट पे होंगे साहिल। प्रिंस अपनी दिशा से भटक रहे आज। थर्टी 31 फॉर 1, छठा ओवर पावर प्ले की, इस इनिंग्स के पावर प्ले की आखिरी 6 गेंदे। चौके आ सकते इस ओवर में काफ़ी। वेल लेफ्ट, काफ़ी अच्छा गेंद को लीव किया है, घूमने वाली गेंद। साहिल इस टीम की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप इस टीम को शरीर माना जाए, विवेक सुफानी को, तो इस टीम का जो हृदय है, जो इसका दिल है, वो है ये खिलाड़ी साहिल पारिक। साहिल पारिक का यहाँ पर विकेट पर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको दिल माने तो इस टीम की ये धड़कन है। हल्के हाथों से खेल दिया है, बहुत ही बेहतरीन कॉल। प्रियेश सराहना करने वाला एक ये रन था, बिकॉज रन काफ़ी रिस्की था, उतना अच्छा कॉल नहीं था, फिर भी अपने प्लेयर पर विश्वास उन्होंने दर्शाया और वो भाग निकले। 32 पे 1, ये काफ़ी ज़रूरी है। एक दूसरे पर विश्वास होना, एक दूसरे के कॉल का आपको रेस्पेक्ट करना, लेकिन आपको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि आपका जो पार्टनर है वो जो डेंजर एंड कहते हैं जिसमें धोखा होता है आउट होने का, वहाँ पर पहुँच जाए सावधानी से। 4 गेंदे शेष है, प्रियेश चौके की ले जाएंगे ज़रूर। और ये भाग्य का साथ उनको, स्लिप, इसलिए मैंने कहा प्रिंस की गेंदबाजी पर आपको स्लिप रखना ही होगा।
प्रिंस और मिहिर जब भी गेंदबाजी करेंगे तो आपको एक स्लिप रखने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये लगातार अवे गोइंग डिलीवरीज डालेंगे नए गेंद से, सिर्फ वो पहले 3 4 5 ओवर्स के लिए। उसके बाद आप नहीं रखेंगे खिलाड़ी तो भी चलेगा उस दिशा में। और ये चूक हो गए विकेट कीपर से, अंपायर का इशारे की राह देखेंगे, वाइड होंगे, 2 वाइड्स, लेकिन गेंद काफ़ी क्लोज थी लेग से, काफ़ी ज़्यादा शफल हो चुके थे। और जब भी आप ऐसे शॉट खेलेंगे तो आपका लेग स्टम्प उखड़ जाने का बहुत चांसेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें हो सकती थी अगर वो गेंद जाकर लेग स्टम्प के आसपास भी होती तो। व्हाट अ शॉट दिस इज, बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद जा रही है सीधा 4 रनों के लिए। लगातार प्रयास कर रहे थे प्रियेश, और उनके जो लगातार जो प्रयास था उन प्रयास को आखिरकार सफलता मिल गई है। उनको 4 रन आ चुके हैं। प्रियेश का ये पहला चौका, प्रियेश शाह, साहिल पारेख, स्कोर 39 हो चुका है। काफ़ी अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, भले ही वो 1 विकेट का नुकसान क्यों ना हुआ, ये एक अच्छी शुरुआत। 39 फॉर 1, आखिरी गेंद यॉर्क कर दिया, फिर एक अपने आप को आगे बढ़कर लगातार मारने का प्रयास। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जिन्हर्ष टिमकेन अडोर कप 2023, ये सेकंड सेमीफाइनल्स तूफानीज वर्सेस वॉरियर्स।
ये शॉट दो खिलाड़ियों के बीच में जाएगा, 50 रन पूरे होंगे टीम के, 50 फॉर 1। जबरदस्त शुरुआत, पहले विकेट खो जाने के बाद बेहतरीन कमबैक किया है। क्या बेहतरीन इस 50 की पार्टनरशिप पूरे हुए, 52 रन पार्टनरशिप, जस्ट 42 बॉल्स। बेहतरीन बल्लेबाजी इन दोनों की तरफ से, क्या जबरदस्त ये प्रहार था। 4 रन साहिल को, साहिल 29 पे जहां पहुंचे हैं। साहिल लगातार जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये और एक केडीसी चौका। साहिल पारेख 29 ओवर में एक चौका आ चुका है। मयांक शाह जिन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, मिहिर, मयांक, रौनक, इस टीम की गेंदबाजी एक से बढ़कर एक लाजवाब गेंदबाज है जो सीम अप गेंदबाजी करते हैं। लेकिन उनके सामने एक छोटे कद का खिलाड़ी जिसका कद बल्लेबाजी से काफ़ी बड़ा किया उन्होंने। उनकी बल्लेबाजी का कद काफ़ी ऊंचा है सारे खिलाड़ियों में, और क्या बल्लेबाजी करे देखो, काफ़ी आसानी से, जितनी सहजता से आप कोई काम करते हो ना, उतना ही आपका उसका कौशल्य सामने वाले के सामने प्रदर्शित होता है। कोई भी काम करते हो तो आप कितनी सहजता से, कितनी आसानी से करते हो, उससे मापदंड निश्चित होता है कि आपको उस चीज़ में महारत है या नहीं। अगर कोई बात आप बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही लचीले तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से पेश कर रहे हो, उसके विपरीत अगर बहुत आसानी से, सहजता से अगर वो चीज़ कर रहे हो, तो उसमें आपका महारत, आपकी कौशल्य वो ठीक तरह से प्रदर्शित होता है। बिल्कुल सहजता से, आराम से खेल रहे हैं ये बल्लेबाज साहिल पारेख। ये वाइड गेंद है। मयांक जिन्होंने पिछले मैचेस में काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की थी, इकोनॉमिकल गेंदबाजी की थी, कंजूसी से गेंदबाजी की थी, इस बार उन्हें प्रवृत्त किया है कि वो गेंदबाजी थोड़ी सी गलत करे। और जब गेंदबाजी पर आप दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो ख़राब गेंदें आएंगी आपकी दिशा में। अच्छी गेंदों को भी वो परिवर्तित कर रहे हैं चौके में, तो आपको मौके तो मिलेंगे। चौका इन्होंने ऑलरेडी एक जड़ चुके हैं, एक 2 रन का अच्छा शॉट भी खेला है, शायद और एक चौके के लिए जाएंगे साहिल। साहिल रुकने वाले नहीं है, 57 रन पे है वो, और अगर ये इन्हें लगातार गिफ्ट्स मिलते रहेंगे तो उन्हें वो दोनों हाथ से स्वीकार करेंगे। 58 पे 1 ये प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता के आयोजन में इन सारों ने काफ़ी मेहनत ली है। जो सारे बॉयज़ हैं आपके इस कमेटी मेंबर्स के, नागदेवी सेवा ग्रुप, NSG ग्रुप के, राजीव शाह, राजू टपारिया, विपुल दोषी, आश्रित शाह, कुमार बगाड़िया, सुमित सेठ, भाविन वोरा, गौरव बखाए, राजेश सरवैया, विपुल संघवी, इन सारों ने काफ़ी मेहनत ली है ताकि एक अच्छी प्रतियोगिता, एक अच्छी सी टूर्नामेंट आपके सामने आए। हर साल ये लगातार चौथा प्रयास है, और उनके जो प्रयासों को हमको अब सराहना करनी होगी, क्योंकि अगर आपके प्रयास में ईमानदारी है तो आपकी जो कार्य है वो निश्चित ही सफल होता है। 58 पे 1 आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बिंदी गेंद के 7 ओवर की समाप्ति, 58 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। इस प्रतियोगिता में जिन्होंने हमें स्पॉन्सर्स खाने के लिए स्पॉन्सर रहे, हमारे फूड स्पॉन्सर रहे हैं DYZV बेयरिंग्स इंडिया सॉल्यूशन से मिस्टर राकेश वाडेगा और मिस्टर निशांत शाह। ग्राउंड स्पॉन्सर्स है विकास एंटरप्राइज से मिस्टर विकास गुप्ता। अपैरल स्पॉन्सर्स कपड़ों के जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, सिर्फ कपड़े नहीं बाकी सारा किट भी, तो नौकर एंटरप्राइज मिस्टर प्रकाश बिलाखिया और मिस्टर सागर बिलाखिया। यूट्यूब के जो लाइव पिक्चर्स आ रहे हैं ये हमेशा हमारे साथ जुड़े हैं मास्टर एंड भाविंग्स के मिस्टर चित्रेश उड़ानी, मास्टर एंड केटरिंग के और श्री श्याम इम्पैक्स के मिस्टर अजय अग्रवाल। मीडिया पार्टनर्स पिछले साल हमसे जुड़े थे, इस साल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। QLH ऑटोमेशन सोल्यूशन के मिस्टर संजय शाह, कुंजल शाह, हरीश मेहता।
इस प्रतियोगिता के जो बॉल एंड किट स्पॉन्सर्स हैं हमारे CME चंद्रमौली एंटरप्राइजेस। ये स्मार्ट बल्लेबाजी देखो पूरी तरह से कवर कर रहे हैं गेंद को और वो निश्चित कर रहे कि अपनी विकेट ना गवाएं। क्या बात है, देखो साहिल काफी चतुर और चालाक और अलर्ट भी। वो दक्ष रहे तो उनको लक्ष्य भी मिल गया। 1 रन अतिरिक्त रन उनको मिल गया, उनको मिला, उनकी टीम को मिला है और प्रियेश को मिला है। तो लगातार एक दूसरे के साथ अच्छी सूझबूझ। ये बाहरी किनारा 1 रन के लिए जाएगा, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा, जा पहुंचेगा 61 पर। 61 फॉर 1। विकेट एंड प्राइज स्पॉन्सर्स हैं एक्सेल, वॉपेड ऑफ इंडस्ट्रीज के मिस्टर प्रतीक्षा, राहुल शाह। हर चौका छक्का होगा केडी कॉर्पोरेशन छक्का मिस्टर किरण वोरा केडी कॉर्पोरेशन के। हल्के हाथों से खेल दिया, चेंज आएगी मिड विकेट की दिशा में। पहली रन आसानी से पूरी करिए, वहां पर 1 ही रन मिलेगा, लेकिन जिस तरह से कलाइयों का इस्तेमाल करके वो गेंदे को धकेल रहे हैं तो उनको बड़ा सा एरिया मिल जाता है। सीधा लॉन्ग ऑन से लेके मिड विकेट काउ कॉर्नर से लेके स्क्वायर लेग तक जितनी आप कलाइयाँ मोड़ोगे उतनी वो ज़्यादा देन स्क्वायर की तरफ जाएगी। जितना आप सीधे हाथों से खेले सके तो वो गेंद आपको लॉन्ग ऑन से मिड विकेट के बीच में खेलने का मौका मिलेगा। तो आप गेंद को कहाँ मिलते हो, गेंद को कैसी दिशा में, कौन से मोमेंट पे आप अपना ग्रिप बदल के खिलाड़ियों का इस्तेमाल करके मोड़ते हो, वो उस खिलाड़ी के वहाँ पे मौजूदगी के ऊपर निर्भर होता है। 62 पे 1 स्ट्राइक पर होंगे। फिर एक बार प्रियेश जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, ये फिर एक बार चार्ज कर रहे हैं गेंद आने से पहले, और कई बार वो पहले से ही चार्ज करने की वजह से एक फुल टॉस गेंद को भी वो यॉर्क कर जा रहे हैं या कभी कभी लोअर फुल टॉस हो जा रही हो। तो देखिए पॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टिल रहना बहुत ज़रूरी है। आप आगे पीछे जा सकते हैं लेकिन आप शॉट खेलते हैं तो आपका बैलेंस रखना आपको ज़रूरी होता है। आपको उस वक्त एब्सोल्युटली स्टिल रहना ज़रूरी होता है। आपका ध्यान, आपकी पूरी बॉडी, आपका हाथ एक्सटेंशन हो जाना चाहिए, बैट आपकी हाथ का एक्सटेंशन हो जाना चाहिए। और ये देखो उचित सलाह उचित व्यक्ति से उचित समय पर अगर आपको मिले तो उसका उचित आपको फ़ायदा भी होता है। तो इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 63 पर 63। 7 रन प्रति ओवर की औसत से जा रही है दोनों खिलाड़ी। सुनील होलानी अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, इन्होंने 3 विकेट चटकाए थे, कुछ 25 रन देकर फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी करने का उनका प्रयास है। सेकेंड मैच में उन्होंने गेंदबाजी करके आखिर में आकर अच्छी गेंदबाजी की थी, आखिरी गेंद इस ओवर की। हल्के हाथों से खेल दिया। पहले रन जोर से लेंगे, दूसरे रन का प्रयास होगा ज़रूर और होना चाहिए था, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 64। 1 विकेट के नुकसान पे रन गति अगर देखने जाए तो वो है 7.16, 7.11 माफ कीजिए। देखने मिलेगा जयेंद्र का खेल और रौनक का खेल। रौनक फिलहाल उतने से कारगर साबित नहीं हुए, लेकिन जयेंद्र और रौनक पिता पुत्र की जोड़ी एक दूसरे के सामने है। महाभारत में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ था, लेकिन वहाँ पे अधर्म और अधर्म की लड़ाई थी। ये तो मैत्रीपूर्ण लड़ाई है और एक घर की लड़ाई है, भाइयों के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, मामा भांजे के बीच में, चाचा भतीजे के बीच में। और फिलहाल तो खुश होंगे पिता क्योंकि उनकी टीम काफ़ी अच्छे काम कर रही है और रौनक को गेंदबाजी में जल्द से आमंत्रित करना ज़रूरी है। ऋषि मेहता को आमंत्रित किया और ये गेंद जाएगी गैप में। पहली रन तेज़ी से लेना ज़रूरी था। प्रियेश और ऋषि मेहता, इनकी लड़ाई थोड़ी सी मज़ेदार होगी क्योंकि थोड़े से जल्दबाजी कर रहे हैं और वो थोड़े से अस्वस्थ है। बड़ी शॉट्स लगाएंगे ज़रूर इस ओवर में प्रियेश। साहिल उन्हें लगातार कह रहे कि विकेट ना अपना गाओ, अच्छी तरह से खेलो, जैसे खेल रहे वही काम करो, लेकिन ये बल्लेबाज बड़ी हिट्स के लिए जाएगा। प्रियेश इस ओवर में 1 ही रन से संतुष्ट, 66 स्कोर कार्ड पर, और 1 गेंद तो चौके के लिए बिल्कुल भेजेंगे और साहिल को अगर मौका मिला तो वो चौका जड़ेंगे ज़रूर।
4 गेंदें शेष, ये शायद अगली गेंद जा सकती है 4 रनों के लिए। बिल्कुल जा रही थी लेग स्टंप पर गेंद, मौका था 4 रन का और मौका था एलबीडब्ल्यू का भी। तो 66 फॉर 1, 3 गेंदें शेष। साहिर फिर एक बार प्रयास करेंगे, लेकिन इस बार क्रॉस बैटेड नहीं करेंगे और शायद मिड विकेट की दिशा में जा सकते हैं। नहीं, गेंदबाजी अच्छी हो रही है और अपील काफ़ी स्ट्रांग। अंपायर के इशारे कर रहा, देखेंगे बैट से गेंद निकल गई थी। 67 फॉर 1, आखिर की 2 गेंदें शेष इस ओवर की। काफ़ी बेहतरीन ओवर फेंका है, अब तक इन्होंने 3 रन मात्र खर्च किए। शायद प्रियेश लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस ओवर में रन ज़्यादा आए नहीं है, थोड़े से रनों की गति को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। काफ़ी बेहतरीन गेंद ऋषि मेहता, लेकिन फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं। 1 रन सामने वाली टीम को बिल्कुल गिफ्ट में दे दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जाएगा 68 पर। बेहतरीन ओवर जिसमें मात्र 5 रन खर्च किए हैं प्रियेश, माफ़ कीजिए, ऋषि मेहता ने। 4 रन, अभी भी 1 गेंद शेष है, तो अभी भी इस ओवर को बिगाड़ा जा सकता है शायद। 68 पर है, स्ट्राइक पे हैं साहिल पारेख, इस टूर्नामेंट के सबसे आला 3 खिलाड़ियों में से एक। ये खराब गेंद थी, ये वाइड ज़रूर होगी, शायद ज़्यादा वाइड्स की ले जाएगी, कम से कम 3 वाइड्स आएंगे इस पे। नहीं, 2 ही वाइड्स मिले। मौका था चौका मारने के लिए, लेकिन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचेगा अब 70 पर। 70 फॉर 1, आखिरी गेंद 10वें ओवर की। 10वें ओवर का मापदंड निश्चित करता है कि आपको अगले 10 ओवर में शायद उसमें 10-20 रन और जोड़ जाए, उतने रन हो ही जाते हैं। ये खराब गेंद थी, बहुत शॉर्ट गेंद थी और उतना नुकसान नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। 71 फॉर 1 एट द एंड ऑफ ओवर नंबर 10।
हेलो। हाँ हाँ, कौन कौन बोल रहे हैं? तो बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर प्रियेश जो काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी विकेट गंवाकर जा चुके हैं। जहाँ पे 6 रन आ चुके थे उसके बाद और एक बड़ा हिट लगाने के प्रयास में वो अपनी विकेट गंवाकर चले गए। लेकिन अब ये आएंगे इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन यंगस्टर्स में से एक, इस टीम की सबसे ज़बरदस्त ग्लैमरस खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जो गेंदबाजी में जिन्होंने अपने पहले 2 मैचेस में जौहर दिखाए थे, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी। इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी स्पेल डाली थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए थे एक मैच में, जब उतनी उनकी गेंदबाजी कारगर नहीं साबित हो पाई थी। एक मैच हार गए थे विप्सा वॉरियर्स, और विप्सा वॉरियर्स के लिए ये बल्लेबाज गेम चेंजर हो सकता है। एक मैच में उन्होंने 180 रन इनकी टीम के खिलाफ बनाए थे, उस मैच में विफल हो गए थे बल्ले और गेंद दोनों से भी। हाँ, ये अच्छी शुरुआत है, ये सूझबूझ भरी, ये दोनों खिलाड़ी साथ में होना बहुत ज़रूरी है। साहिल एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिस पर आप दारोमदार रख सकते हैं इस टीम को आगे ले जाने के लिए। ये देखिए इस टूर्नामेंट के हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं जिनहास, इनफैक्ट सीएमई हमारे बॉल और किट स्पॉन्सर्स चंद्रमौली एंटरप्राइजेस, और जिनहास 37 या 37 साल से इस बिजनेस में है। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स, हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स। और जिनहास अब फास्टर है, बेटर है, वाइडर है, और सारे क्षेत्रों में अपना नाम बना रहे लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज, मेटल, पेपर, पावर, माइनिंग, फील्डिंग और वेल्डिंग और रेलवेज के लिए। जिनास सॉल्यूशन इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो जिनास इज फास्टर, इट्स वाइडर, इट्स बिगर। तो वापस आ जाते हैं अपनी मैच की तरफ। 86 पे 2, 12 ओवर्स की, मतलब लाइक 7 के ऊपर थोड़ी सी रन संख्या उनकी चल रही है। दोनों ही मैचेस में 7 के आसपास रन बनाने का प्रयास। ये काफ़ी क्लोज था, बहुत लूज शॉट, जब आपका पिछला पैर बिल्कुल वहाँ से चल। देखिए ये साहिल का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साहिल उनको कुछ समझाएंगे कि आप ज़्यादा प्रयास ना करें और गेंद को आप लाइन में आके खेलिए, वही उनको समझा रहे होंगे कि दूर से लंबे शॉट्स लगाने से बेहतर है, बिग बूमिंग कवर ड्राइव जिसे कहते हैं वो खेलने से बेहतर है कि आप गेंद की लाइन में आए। तो देखो ये अनुभव है, जब लेग स्टंप के बाहर गार्ड लिया था उनको उन्होंने निर्देशित किया कि आप मिडिल स्टंप का गार्ड लीजिए ताकि गेंद की ज़्यादा कवरेज भागेगी। तो ये अनुभव का उपयोग होता है कि नया यंग युवा बल्लेबाज उसको गाइड कर रहे हैं, उसे दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। ये अच्छा लीव किया है गेंद को, गेंदबाजी अच्छी। पिछले मैच में इन्होंने 3 या 2 विकेट निकाले थे मात्र 27 रन खर्च करके, तो वो गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखने का प्रयास है। इस मैच में भी उन्होंने 2.2 ओवर्स में मात्र 10 रन खर्च किए हैं। तो पिछले मैच का अच्छा प्रदर्शन है, उसको लगातार जारी रखने का प्रयास है सुनील जी होलानी का। लेकिन यहाँ पर वत्सल का एक कड़वी चुनौती मिलेगी, शायद वो उन्हें चौका छक्का जड़ सकता है। ये अच्छा गेंद और बैकफुट पे जाके पंच कर दिया है, गेंद जाएगी सीधा देवांग की दिशा में। क्या सूझबूझ है इन दो खिलाड़ियों में, देखिए। एक सेकंड है सर। 88 पे 2। $88 for 2। थोड़ी सी चूक हो गई खिलाड़ी से, उसका पूरा भुगतान चुकाना पड़ा उनको। 88 for 2। स्ट्राइक पे होंगे वत्सल दोषी शुरुआती दौर में उनको। ये बेहतरीन कवर ड्राइव, इसी के लिए खिलाड़ी बहुत माना जाता है। वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद, क्या बेहतरीन कवर ड्राइव था। अमूमन वहाँ पर खिलाड़ी नहीं होते और ये कवर ड्राइव की चौके की दिशा में रूपांतरित होता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक खिलाड़ी रखा है। पीछे की जगह में कोई खिलाड़ी नहीं है, देखिए फाइन लेग में कोई नहीं है और थर्ड मैन में कोई नहीं है, दोनों ही शॉट थर्ड मैन और शॉट फाइन लेग है। तो अगर वो रिवर्स खेलना चाहते हैं या स्वीप शॉट खेलना चाहते हैं या पैडल स्कूप खेलना चाहते हैं तो रनों का वहाँ पे मौका बन सकता है। लेकिन गेंदबाज को अपनी गेंदबाजी पर, अपनी लाइन पे काफ़ी भरोसा। ये हर क्या तो से खेल चुके हैं, 1 रन पूरा कर, शायद 2 के लिए भी जा सकते हैं, नहीं लेंगे रिस्क। अच्छा कॉल वहाँ पे वत्सल का, मीर थे वहाँ पर। तो 90 पर स्कोर जा पहुंचा है। 12.5 ओवर, अभी भी 7.1 ओवर। जिनहर्ष टिमकेन अडोर कप 2022 इस प्रतियोगिता में आमंत्रित करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए मैं संतोष मिटबावकर, चिमूर, बस आपकी घाटकोपर के बगल में ही रहने वाला, और ऐसे लगता है कि इस परिवार का मैं भी सदस्य हो चुका हूँ। जिस तरह से विपुल है, वत्सल है, भाविन जी हैं, सुमित जी हैं, ये जब लगातार
जब सम्मान देकर हमसे जो वार्तालाप करते हैं या व्यवहार करते हैं, लगता है कि हम भी इस बड़े से परिवार का एक छोटा सा सदस्य बन चुके हैं। तो धन्यवाद मुझे इस टूर्नामेंट से जोड़ने के लिए। हिंदी में मेरी महारत है नहीं, मैं अंग्रेजी का सा एक क्या शॉट है ये, गेंद की पिच पर नहीं थे, ओ ऐसे कैचेस नहीं छोड़ सकते। और ऐसे बढ़िया खिलाड़ी के अच्छा प्रयास किया था, गेंद के नीचे आ गए थे, गेंद उनके हाथ से छिटक गई। 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 92 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर होंगे साहिल पारिक। ये हमारी टीम है, अशिक्षा कुमार बगाड़िया, सुमित सेठ जो विकेट कीपर थे इसके पहले वाले मैच में, गौरव बखाई, भाविन बोरा, ये आपको दिखेंगे हर जगह, राजेश सरवैया ये भी पिछले मैच में थे, विपुल संघ भी इस मैच में दिखाई देंगे आपको। ओपनिंग गेंदबाजी करने के लिए आएंगे जनरली, ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी विपसा के लिए आने के लिए आए थे कई बार, इस पर अपने आप को पीछे रखा है। जिनहाश टिमकेन अडोर के कुछ चित्र है आपके सामने, पिछले साल ऑप्शन के वक्त के आपको कुछ पिक्चर्स आपके सामने, सारे लोग, सारे जो कमेटी मेंबर्स हैं काफ़ी जी जान लगाकर इस प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। और इनकी जो दोस्ती है वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये लगातार कई वर्षों तक, चौथा साल है, बड़े ही प्यार से इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। तो टीम NSG नागदेवी सेवा ग्रुप आपका तहे दिल से स्वागत करती है। तो चलिए वापस एक बार लाइव पिक्चर्स की तरफ। ये खराब गेंद थी, बहुत ही शॉर्ट गेंद थी और गेंद जाएगी काउ कॉर्नर रीजन में 1 रन के लिए। उतनी अच्छी गेंद नहीं थी लेकिन उस पर उसको 1 से ज़्यादा रन नहीं दे पाए। ऋषि मेहता ने पहली गेंद पे उन्होंने मौका बनाया था भाविन के खिलाफ, माफ़ कीजिए साहिल के खिलाफ, थोड़ी सी मुसीबत में आ गए थे। तो 13.1 ओवर, इस ओवर की दूसरी गेंद, खराब गेंद, सही नसीहत, गेंद शायद पूरी तरह बाहर जाएगी। क्या कैच है ये, एक कैच छोड़ दिया था लेकिन इस बार नहीं छूटेगी। बहुत ही बेहतरीन कैच, काउ कॉर्नर रीजन में वत्सल का कैच, निर्णायक कैच हो सकता है। गेंद उतनी अच्छी थी नहीं लेकिन विकेट काफ़ी बढ़िया, कैच काफ़ी बढ़िया। ऋषि ने लगातार अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास किया है और उनके अच्छे प्रयासों का एक उतनी अच्छी गेंद नहीं थी, उस पर उनको फल मिला है। क्या बेहतरीन कैच थी। 93 for 3। पिछली वाली कैच थोड़ी सी आसान थी, ये बिल्कुल जो बाउंड्री लाइन थी उससे सट की कैच थी और काफी बेहतरीन कैच लिए। अब आएंगे विपुल। विपुल इस टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज है। 16 मैचेस, 13 इनिंग्स, 133 रन, 25 उनका हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन आज उनको उनके हाईएस्ट स्कोर से ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने कहा वत्सल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साहिल पारिक। वत्सल अगर खेल गए तो उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन इस उम्र का ही ऐसा तकादा है कि वो अमूमन आप ज़्यादा जोश में आकर अपनी विकेट गंवा दे, तो बिल्कुल वही हुआ है। और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी, वो अपना विकेट खो चुके। गेंद बिल्कुल ख़राब थी, उस पर सही चुनाव भी किया था शॉट का, लेकिन जो एकमात्र खिलाड़ी था बस उसके हाथ में वो गेंद चली गई और वापस जाना पड़ा है वत्सल दोषी को। सुपरस्टार, यंग स्टार इस बार निराश करते हुए। 93 for 3 अभी भी इस प्रतियोगिता के इस पहले इनिंग्स के 6.4 ओवर्स बाकी है, मतलब अभी भी 40 गेंदों का खेल बाकी है। उसमें अगर वो 50 रन जोड़ लेते हैं तो 143-145 हो जाएंगे। कम से कम 50 रन जोड़ने पड़ेंगे आने वाली 6.4 ओवर्स में। बहुत बड़ी वाइड है ये, ऋषि बहुत बड़ी वाइड है। अच्छे कॉन्फिडेंट गेंदबाज है। थोड़े से रन ज़्यादा खर्च किए लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने, साहिल को भी उन्होंने आउट करते करते रह गए थे। ऋषि मेहता थोड़ी सी ख़राब गेंदें डालते लेकिन कई बार मौके बनाते वो विकेट के। ये अच्छी गेंद थी,
लेकिन इस पे रन आ चुका है। इस एक रन के साथ स्कोर जाएगा 94 फॉर 3। ये रौनक को गेंदबाजी देनी चाहिए। रौनक का एक ओवर भले उतना अच्छा नहीं गया हो, लेकिन मेरे हिसाब से रौनक इस टीम के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक है। मिहिर सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक है। तो रौनक को पुनः एक बार उनको मौका देना चाहिए गेंदबाजी करने के लिए। मेरे हिसाब से इस प्रतियोगिता के टॉप 3 गेंदबाजों में से एक है। तो मेरा ओपिनियन तो यहाँ पे मैटर नहीं करता, लेकिन अच्छे गेंदबाज है जिन्हें मौका देना ज़रूरी है। क्या बेहतरीन शॉट है, बैकफुट पर जाके गेंद को बस दिशा दे दी है। वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन के साथ स्कोर जाएगा 96 फॉर 3, 96, 3 विकेट के नुकसान पर। रन गति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जा रही है बराबर 7 रन प्रति ओवर। तो 7 के लगभग आसपास ही वो रन गति मंडरा रही है, 7.02। तो इस हिसाब से अगर वो जाएंगे तो 140-41 पर फिर एक बार पहुंचेंगे, जो कि काफ़ी नहीं होगा जैसे आपने पिछले मैच में देखा, जो आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर पाए। तो 150 के ऊपर तो होना चाहिए आंकड़ा, अगर आपको सुरक्षित महसूस करना है तो। विपुल बिल्कुल डेड बैट से खेलते हुए, हल्के हाथों से खेलते हुए पहला रन काफ़ी तेज़ी से साहिल पारेख देखिए, इसलिए इस खिलाड़ी का मैं कायल हूँ। क्या बल्लेबाजी करते हैं, क्या रनिंग बिटवीन द विकेट्स हैं उनके, जो विकेटों के बीच में दौड़ लगाते हैं वो लाजवाब है। वो गेंद का अंदाज़ा लेना, रन का अंदाज़ा लेना, भांप लेना कि उसमें एक है या दो, एक विशेष कला लगती है उसके लिए भी। तो रन गति थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए 7.08, आखिरी गेंद इस ओवर की। साहिल उचित निर्णय, थोड़ा सा रुके हैं क्योंकि वो दूसरा रन काफ़ी तेज़ी से उन्हें भागना पड़ा था। इस ओवर की आखिरी गेंद, एक सफल ओवर की आखिरी गेंद, खराब गेंद, लेकिन क्या अंदर आई देखिए गेंद, लग रहा था बाहर चले जाएगी। ऋषि मेहता लगता है कि आपको आसानी से उनको हिट कर पाएंगे, लेकिन वही वो जगह होती है कि जहाँ पर आप मुसीबत में आ जाते हो। तो 14 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 99, 3 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं जिन्हर्स टिमकेन अडोर कप 2023 और विप्सा वॉरियर्स वर्सेस यूएस तूफानी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेमीफाइनल का मुकाबला। जा पहुंचा है 99 पे, 99 फॉर 3। नेट या टर्फ, नेट या टर्फ। हेलो, जिनेश वासा आए गेंदबाजी करने के लिए। क्या बेहतरीन कैच लिया था इन्होंने, नहीं सर। और बल्लेबाजी इनकी तो लाजवाब थी। इसके पहले वाले मैच में इस बल्लेबाज ने मात्र 17 या 18 गेंदों में जो हाफ सेंचुरी लगाई थी। नहीं है, नहीं है, कल का नहीं है। गेंद शॉट थी, उतनी अच्छी थी नहीं, और उसको सही नसीहत दी है। सिर्फ क्या चाहता है? क्षेत्र रक्षण काफ़ी अच्छा लगा है, जो एंगल्स है, जो कोन है, उनको अच्छी तरह से उन्होंने कवर किया है। उनको अच्छी तरह से अवेलेबल आज का खिलाड़ी मौजूद रखे हैं वहाँ पर, ताकि वो जिस कोन में गेंद जाएगी उस कोन को संभाल लेना है। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ एंगल्स जैसे, मतलब कोन, जो कौन से खेलते हैं वो ज़रूरी होता है कि कौन से आप गेंद को मीट करते हैं, क्या करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्कोर है 100 पे 3, 100 का आंकड़ा पूरा होता हुआ। और साहिल पारेख अब ये जिनेश के खिलाफ आक्रमण करेंगे, यस ज़रूर करेंगे। शॉट जाएगी मिड विकेट का कॉर्नर रीजन में 4 रनों के लिए। ये आया केडीसी चौका, बहुत ही बेहतरीन ये चौका। यस, केडी कॉर्पोरेशन बेहतरीन चौका, बिल्कुल उचित समय पे आता हुआ। क्या शॉट था ये देखिए,
जबरदस्त प्रहार, सब ले लो, ये भी लो, वो भी लो। तो काफी क्या क्लैरिटी है तेरे फोन में? वही है, आईफोन ही है, हाँ आईफोन ही है, आईफोन ही है ना ये, मस्त दिख रहा है। सो 105 पे 3, एक सौ पांच पे 3 गेंदें शेष इस ओवर की। विपुल सांघवी जो 5 रन पर खेल रहे हैं, बहुत ही समझदारी से बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर है। ये गेंद को स्कूप करना चाहते थे, उनके हिसाब से मौका निकल गया और चौके का। कि लेग की दिशा में जब आपको गेंद मिलेगी, जो पटकी हुई गेंद होती है, शॉर्ट गेंद होती है, उसका उपयोग अपने करना ज़रूरी है। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें, और ये बहुत ही करारा प्रहार किया है। प्रिंस वहां पर है। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचेगा 107 पर। 107 पे 3। साहिल पारेख जी जान से खेल रहे। इस प्रतियोगिता में अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अगर कोई प्लेयर देखा जाए, उस पर टॉप पर होगा ये खिलाड़ी नील शाह के साथ। लेकिन नील शाह से भी थोड़ा सा आगे निकल चुका है। अगर वो आप कहेंगे उसके 2 मैन ऑफ द मैच इन्होंने अभी तक अर्जित किए हैं। उसके साथ इस मैच में भी उनकी बल्लेबाजी देखिए 45 और 37, जिसको आप मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कहेंगे ना, तो ये जो खिलाड़ी है, इस भगवे जर्सी में जो टीम खेल रही है, उसका ये खिलाड़ी है साहिल पारेख। वो खुद अपने लिए नहीं भाग रहा है, अपने साथी खिलाड़ियों के लिए भी भरपूर अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रहा है। 107 पे 3 इस ओवर की आखिरी गेंद। जिनेश वासा 8 रन। क्या बैटिंग की थी जिनेश और राज ने इस प्रतियोगिता के सबसे ज़बरदस्त 6 ओवर्स, जिन्होंने 6 ओवर्स में उन्होंने लगभग 75 या 80 रन ठोक दिए थे। ये ऑफ ब्रेक काफ़ी अच्छी गेंद थी ये, लेकिन मौका था यहाँ पे। ये रिस्की रन था। जब आप बैकफुट पे चले जाते हो और ये ऐसा जब सिंगल देने के लिए भाग जाते हो, तो उस वक्त आप मुसीबत में आ सकते। 108 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति पर। टेक्नोलॉजीज QLH हम उसमें जुड़े हुए, पिछले साल ही जुड़े हुए स्पॉन्सर्स थे। ये हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं। QLH लीनियर मोशन टेक्नोलॉजी। सो लाइव पिक्चर्स आपके सामने आ रहे हैं JFSC के माध्यम से। फातिमा के इस ज़बरदस्त खूबसूरत मैदान से एक स्टेडियम का आपको नज़ारा, आप जब उस घास पर की तरफ देखते हो ना, अगर आपको क्रिकेट पसंद है, आपको अगर हरा हरा मैदान पसंद है, आप इस मैदान से, इस ग्राउंड से आपको मोहब्बत हो जाएगी कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्राउंड है। चेंबूर में या घाटकोपर में ये 2-3 ऐसे ग्राउंड है पूरे मुंबई में कि जो आपका दिल जीत लेने का काम करेंगे। ये गेंद काफ़ी बाहर थी लेग स्टंप के। वो हरी भरी घास, उसमें खेलने का एक अलग सा आनंद होता है, और उस आनंद को भरपूर मनोरंजन GGYG ने जब से इस 2 सालों में यहाँ पर आए हैं, तो जो खेलने का जो पूरा उनका जो एक फीलिंग होती है या जो सेटिस्फैक्शन होता है, वो उन्हें काफ़ी अच्छा मिला है। जब भी कोई आप काम करते हो उसमें, जब आपको पूरी तरह से जब उसमें आपका सेटिस्फैक्शन होता है, तभी आपको मज़ा आता है। तो बिल्कुल ये ऐसी ग्राउंड है कि जहाँ पर अपने खेलने की सारी इच्छाएं पूरी होती है, आपको एक अच्छा सा अनुभव मिलता है एक प्रॉपर इंटरनेशनल T20 खेलने का। देखिए, आप इस ग्राउंड के चारों तरफ देखेंगे तो आपको टॉवर्स दिखाई देंगे 4। तो आप डे नाइट मैचेस में आपने देखे लगातार 3 दिन लगातार वो एक मैच या 2 मैचेस खेले गए थे वो आर्टिफिशियल लाइट्स में। उसी के साथ आप प्लांटेशन देखोगे, आप पेड़ अलग अलग तरीके के हैं। आपको केरला और कोंकण में आने का भी अनुभव होगा। ऑफ स्टंप की काफी बाहर, काफी जबरदस्त शॉट, लेकिन सीधा खिलाड़ी देवांग के दिशा में, शायद रुचित है वहां पर। काफ़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी है वो वहाँ पर पॉइंट पे, जिनके लंबे बाल है और हाथ भी काफ़ी लंबे हैं, लेकिन उनकी पहुँच भी उतनी लंबी और फील्डिंग भी उतनी ज़बरदस्त है। 110 पे 3 पोनी टेल की एक खिलाड़ी, ज़बरदस्त फील्डर है वहाँ पर। विपुल संघवी 8 पे 8 आखिर के ये 4.3 ओवर्स। हाँ, विपुल संघवी बड़े हिट के लिए गए, गेंद जा रही है सीधा खिलाड़ी के हाथ से, निकल गई हाथ से।
सब कुछ ठीक किया था उन्होंने, आखिरी मौके पर गेंद उनके हाथ से 2 बार निकल गई। सुनील कह रहे होंगे कि सारे कैचेस आप मेरी गेंदबाजी पे छोड़ रहे, उनको 2 कैचेस मिल सके, एक वत्सल का विकेट था और एक बार फिर ये विपुल का विकेट। आज उनके नसीब में विकेट्स नहीं है, लेकिन गेंदबाजी क्या ज़बरदस्त की है, देखो उन्होंने 3.4 ओवर से 18 रन, अगर ये कैच हो जाए तो 16 ही रन जाते, मतलब 4 के आसपास उनका जो है इकोनॉमी रेट, किफ़ायती गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने। तो 18 रन खर्च किए हैं, आखिरी 2 गेंदें उनके स्पेल की 111 पे थे, नेल्सन का आंकड़ा है, और सामने होंगे साहिल, और ये लंबा हिट लगा सकते हैं। हल्के हाथों से खेल चुका, पहली रन काफी दूरी से, दूसरी रन की मांग होगी और पूरी भी होगी। साहिल को आप देखेंगे तो जैसे है ना, कम है लेकिन बम है ये बंदा, हाइट में कम है, उनकी देखो मसल्स भी काफ़ी नॉर्मल ही है, लेकिन जिस तेज़ी से वो भागे हैं अपने पूरे इनिंग्स में, 40 गेंदों का खेल खेला है, उसके साथ उन्होंने अपने दूसरे पार्टनर्स के लिए भी रन भागे हैं, कई बार उन्होंने रिस्की सिंगल से डबल्स लिए, और इनिंग्स देखिए क्या ज़बरदस्त उनकी, स्ट्राइक रेट लगभग 120 का, बेहतरीन शॉट, ये शायद उनका 50 होगा अगर मिसफील्ड हो गई तो, हाँ ये शायद निकल जाएगी गेंद, रफू चक्कर होगी केडीसी चौके के लिए, ये 4 रन, और ये आया केडी कॉर्पोरेशन, ज़बरदस्त सुपर हिट चौका, 50 रन लाएगा जिनहर्स टिमकेन अडोर, 50 रन साहिल पारेख के 52 पर जाएंगे वो। 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 117, 3 विकेट के नुकसान पर। हमारी टीम है वापिस आ जाते हैं 16th ओवर पे 117 पे 3, अगर आप 24 गेंदों का खेल 6 अगर आप 8 रन प्रति ओवर जाएंगे तो 32 रन उसमें जोड़ दीजिए 149 हो जाएगा, अगर वो 7 रन प्रति ओवर जाते हैं तो 21 रन जोड़ दिए 138 हो जाएगा, अगर 10 रन प्रति ओवर जाते हैं तो 157 रन हो जाएंगे। तो पिछली बार भी बिल्कुल ऐसा समीकरण था, 16 और मात्र 21 रन उन्होंने बनाए 4 ओवर्स में, मतलब 5.25 के औसत से, उसी की वजह से वो शायद वो मैच भी हार गए, क्योंकि जो स्कोर 150 प्लस होने वाला था वो 139 पे 40 पे आके रुक गया। ये चौका, लगातार चौका छक्का आ रहा है, ये आया केडीसी सुपर चौका, केडी कॉर्पोरेशन सुपर बाउंड्री, क्या जबरदस्त शॉट है। देखिए विपुल का चलना काफी जरूरी है इस टीम के लिए, क्या शॉट था ये, देखिए जबरदस्त प्रहार, गेंद जाएगा खाओ कॉर्नर मिड विकेट की दिशा में, खूबसूरत 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी और उसका पूरा समाचार लिया। मिहिर एक ज़बरदस्त गेंदबाज, लेकिन पहली गेंद पर एक लोअर फुल टॉस और उसका भुगतान उन्हें चुकाना पड़ा है। सामने बल्लेबाज, ओ ये शॉट अच्छा नहीं था। फिर मैं आपको बताते चलूँ कि ये सारे खिलाड़ी है, जिसमें आप विपुल को भी देख लीजिए। विपुल कहा जाता है कि लगभग 35-40 साल एक दूसरे के साथ ये सब लोग खेल रहे हैं, मतलब उनकी उम्र भी 50 प्लस है। तो 50 प्लस के खिलाड़ी है, लेकिन उनमें अगर जोश देखेंगे, जब वो भागेंगे तब उनकी एनर्जी देखेंगे, तो शायद जो एक युवा है 15, 16, 17 साल के, वो भी शर्मा जाए, इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी है ये गेंद काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन ये देखिए मौका नहीं चूकते साहिल, ये गलती कर दी विकेट कीपर ने। राजीव इस टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी, लेकिन चीता भी पीता है जैसे, अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी गलती कर देता, तो बिल्कुल वही हुआ है। स्वर्ग स्कोर है 122 पे 3। अब साहिल एक जैसे हिमालय में जाके जो तपस्या करते हैं ना, वैसा ये बल्लेबाज है, अपनी वो ध्यान में लग गए
जैसे सन्यासी को कुछ इफेक्ट नहीं करता, सर्दी हो या ठंडी हो या गर्मी हो, वैसे बल्लेबाजी चल रही है उस बंदे की, पूरा फोकस है। अगर आपको जीवन में किसी चीज़ को हासिल करना है तो आपका फोकस होना ज़रूरी है। कहा जाता है कि अगर सबसे ज़्यादा से बड़ी चीज़ हासिल करने वाले पागल ही होते। एक खिलाड़ी है पोर्चुगल का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जब भी उससे बचपन से पूछा गया था, पहली बार जब मैन यूनाइटेड में खेलने गया था, लिस्बन से खेलने आया था, तो उससे पूछा कि दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, तो उसने कहा था कि मैं। सबसे ज़्यादा गोल कौन बनाएगा, मैं। तो सारे लोग उसको हंसते थे। आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि वो उसको दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी, हर दुनिया के खिलाड़ी मानते। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों को ही ज़बरदस्त खिलाड़ी, ऑल टाइम ग्रेट जिसे कहते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट खिलाड़ी उनको कहा जाता है। ये फुल टॉस गेंद थी, ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डिलीवरीज नहीं थी, लेकिन फील्डिंग अच्छी थी। वो सबसे ज़बरदस्त खिलाड़ी वहाँ का, जो क्षेत्र रक्षक है, सबसे बेहतरीन क्षेत्र रक्षक इस टूर्नामेंट का। लंबे बाल वाले वो खिलाड़ी, 50 के आसपास ही उनकी भी उम्र होगी, लेकिन क्षेत्र रक्षण किसी 18 साल के युवा से भी बेहतर। 124 पे 3, 1-4 फॉर 3। और ये आखिरी गेंद इस ओवर की, भले चौका खा गए हो, लेकिन आने वाली 4 गेंदों में उन्होंने मात्र 2 रन खर्च किए और एक 22 के स्वरूप में 1 रन। लेकिन साहिल इस ओवर को बिगाड़ सकते एक चौके छक्के के साथ। 124 पे 3 साहिल, ये काफ़ी अच्छी गेंद, काफ़ी ऊंची थी। अंपायर का प्रदर्शन आज के दिन में लाजवाब रहा है। थोड़े से पहले दौर में ये एम्पायर्स हो या दूसरे एम्पायर से, उनसे छोटी छोटी गलतियां हो गई थी, और गलतियां तो होंगी, इंसान है। आज का तो उनका निर्णय काफ़ी ज़बरदस्त, एक मशीन की तरह उन्होंने काम किया है। सो 125 पे 3, 125 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। देखिए इस ओवर में मात्र 6 रन, कितने रन आए, 6 नहीं आए, 9 रन आए, 7 रन आए, 8 रन आए। 117 थे तो 8 रन आए, एक चौका, 2 22 और 2 सिंगल्स, तो 8 रन इस ओवर में आए हैं। तो 8 के अगर औसत पकड़े और 24 रन, तो 149, मतलब 50 रन का टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर साहिल रुक जाए, 160 भी पॉसिबिलिटी है। पिछले मैच की तरह ही बिल्कुल ये समीकरण है। वहाँ पर भी आउट हो गए थे इस वक्त नीरव और उनके साथी बल्लेबाज, उसके बाद चीज़ें बदल चुकी थी। तो साहिल को आखिर तक लड़ना ज़रूरी है। इस प्रतियोगिता का सबसे कारगर, सबसे ज़बरदस्त, सबसे प्रभावी बल्लेबाज, उसका विकेट पर रुकना ज़रूरी है। तो अगली 18 गेंदों में अगर प्रिंस कुछ करिश्माई गेंदबाजी करके साहिल का विकेट ले लेते हैं, तो नियंत्रित कर पाएंगे सामने वाली टीम को और अपनी टीम की जगह और मजबूत कर पाएंगे। प्रिंस राइट आर्म ओवर द विकेट, खराब गेंद, क्या पुल शॉट है, सक्सेसफुली पुल, व्हाट अ शॉट, 1 बाउंस इनटू द फेंस। सबसे बेहतरीन शॉट आज के दिन का ये आया, केडीसी करारा चौका, व्हाट अ शॉट दैट वाज, जबरदस्त। केडी कॉर्पोरेशन का केडीसी चौका, अपने ब्रांड की तरह ये कड़क करारा शॉट था, जैसे केडीसी है। देखिए ये शॉट, प्रिंस की गेंद काफी अच्छी, लेकिन रोहित शर्मा स्टाइल में पुल कर दिया है, जबरदस्त करारा प्रहार, केडीसी चौका। प्रिंस एक बार फिर, और फिर एक बार, ये ओवर पिच गेंद थी, लेकिन सीधा क्षेत्र रक्षक की दिशा में। क्या रनिंग है इस बल्लेबाज में, देखो ये चौके छक्के भी जड़ सकता है और लगातार सिंगल्स भी तेजी से दौड़ सकता है। काफी ताकत है उन पैरों में, लेकिन वो भी अब शायद जवाब देने लग गए हैं। थका है ये बल्लेबाज, लेकिन खत्म नहीं हुआ। डाउन बट नॉट आउट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। थोड़ी सी थकावट तो ज़रूर है, लेकिन ऊर्जा उनमें बहुत है, जो कई बार नियंत्रित कर जाती है। आपकी अंदरूनी शक्तियाँ, आपकी जो फिजिकल क्षमता है, आपकी शारीरिक क्षमता है, उसको कई बार उसके आगे पहुंचाकर आपसे कई सारे कार्य करवा देती है। बिल्कुल उसी कगार पर है ये बल्लेबाज साहिल पारेख। ठंड का मौसम है, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी गर्मी बढ़ चुकी है, और गर्मी भी बढ़ी है बल्लेबाजी में। विपुल चौका छक्का जड़ने का प्रयास करेंगे। क्या शॉट है, इनसाइड आउट, कवर ड्राइव, गेंद तेजी से निकल जाएगी कवर्स की दिशा में। 2 रनों की मुद्रांक तो उस पर लगी थी, लेकिन साहिल के इरादे कुछ और है, वो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ईश्वर को और नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस पर 2 अंक मुद्रित थे, तो 2 रन उनको मिल चुके हैं। इस 2 रनों के साथ स्कोर जहां पहुंचेगा 132 पे 3। अब तक 7 रन आ चुके हैं पहले 3 गेंदों में। प्रिंस जैसे गेंदबाज के खिलाफ, जो काफ़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी को इस
टीम की ब्रेन माना जाए, टीम का ब्रेन माना जाए, दिमाग माना जाता है, जो सारी टैक्टिक्स और सारी जो रणनीति है उसका वो नियंत्रण करते हैं। 3 गेंदें शेष। फिर एक बार डाउन द ग्राउंड, इस बार एक ही रन लेंगे। साहिल क्या भाग रहे, लगातार रन्स भाग रहे, लगभग वो वहां पर 17 से 18 ओवर्स में, मतलब उनकी विकेट, पहले विकेट जाने के बाद साहिल आए थे, उन्हें देखो ज़्यादा गेंदें खेलने नहीं मिली है, 45 गेंदें खेलने मिली है, जो अभी तक के 125-150 जो रन बने उनकी तरफ से। सो 133 फॉर 3, 133 पे 3 अभी भी इस ओवर के 2.2। और आपसे मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी अपने कमेंट्स भेज दीजिए, हमसे कुछ गलतियाँ आ रही तो हमें बता दीजिए, और कमेंट्स अपने अच्छे रखिए, किसी के बारे में अच्छा ही बताइए, किसी को कुछ बुरा मत बताइए। इस प्रतियोगिता में आप शामिल हो जाइए और इस जो लाइव लिंक है अपने आप सब्सक्राइब करके अपना मत प्रदर्शित कर दीजिए। और ये जो जूझार खिलाड़ी है साहिल, उसके बारे में भी कुछ अच्छी बातें हमें सुनने मिल रही है, और प्रिंस और इनकी टीम जो लगातार इस प्रतियोगिता में ज़बरदस्त तूफानी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनके बारे में भी शायद हमें कुछ सुनने मिले। तो विप्सा वॉरियर्स 133 फॉर 3 आखिर की इस ओवर में अब तक आए 8 रन। पहले ओवर में आए थे 8 रन, इस ओवर में अभी तक आए हैं 8 रन। तो देखते हैं आखिर के इस गेंद पे शायद 1 रन आ जाए तो भी अच्छा है, चौका आए तो भी अच्छा है, 1 रन आए तो साहिल स्ट्राइक रखेंगे, चौका आए तो टीम के रनों में, खातों में बढ़ोतरी हो जाएगी। आखिरी गेंद इस ओवर की 7.5 पर जा पहुंचा है रन रेट, जो 7 पर मंडरा रहा था कई ओवर्स तक। आखिरी गेंद इस ओवर की प्रिंस दोषी, तीसरा ओवर आखिरी गेंद, और ये 1 रन होगा यहाँ पर मात्र, नहीं लेकिन गेंद गैप में जा रही है तो 2 का प्रयास होगा ज़रूर, और नहीं, अच्छा कॉल है ये। साहिल देखो अभी भी तैयारी दर्शाते हुए दूसरे के लिए। 18 ओवर की समाप्ति पर 134, 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल शेष। क्या ये टोटल 150 के पार जाएगी? निश्चित ही जाने की यहाँ पर आसार है, लेकिन साहिल का विकेट जाए तो शायद 145 के आगे भी ना जाए। हट जाएगा जी, फिर 2 भी कर। 134 पे 3, 18 ओवर। सो 134 पे 3 आखिर की 11 गेंदें, और साहिल अगर 70 के पार साहिल पहुंच जाते हैं तो ये टोटल 150 के पार पहुंच जाएगा। तो देखते हैं इस प्रतियोगिता का सबसे जो बड़ा स्कोर है उसके पार वो पहुंच जाएंगे, और अपनी टीम को भी उस दिशा में ले जाएंगे जहां पर वो सुरक्षित मान सके अपने। क्या बेहतरीन शॉट है, बैकफुट पर लगाया हुआ शॉट, पहली रन तो जोर से, क्या शॉट है ये, नजाकत है। लग रहा था कि 2 रन के लिए शॉट जाएगा, लेकिन बैकफुट पे जाके क्या सुहावने तरीके से पंच किया, बिल्कुल बल्ले के बीच जाकर ये बहुत ही प्यारा सा कीड़ी चौका। ये शॉट में ताकत नहीं थी, इस शॉट में कुछ गुस्सा नहीं था, बिल्कुल बस प्यार से नज़ाकत थी, एक आर्टिस्ट्री। ऐसे लग रहा है कि उनके हाथ में अब बल्ला नहीं, एक पेंट ब्रश दे दिया है और वो पेंटिंग बना रहे। कलाकारी भरा हुआ ये शॉट बहुत ही ज़बरदस्त। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा, जा पहुंचेगा 63 पर साहिल का। पुल शॉट, काफ़ी अच्छा शॉट, गेंद थोड़ी सी नीचे रहने के बावजूद अच्छा टाइम किया, यहाँ पर तो 2 रन मिलेंगे। यस, देखिए विपुल, कौन कहेगा ये 50+ है, कौन कहेगा ये 50+ है। घर जाने के बाद जब इनकी जो सौभाग्यवती है, इनकी जो पत्नी है, उनको पता चलता है, जब उनके हाथ पैर काफ़ी दर्द होते हैं, उनसे कहते होंगे कि मुझे अलग अलग तरह के स्प्रेस दीजिए, मुझे घुटनों के लिए अलग अलग बाम दीजिए, मुझे अच्छा सा एक पेन किलर दीजिए। वो होता होगा विपुल के साथ। अब नहीं बताएंगे, लेकिन तकलीफ तो हुई है। देखिए, ये कोई यंगस्टर भी होता ना 21-22 साल का, तो वो भी थक जाता। और दोनों में से काफ़ी आपसे गुजारिश है कि अपने आप को आप हाइड्रेटेड रखिए। अपनी जो शरीर के जो सॉल्ट्स कम हो जाता है, तो आपको उचित मात्रा में पानी का सेवन करना। देखो साहिल
साहिल फिलहाल तो ज़मीन पे आ चुके हैं, इतना वो अपनी टीम के लिए अपनी जान लगा रहे हैं और लगातार जहाँ पर 1 रन है वहाँ पे 2 रन कर रहे हैं। आपको एक बात बता दो चलो, जो टेस्ट मैच ड्रॉ हुई थी, 400 के ऊपर का टारगेट दिया था इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 80 के दशक में, जब डीन जॉन्स खेल रहे तो डीन जॉन्स ने 200 रन बनाए थे और कम से कम 2 दिन वो विकेट पे डटे रहे थे। और बहुत तापमान ऊंचा होता था चेन्नई में वो गर्मी का महीना था और चेन्नई की धूप में मैराना बीच वहाँ पे जहाँ पे उमस ज़्यादा, जिसको आप ह्यूमिडिटी कहते हैं, मतलब पसीना ज़्यादा आता है, जो मैराना बीच के साइड में वो ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड में एम ए चिदम्बरम ग्राउंड है शायद, तो उस ग्राउंड में जब वो बैटिंग कर रहे थे तो अपनी टीम के लिए उन्होंने लगातार अच्छी बल्लेबाजी की थी। सबसे बेहतरीन 4 गेंदबाज इंडिया के थे उनके सामने और उसमें खेलते हुए उनकी शरीर में से इतना पानी कम हो गया था, उनका कई किलो वजन उस 2 दिन में ही कम हो गया था और वो लगातार मैच के दौरान उल्टियाँ कर रहे थे ग्राउंड पर ही, लेकिन वो डटे रहे और उनकी सबसे अच्छी इनिंग्स थी। डीन जॉन्स एक ज़बरदस्त कमेंटेटर भी रहा करते थे, 1 डाउन अपनी टीम के लिए भी खेला करते थे। तो मैं इसलिए बताते चल रहा हूँ, साहिल जैसी मेहनत कर रहे वैसी मेहनत उस खिलाड़ी ने भी की थी। तो अब यही सोचिए कि हम जब खेलने जाते हैं तो 2, 4, 10 ओवर में आप थक जाते हैं। राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी 1, 1, 1.5, 2 दिन इस विकेट पे बस जमे रहते हैं। और कई सारे खिलाड़ी आप क्रिकेट के लिए देखते हो तो पूरी तरह भीग जाते हैं। शारजा में जब वो खेलते हैं या कई बार मुंबई के वानखेड़े में भी खेलते हैं, आपको देखेंगे उनके सारे टी शर्ट्स भीग जाते हैं। तो बहुत मेहनत का काम होता है जब ये खिलाड़ी खेलते हैं। तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि उनका खेल अच्छा हुआ नहीं हुआ, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं फिर एक बार उनकी तरफ हम रुख करते हैं। शेर खड़ा हो चुका है अब 140 पे 3 और क्या शॉट है ये, डाउन द ग्राउंड, बेहतरीन शॉट, 1 ही रन मिलेगा। अब साहिल को ऐसे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी कि अब वो ज़्यादा उन्हें वो क्विक डबल सिंगल्स के जाने के बजाय इस आने वाली 8 गेंदों में 2 चौके लगाने का प्रयास करें ताकि ये स्कोर 150-155 के आसपास पहुंच जाए और वो सिंगल्स भागे। अगर 2 भी है तो भी ज़्यादा तकलीफ ना ले क्योंकि उनके गेंदबाजी भी उनकी ज़रूरी होगी। तो उन्होंने अपनी एनर्जी कंजर्व करना ज़रूरी है। काफ़ी दर्द होता होगा फिलहाल तो उनके शरीर में, क्योंकि क्या भागा है ये बल्लेबाज। पहले ओवर से आकर अभी 19वें ओवर तक और हर बार उन्होंने रिस्की रिंग सिंगल्स डबल्स लिए। ये काफ़ी अच्छा शॉट, लेकिन यहाँ पर 1 ही रन लेंगे वो, अब ज़्यादा तेज़ी से नहीं भाग पाएंगे वो। विपुल में देखो एक युवा 12-13 साल के लड़के की तरह ऊर्जा है उनके अंदर, उत्साह उतना भरपूर है, लेकिन अब इस यहाँ पर उनको महेंद्र सिंह धोनी की तरह बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अब या तो सिंगल या तो चौका छक्का, अब भागना नहीं है, अब बड़े हिट्स लगाने हैं। नहीं लगा तो सिंगल्स ले लो, या तो आसानी से 2 है तो चल के दे लो। या शॉट करा रहा है डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा अपने 10वीं में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस तरीके का ये शॉट था, बिल्कुल ग्राउंड को बीचों बीच छेदता हुआ। और साहिल पारिक आगे जा पहुंचे हैं
67 पे। मैंने वही कहा था कि अगर साहिल पारेख 70 बना ले तो 150 रन बन जाएंगे विप्सा वॉरियर्स के। विप्सा वॉरियर्स, विपुल, प्रदीप और संजय, प्राइवेट लिमिटेड, सारी डिटेल्स हैं उनके बारे में। अगर आपको बेयरिंग्स, सीओपीस, प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, अलग अलग कंपनी जिनसे जुड़े हुए हैं देश, तो ये उनके बारे में नंबर है 1038938 और 3 ऑफिसेस दिल्ली, कोयम्बतूर और राजकोट में। तो 79799779 वो शायद राजकोट का नंबर होगा। तो doshi@hotmail.com यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वापस एक बार आखिर की 6 गेंदों के लिए, 6 रिवॉल्वर की गेंदों की तरह, गोलियों की तरह 6 गेंदों, क्या शॉट है, मिस टाइम शॉट, लेकिन इस बार उनको वापस जाना पड़ेगा। और देखो पूरे सारे के सारे खिलाड़ी, प्रिंस जोशी उनकी पीठ थपथपाते हुए, प्रिंस ने उसका विकेट जरूर चटकाया है। वाइपर एक्सेल विकेट, वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज परसेंट एक्सेल विकेट, एक एक्सेलेंट खिलाड़ी का एक्सेलेंट विकेट। प्रिंस ने स्लोअर वन डाला था, वो बीच में लगा है, देखो ऊपर वाले हिस्से में बैठ के लगा है और उसी की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। तो अब अगर देखा होगा उस खिलाड़ियों को, क्यों एक दूसरे को, देवांग ने वो कैच लिया है, एक दूसरा जो हर खिलाड़ी जो वहाँ पर उनके पास जा रहे हैं, तो वो उस खिलाड़ी को, ये खिलाड़ी भी ज़बरदस्त थे जो आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए, जो बोरिवली वाला जिन्हें कहते हैं, इनकी बल्लेबाजी भी देखने मजा आए क्योंकि ये हिट करते हैं गेंद को। तो अब उनका प्रयास होना चाहिए कि आने वाली 5 गेंदों में सिर्फ चौके छक्के देखने के बजाय हर बॉल पे रन है वो देखे। एक चौका आ गया तो भी रन 150 के पार हो जाएगी। मोदी जी ने मंत्र दिया था अब की बार 300 के पार, इनको तो सोचना पड़ेगा अब की बार 150 के पार। अब 150 का लक्ष्य उनके पास अपने पास रखना होगा। 143 पे 4, 143 फॉर 4। प्रिंस जोशी, क्या बेहतरीन शॉट है, ये गेंद निकल जाएगी, रफू चक्कर हो जाएगी, सीधा फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए बेहतरीन केडीसी चमकदार चौका। प्रिंस नाखुश है लेकिन शॉट काफी बेहतरीन था। देखिए अंडर एज लगा बैट का और दिशा योग्य दी, बेहतरीन शॉट। जब आप फाइन लेग और थर्ड मैन को अंदर ले आते हो तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर वो वहां से गेंद आप फेंकेंगे तो 4 रनों के लिए जाएगी जरूर। 147 पे 4, बेहतरीन शॉट था ये। 4 गेंदों का खेल शेष। अरे बेहतरीन क्रैकिंग शॉट डाउन द ग्राउंड, ये गेंद निकल जाएगी, रफू चक्कर हो जाएगी, बेहतरीन चमकदार 4 रनों के लिए कर्रारा चौका केडीसी कॉर्पोरेशन का। व्हाट अ शॉट दैट वाज। देखिए ये खिलाड़ी लेट आया है लेकिन बिल्कुल दिल से बल्लेबाजी कर रहा है। देखो क्या शॉट था ये, भरपूर ताकत। जो लंच हमें जबरदस्त मिला था, जो पनीर की सब्जी है या जो वेज कोल्हापुरी है, तो उसी के साथ जो आपको डेजर्ट मिला है, उस सारों का प्रहार था इस शॉट में। लेकिन वो खाना छोड़िए, अपने घर का जो खाना है उसमें भरपूर ताकत है और उसी का पूरा इस्तेमाल कर दो। क्या शॉट से 2 गेंदों पे 2 चौके और ये लगातार हिट लगाते हैं। ये सबसे बेहतरीन शॉट है आज के दिन का। इनसाइड आउट कवर ड्राइव, 4 या 6 बस इसी का इंतजार है। शायद ये गेंद ऑल द वे गई है, ये चौका है जस्ट थोड़ा सा, लेकिन ये शॉट सबसे मुश्किल शॉट होता है क्रिकेट में। इनसाइड आउट कवर ड्राइव, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली काफी अच्छी तरह से खेलते हैं। ये शॉट उतना आसान होता नहीं, आपके रिस्ट में, आपके जो एल्बोज में काफी ताकत लगती है। बिल्कुल थोड़े सेंटीमीटर दूर रही, 3 गेंदें 3 चौके, एक सबसे अच्छे गेंदबाज के खिलाफ, प्रिंस जोशी के खिलाफ। क्या बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने, 3 गेंदों पे 3 कर्रारे चौके, केडीसी कर्रारे चौके, चौका चौका चौका, आखिर की 2 गेंदें। इस बार वापसी की है गेंदबाज ने। पहला शॉट लगा था जो सीधा फाइन लेग की दिशा में, दूसरा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मतलब उसको सीधा शॉट बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से मारा था। तीसरा शॉट इनसाइड आउट कवर्स की दिशा में, तो बिल्कुल 3 गेंदों में उन्होंने लगभग 190-200 डिग्री का एंगल कवर कर दिया था। फाइन लेग से लेके सीधा वो आए थे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और वहां से वो कवर्स की दिशा में। तो काफी जबरदस्त बल्लेबाजी, आधा ग्राउंड उन्होंने कवर कर लिया 3 शॉट्स में।
और फिर ये शॉट और जबरदस्त है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे, 1 रन का मिलेगा, लेकिन दूसरे रन का भी प्रयास होगा, 2 रन विपुल आसानी से भाग निकालेंगे। विपुल का योगदान भी सराहनीय रहा है और पारी की समाप्ति 158 का लक्ष्य। काफी जबरदस्त मैच होने वाला है ये। फिलहाल तो खुश होगी विप्सा की टीम बिकॉज उनके पास अच्छे गेंदबाज है, लेकिन तूफानी जानी जाती है अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए। देखते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद कौन सी दूसरी टीम होगी जो जा भिड़ेगी टीम डीपीएक्स डायनामाइट से। जिनहर्ष टिमकन अडोर कप 2023।
So this is the pair which scored 75 runs in the first 6 overs in the previous match. The last qualifier, Rajiv Shah and Jinesh Wasa. Rajiv got 40 runs in some 19 balls, and it was Jinesh who got his half century in 25 odd balls. So these two pairs were phenomenal in the previous encounter. Won't be that easy against one of the best bowlers of the tournament, Vatsal Doshi. Bipsa Warriors versus 2x Tufani. Oh, Rajiv just using his hands to get it away. No feet movement. Previous match he was just absolutely scintillating, ravishing. Rajiv it was. Let's see whether the young boy Vatsal will claim his wicket, or will he go against Vatsal. 52-year-old young boy is Rajiv Shah against a 22-year-old Vatsal Doshi. He goes for his shots. This is good fortune for him. We'll wait for the umpire signal, and that's a KDC boundary. Is that byes? Yes, it is. 4 byes. The ball just bounced and bisected the two fielders to precision. That was a Jaffa. A very good ball, giving 4 runs to the opposition. So the score is 5-5. Oh, what a shot this is! High and handsome, and Rajiv going hard against the premier bowler of the tournament. So the score is 7 now. Last ball of this over. Rajiv goes for the big shot, misses out. The score after the end of the over number 1 is 7 without loss. And Rajiv Shah has got 2, Jignesh has got 1, 4 byes. That will race away for 4 runs.
The score is 13 now in pursuit of 158. They have begun well again. पहले 70 में अगर हमने का पहले 10 ओवर में इस तरह ही और ये पे एक है दूसरे ओवर पर हम लोग यार काफी ज्यादा ओवर थ्रोस यहाँ पर 4 वाइड्स विपुल के ओवर में 11 रन खर्च हो चुके हैं। ये ऑफ स्टंप के बाहर थी और सीधी गेंद साहिल की दिशा में। सो 2 ओवर की समाप्ति पर इनफैक्ट एक गेंद और शेष है। 18 रन हो चुके हैं। जिनेश 6 पर खेल रहे हैं, राजीव 4। राजीव उस दिन की तरह उनकी गाड़ी निकलनी पड़ी, लेकिन शायद अगली गेंद उनका पहला चौका हो गया इस इनिंग्स का। बच गए। 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन बिना किसी नुकसान के। 158 रन 18 रन ओवर में रन बनाने हैं 140। That's beautiful. That's fabulously struck, but equally well stopped. That's good work. The score is 19 in 2.1 overs.
Good bowling this by Mifsal Doshi. Not easy to get through him. So the score is 20 now, 20 without loss in the pursuit of 158 runs. TVX Tufanis had started off really well. They got a lot of good fortune, got so many byes, 4 byes in the first over, 4 overthrows, then 3 wides, and these all runs have just helped them. He's not going to. Oh, what a crisp drive! What a good catch! Fabulously held catch of a very good player. Jinesh, who was looking so good in the previous match, was looking good even in this match. That's an excel wicket. Powered by Viper Drive Industry. Mr. Pratik Shah and Rahul Shah both would be happy with that fantastic catch. What a good catch of a very good player who was in great. He had scored in his previous innings, and that was a crisp cover drive. But what a wonderful catch! He was very close to the wicket, and he takes a one-handed blinder. Oh, this is one of the catches of the tournament. What a wonderful catch this is. Look at the smile and elation on his face. Probably the best catch. Even our broadcaster wants to show it again and again. What a great catch. Oh, this is a super stuff. Super stuff. And he's not a youngster. He must be 30 plus. And he's caught it like a 17-18-year-old agile athletic player. What a catch. Excel wicket powered by Viper Drive Industries. Jinharsh Timken Ador Cup 2022 has been a great tournament where we saw people from all different age groups, different cultures, different work professions, different areas of field and different cultures coming together and playing a wonderful tournament where you have seen many players are giving their heart out for this wonderful tournament of this. So Jinharsh Timken Ador Cup 2023 has been a sensational affair. Now this man, why wasn't he given the third over or second over? I don't understand. Ronak, for me, is one of the best bowlers of the tournament. And he wasn't given an opportunity to bowl later on because they trusted other bowlers to do the job. Don't think that was a right decision. And his responsibility will be with the bat in hand now. And he bowled very good all throughout the tournament. But here in this match, he wasn't given the full quota. What a shot! Crisp cover drive. What a shot! Elegant. This is the most glamorous shot of the innings. What a cover drive! Crisp as a chocolate. What a shot that is. KD Corporation Karara Choka, if you can call it. What a shot that is. Oh, everything right about the shot. Just like what Virat Kohli does. In fact, it was more like KL Rahul's cover drive. .24 for 1. It's going to be Smith Doshi who will be bowling the fourth over. The score is 24 for 1. It is all 8 runs per over. And they need somewhere around 8 runs per over. 134 runs more. But that was short and wide. That is hammered. That is smashed. That is 4 runs. KDC is super cracking 4 by KD Corporation, powered by Mr. Kiran Vora. What a shot that is. On
on the back foot with one of a beautifully cut like Virendra Sehwag for a boundary into that point region. What a cracking shot that was. They are racing along Tufani just like their name. They have started like a Tufan. 28 for 1. Oh, cracking! What a shot! Shot of the day for me. Every time I'm saying this all the time again. This is the Rajiv we know of this tournament. Rajiv Shah. That's what that. Again I say there was an ad in which they used to ask कि Rajiv bhai क्या चल रहा है? Rajiv bhai used to say फॉक चल रहा है. But for us in this tournament, Rajiv bhai चल रहा है. What a shot that was. 32 for 1. He wants to go for it again. That was outside the off. Somebody is hammering, trying to hammer them. He has played and missed quite a lot. Has looked ugly at times, but has looked superb at times as well. He scored 13 of 15, slightly slowish. Remember last match in this 15-16 deliveries, he got 40-45 runs. And today 15 balls 13. So not every day is the same day. Not every day is a Sunday. They say. हर दिन दिवाली नहीं होती है और हर दिन ईद भी नहीं होती. Oh, this is cracking cover drive. This is smash. This is 4. This is Rajiv at his ravishing best. What a shot. KDC, powerful, compact boundary. What a shot that is. KD Corporation Super 4 by Rajiv. Ravishing and punishing Rajiv. Look at that shot. Beautiful shot down the ground. And then a crisp cover drive. And the scoring has gone for a flight now. Just like that beautiful vehicle. It was the orange one. But here the team orange has been sent for a few boundaries and sixes. 36 for 1. The scoring has just motored along from 7 to 8. Now 8 to 9 runs per over. It is almost 9 runs per over now. So it will remain 9 runs per over. The score at the end of over number 4 is 36 for the loss of 1. With 9 runs per over, they are going along. They just need 122 runs to win this one. The score is 36 over. He is the most important player. Darshak Salod is the stop start. Ravichandran Ashwin of this team. See, he will stop and bowl. He will be the one who will make the difference. If they are going to win, these two bowlers. Rajiv Bhai was in some danger. These two bowlers. One is Darshan and another one is going to be Jay. Ronak's dad. I just want to see Ronak bowling, his dad bowling against Ronak. I would love to see that. But take my word, Darshan can win it for them. He's got good bowling skills and he's a very important bowler. These balls like Ravichandran Ashwin stops and starts. You used to have Saklin Mushtaq bowling this way, and then we saw Ravichandran Ashwin bowling this way. Mujibur Rahman bowling with a different efficiency. He stops and bowls. Good work, good stuff. Super fielding. Can't prevent them from going for a single. The score is 38 now, 38 for 1. We are into the 5th over, 120 needed in 94 balls. The chase is on, the match is on. It is anybody's game. Right now, TVX Tufanis are matching fire with fire. And that's not a good shot.
That wasn't a great ball, was outside the off somewhat, lot of width on offer. Wasn't able to connect, did not offer the full pace of the bat. Score is 38 for 1. It's Ronak and Rajiv versus Darshak Salot. Darshak has bowled well, superbly well in this tournament. He would be the match winner today. So that's very well bowled and equally well played. The ball just popped out ferociously and handled it really well. Actually, it hit the shoulder of the bat, but he was very good to handle it and negotiate with soft hands. The score is 38 for 1. Beautiful bowling by this man again, Darshak Salot. He might be the difference between winning and losing. He might be the difference between the place in the finals and being knocked out in the semi-finals. He is a great option to have. A tall, strong bowler. Good batsman and bowler too. So that wasn't a good ball. Short pitch ball and not good fielding. Trying to stop it by the feet. The ball will go for a boundary. Can't be doing that. Can't be trying to stop the ball with the foot. You need to bend down. It's a KD Corporation super boundary. The score is 46 now. 42 now. 42 for 1. Score 42 for 1. They are motoring along now. They are going somewhere close to 8.5 runs per over. That's a wide. He tried to get it in. 43 now. 43 for 1. Almost 9 runs per over. They have got 8 runs in this over so far. In fact 7. They might pick a wicket of the last ball. Darshak against Ronak. Ronak is a compact player. The score at the end of over number 5 is 43 for the loss of 1 wicket. 8.6 runs per over is what the run rate is right now. The score moves on to 44 now. 44 for 1. Heyman, he bowled well in the previous match. The left armour can be crucial. Heyman. Oh, that is so very well bowled. That's very close. In fact, he is very fortunate to be still there, Ronak. That was so close to being bowled, so close to being LBW, so close to being caught behind. Everything was there, and he just survives. He is going for the big shot, wants to up the entire, but it's fine. 9 runs of 8 balls is fine. That's good scoring rate. You don't have to hit every ball for a sixer. That's a cracking shot. That's 4 runs. No one's going to stop that. In fact, it is being very well stopped. Just for a single, a good shot going into the fielder's hand. There are 2 fielders patrolling. One is big third man and another one is at cow corner, wideish long on. Score is 45. Good over this has been so far. Just 2 runs. Heyman bowling the last over of the power play. There's some extra fly down after the score. Moves on to the covers. It's a couple of runs. With those couple, the score moves on to 47 now.
The trouble, the score is 47 now. 2 balls remaining. That's good bowling by Hemant. Nice generous flight being offered just to entice the batsman to go for those big shots, and in the process chase or buy the wickets. The last ball of the first over and the last over of the power play. No, that's not a good shot. Has he taken it finally? No, he dropped it. Rajiv survives to fight another day. Perilously close to being caught, juggled it twice and he just gave it away. The score at the end of 6 overs is 48 for 1. Slightly already in match, it is 8 runs per over. And they need exactly 110 runs to win in the next 90 balls. Difference, in fact 84 balls. It's going to be 110 runs in the next 84 balls. Rajiv trying to cut the ball. He is not looking his own self today, but he has still contributed in spite of looking half what he's capable of. This has been a great tournament for him. Even his best is not that bad. Even it's not his best, but it's still better than most of the best performed by others. So he's going along smoothly. And Ronak, he's played and missed a few, but he has played some delightful strokes as well. Ronak's dad is also playing against him, so that's going to be interesting. हाँ वही बोल रहा हूँ वो एक्चुअली वो आधा आधे कोई बात नहीं. So the score is 50 for 1. The score is 50 for 1. We are into the 7th over. Rajiv Shah has played well. Oh, that's nicely cut. This ball is moving ferociously towards point. So 6.4 overs and the score is 51 for 1. 11 for 10 is Ronak. Rajiv Shah is 24 of 25 and Ronak against Darshak. This is going to be interesting. He is a very good bowler against some compact batting of Ronak. The Ronak and Jai, his dad's also playing with him in this match. Oh, that's beautiful bowling. That's the reason I said Darshak can be the match winner in this game. Rajiv is just itching to get back on strike. Look at the smile on his face. The 52-year-old young man, he is just behaving like a 12 or 13-year-old. And he has been sensational in this tournament. This tournament has given a lot of immense pleasure. And it's going to be Ronak versus Darshak now. Last ball of Darshak's second over. It's a beautiful ground, a superb feeling of playing in a stadium. That's a poor ball. That's a wide.
It was just close to being called a no ball. Every time the ball will pitch outside that pitch, it is given as a no ball. But even if it is before the wickets, the score is 52 now, 52 for 1. The last ball of the 7th over. This has been a costly over. In fact, over in which he got just 4 runs, a good over. But this last ball might just prove expensive. The score is 52 now, 52 for 1. Darshak would be the man who would be the difference between winning and losing. If he happens to get a few wickets, he will get his team right back into this contest. Right now, but that's a shot he has not been able to play with, the cut shot. The score at the end of this over is 52 for the loss of 1. Fantastic over, just 4 runs in this over. They need exactly 106 runs in the next 78 balls. The score is 52 now, 52 for 1. It's going to be Heyman who bowled really well. 5 and 4 were the runs scored in the last 2 overs, which is brilliant. So Heyman is bowling his second over. 9 runs in the last 2 overs. That's good bowling. And that's a wide. Rajiv is 24 of 26. Rajiv might hit a few boundaries. He's motoring along. They need somewhere around 80 runs or so in the end of 10 overs, so maybe 27 more, maybe 75 also will do, 22 in the next 17 balls, just to keep them in touch. And cracking cover drive by Rajiv again, that's going to be a couple of runs minimum. They get it easily done. He hits the ball straight and that's helping him. He moves on to 26 of 27. That's good batting by him. Hello. Rajiv might get a half century again. With this single, the score move on to 56 now. शिवाजी बाग में अभी टूर्नामेंट मैच तो नहीं है, बट अपना ये प्रैक्टिस मैच मिल जाएगा. So 56 for 1, last 3 balls of the over remaining. That's a poor ball. That has to be a wide. 57 is what the score is. मतलब दोपहर का है स्लॉट, बट क्या प्रैक्टिस मैच है. एक कौन सा टीम है, आरएस का क्रिकेट टीम, अच्छा टीम है. So the score is नेक्स्ट वीक से देखूंगा, ये वीक थोड़ा मुश्किल है. 58 now, 58 for 1. Rajiv is on 27, Ronak is on 12. अच्छा
Oh, that was a jaffer. That was a wonderful ball. ठीक है, मेरे को आधा घंटा टाइम दो, मैं बताता हूँ। Wonderfully bowled ball, flighted ball. That was a jaffer. That was the best ball he has bowled today. All in his all in second over, in his bowled that very good ball. He completely flummoxed, flabbergasted, and confused the batter. 58 for 1. 12.1 overs remaining. 12.1 overs का खेल शेष. बिल्कुल 100 रन बनाने हैं. गेंदे शेष है 73. और दैट्स बहुत ही अच्छी गेंद घूमी और गेंदबाज को भी घुमाई, लेकिन काफ़ी अच्छी ओवर. इस ओवर में भी उन्होंने 7 रन खर्च किए और जीत के लिए अब देखिए 99 रन चाहिए आने वाली 72 गेंदों में. रन और गेंदों के बीच का अंतर है 27 का. और निशांत ऑफिशियल स्पोर्ट्स स्पॉन्सर है हमारे DYZB. 59 for 1 in 99 to win in 72 balls. राजीव और रौनक को अब हाथ खोलने पड़ेंगे. अगर ये 2 ओवर्स में सिर्फ 5 रन आ गए तो टारगेट काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. 9 और 10 रन प्रति ओवर अगर आप 10 ओवर में आपको करने तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है. तो लगातार अब रन बनाने पड़ेंगे. क्या बेहतरीन कट शॉट है. गेंद जा रही है तेज़ी से पॉइंट की दिशा में. रनिंग थोड़ी सी अग्रेसिव हो सकती है और अब रौनक को हाथ खोलने पड़ेंगे. आखिर की ओवर में जो 3 चौके जड़े थे विकेट कीपर बल्लेबाज ने, वही शायद निर्णायक होंगे क्या, बिकॉज जो रन संख्या 145 46 हो सकती थी वो डायरेक्ट 157 पर जाकर पहुंची है. तो 3 चौके निर्णायक हो सकते हैं. ये फुल टॉस गेंद सीधा खिलाड़ी की दिशा में. अच्छी गेंदबाजी. दर्शक सैल्यूट अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण गेंदबाजी करते हुए. काफ़ी किफ़ायती ये गेंदबाजी है क्योंकि ये थोड़ी अगर गेंदबाजी जिसमें 6 रन प्रति ओवर के नीचे से अगर जाए तो सामने वाली टीम पर दबाव बनता जाएगा. रनों और गेंदों का अंतर वो ज़्यादा बड़ा होता जाएगा और जब वो बड़ा ज़्यादा होता जाएगा तो अपने आप अतिरिक्त दबाव होगा. TVX सुफादी को बल्लेबाजी में अब चौके छक्कों की ज़रूरत है. ये काफ़ी अच्छा कवर ड्राइव. 1 रनों के लिए मात्र. रौनक को अब बड़ी हिट्स लगाने पड़ेंगे. राजीव को एक एंड से प्रयास करना पड़ेगा. 62 पे 1. अभी भी 96 रनों की जरूरत 69 गेंदों में. उल्टे पुल्टे दो रहे हैं नंबर्स 96 और 69. रौनक बड़े हिट के लिए जाएंगे इस गेंद पे. गए तो थे, कनेक्शन हुआ नहीं है. 2 गेंदें शेष इस ओवर में. वाइड की मांग कर रहे लेकिन गेंद उसी पाले में थी तो वाइड थी ही नहीं. बासठ पे 1. 62 for 1. आखिर की 2 गेंदें. ये और एक वाइड होगी. लगातार 2 वाइड ऑप्शन के काफी बाहर. थोड़ी सी दूर रखना चाहते हैं वो बल्लेबाज रौनक से क्योंकि वो जानते हैं रौनक अभी बड़े हिट्स के लिए जाएंगे तो उनसे थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं ताकि हम इस टाइम करें और कैच उनकी लपकी जाए कवर्स या पॉइंट की दिशा में. ये लाइन को एडजस्ट किया लेकिन लेग स्टंप पर लाइन है. गेंद जाएगी सीधा कव कॉर्नर मिड विकेट में. 1 रनों के लिए मात्र. ये लगातार 2 वाइड की वजह से गेंदबाजी में उनके काफी अच्छा शॉट.
मुश्किल हो सकती है यहाँ पर। ओह माय गॉड, बच गए। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 65 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 11 ओवर और 8.45 के रन रेट से रन बनाने हैं अब 93। 66 बॉल्स पे काफी मुश्किल होने वाला है। इस एक रन के साथ स्कोर जहां पहुंचेगा अब 67 पर। 67 फॉर 1। 92 रन बनाने हैं, 92 रन बनाने हैं 65 गेंदों में। 65 गेंदों में 92 रन मतलब लगभग 8.5 का जो औसत लगेगी। ये सूर्य बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है, लेकिन वो फुल टॉस में परिवर्तित कर दिया। अच्छी गेंद को चौके के लिए जड़ दिया, पेस कम कर दिया था। समझदारी वाली गेंदबाजी थी, लेकिन रौनक जबरदस्त केडीसी चौका जड़ते हुए। गेंदबाजी बुरी नहीं थी, उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंद डाली थी, स्लोअर गेंद फेंकी थी, उसका टप्पा भी बिल्कुल योग्य था, लेकिन आगे बढ़कर उन्होंने वो शॉट लगा दिया। देखिए, स्लोअर गेंद फेंकी थी, आगे बढ़कर एक अच्छी गेंद को फुल टॉस में परिवर्तित करके 4 रन अपनी टीम के लिए लाभान्वित कर लिए। तो 70 पे 1। अब जीत के लिए रन चाहिए 88। 88 आने वाली है 64 गेंदों में। तो रन रेट जो 9 के आसपास मंडरा रहा था, वो फिर एक बार आप पहुंचा है 8.5 के करीब। गेंद घूम रहा है। रौनक जिन्होंने 18 रन 18 गेंदों में बनाए हैं। राजीव 32 रन 34 गेंदों में। एक्स्ट्रास की काफ़ी मदद हुई है और ओवर थ्रोज भी गए हैं काफ़ी। ये कुछ खास शॉट नहीं था। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ेगा 71। 71 फॉर 1। एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक्स होगा 10 ओवर के बाद। उसके बाद रणनीति आंकी जाएगी कि हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे हम स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं, उसकी रणनीति बनाई जाएगी। उसकी स्ट्रैटेजी से कहते हैं इंग्लिश में। स्ट्रैटेजिस्ट प्लान ABC के साथ तैयार होनी चाहिए। एक ही दिशा में अगर आप सोचेंगे और वही बात हो गई तो आप मुसीबत में आ सकते हो। तो उन्हें पहले हर किसी का रोल निश्चित करना होगा कि कौन किससे कैसे परिस्थिति में जाके क्या करने वाला है। तो आखिर के 2 गेंदों के बाद वो मीटिंग होगी। शॉट चौका खाने के बावजूद आने वाली गेंदें उन्होंने क्या बेहतरीन हैंडल की है। मात्र 6 रन खर्च किए। तो जो भी 8 और 8.5 से कम होगा उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा। अब ये जो 8.5 रन प्रति ओवर थे वो 8.7 हो गया है। 8.56 फिलहाल। अगर ये बिंदी गेंद जाती है तो 8.7 के औसत से मतलब लगभग 8.9 रन प्रति ओवर के हिसाब से करने पड़ेंगे। देखिए डॉट डिलीवरी और समीकरण क्या है देखिए। 87 रन 60 गेंदों में 8.7 रन की औसत से बनाने हैं 158 रन 87 रनों की दूरी पर वो लक्ष्य।
केडीसी करारा चौका, ये कैच हो सकता, गेंद काफी अच्छी थी, शॉट उससे भी बेहतरीन, केडीसी करारा छक्का, क्या शॉट था ये, देखिए बिल्कुल पास था कैच होने से, लेकिन ये गेंदबाज कारगर साबित हो सकते हैं। भले ही 11 रन 12 रन उन्होंने खर्च कर दिए हैं। जयेंद्र ये मुकाबला देखने लायक होगा, अपने बेटे के विरुद्ध कैसे गेंदबाजी करते हैं। 83 रन हो चुके हैं, जो रन रेट है अभी भी काफी मुश्किल, 75 रन बनाने हैं और गेंदे शेष है मात्र 55 रनों और गेंदों में अंतर 20 का। ये वाइड गेंद, राजीव 41 पे खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी विकेट, ये बहुत ही बड़ी विकेट, राजीव आउट हो गए, रन आउट, लगातार दूसरी मैच में रन आउट हो रहे हैं और 46 की स्कोर पर, 41 ऑफ 39, एक्सेल सुपर विकेट, वाइपर इंडस्ट्रीज का ये गिफ्ट कर दिया। पिछले मैच में भी इसी तरह से आउट हो गए थे, दोनों ही मैचेस में अपनी विकेट उन्होंने गंवा दी है रनआउट के स्वरूप में। ये बहुत गलत निर्णय, अगर आप शॉट मारते हुए आउट हो रहे, क्लीन बोल्ड हो रहे, कैच हो रहे, तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इस तरह से विकेट गंवाना ये नागवार रहेगा सारे टीम प्लेयर्स को। ये बिल्कुल दो खिलाड़ियों के बीच में जाकर गिरी है गेंद। जयेंद्र के 13 रन खर्च हुए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट थी राजीव के, और रन आउट के स्वरूप में आ गए। गौरव काफी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन मेहल आए हैं मेहल खेलने के लिए, मेहल शाह और रौनक 23 रन 23 गेंदों पे 41 रन की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप इनिंग्स खेल के आउट हो गए थे राजीव। एक्स्ट्रास काफ़ी आए हैं इस मैच में, इसीलिए अगर ये रनर बॉल भी खेल रहे तो भी स्कोर उनका अच्छा रहेगा। पैरों में गेंद टकरा के गई, ये देखेंगे यहाँ पे कितने रन होते, कम से कम 2, ये मुश्किल नहीं, 2 रन लेग बाई के स्वरूप मिलेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचेगा अब 87 पर, 87 फॉर 2 जीत के लिए 71 रनों की दूरी है, 71 इन 52।
जीत के लिए 71 रनों की दूरी, 19 का फासला है। ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल सही योग्य निर्णय अंपायर का। 8.35। बेहतरीन गेंद, क्या गेंद थी ये, क्लीन बोल्ड कर दिया, ब्यूटीफुल बॉल, ये अंदर की तरफ आई गेंद, क्या सुपर्ब गेंद थी ये, आम के साथ अंदर आई। उन्होंने जानबूझ की या गेंद अपने आप हो गई, बिकॉज देखिए आप वापस एक बार, ये काफी जबरदस्त गेंद थी। बेहतरीन गेंद, ये अंदर की तरफ आई, खिलाड़ी को के स्टंप्स उद्ध्वस्त कर दिए। दो गेंदें शेष इस ओवर की, 87 पे 3। साढ़े 8 रन प्रति ओवर। अभी रिक्वायर्ड रन रेट हो चुके हैं, आरआरआर रिक्वायर्ड रन रेट 70 और 50। आरआरआर को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला उनके गाने के लिए नाचो नाटो फॉर बेस्ट मोशन सॉन्ग, मतलब मूवीज के सॉन्ग के लिए उसको अवार्ड मिला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड शायद ऑस्कर के लिए भी वो जा सकते हैं, उनके नॉमिनेशंस। 87 for 3 in 11.4। ये खराब गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग लेकिन ये खराब गेंद। बराबर 80 रन चाहिए, आप माफ कीजिए 70 रन चाहिए 50 गेंदों में। 70 रन इन 50 बॉल्स। नए बल्लेबाज प्रिंस दोषी, काफी समझबूझ से खेलने वाले खिलाड़ी है। इसमें गौरव भी है जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। कवर्स की दिशा में मारा हुआ 1 रन के लिए, यहाँ पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जीत के लिए 69 रन और गेंदे शेष है 49। तो 20 का अंतर है रनों और गेंदों की, अगर हम अंतर की बात करेंगे तो। खराब गेंद, ये गेंद जाएगी, रफू चक्कर हो जाएगी, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ेगा 90 पे 3। 12 ओवर की समाप्ति पर जीत के लिए अभी भी बनाने हैं रन 68, गेंदे शेष है 48। दोनों ही टीम को यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी कहा कहूँगा। मैंने कहा था कि ये खिलाड़ी खतरनाक हो सकता है। दर्शक सैल्यूट, और ये जबरदस्त विकेट, एक्सेल विकेट, वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज स्पॉन्सर्ड। एक बार देखिए फिर, ये रिप्ले ऑफ ब्रेक गेंद थी और बहुत महत्वपूर्ण विकेट रौनक की। दोनों ही सेट बल्लेबाज वापसी करते हुए 47 गेंदों में 68 रन, दोनों के लिए मैच बराबरी पर है। जिनहर्ष टिमकेन अडोर कप 2023 में आए हुए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। TYZV बेरिंग्स इंडिया सोल्यूशन, मिस्टर राकेश वाघेला, निशांत वाघेला हमारे फूड स्पॉन्सर्स हैं, हमारे अन्नदाता हैं।
इन 5 दिनों के लिए। ग्राउंड पार्टनर से विकास एंटरप्राइज के मिस्टर विकास गुप्ता, जिनहास इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स है। अपैरल स्पॉन्सर्स जो हमारा जो कपड़े या सारी चीज़ें दी उनके लिए नौकर एंटरप्राइज मिस्टर प्रकाश बिलाकिया और सागर बिलाकिया, थैंक यू सो मच सर। यूट्यूब स्पॉन्सर भावी इम्पैक्स मिस्टर चित्रेश उडानी, एन के ट्रेडिंग शीर्षामी इम्पैक्स मिस्टर अजय अग्रवाल और मीडिया पार्टनर्स QLH की ऑटोमेशन सोल्यूशंस के मेजर संजय शाह, कुंजल शाह और हरीश मेहता, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। CME चंद्रमौली एंटरप्राइज मिस्टर रोहित जटाकिया, एक्सेल वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज, विकेट एंटरप्राइज स्पॉन्सर, 4 स्पॉन्सर केरी कॉर्पोरेशन, किरण वोरा सर, इन सबका तहे दिल से शुक्रिया। फिलहाल मैच की तरफ बढ़ते हैं। 47 गेंदों में 68 रनों और गेंदों के बीच का अंतर 21 का। बेहतरीन गेंदबाजी, ये गेंदबाज इस मैच को जिता सकता है, लेकिन इनके यहाँ आखिरी ओवर है, वो अच्छी बात होगी तूफानी के लिए, बिकॉज ये गेंदबाज नुकसान कर सकता था, उसने नुकसान कर चुके हैं बिकॉज काफ़ी कम रन दिए उन्होंने, तो 6 रन के नीचे अगर वो रन देते हैं तो एक अच्छा स्पेल माना जाता है। तो उन्होंने मात्र 17 रन खर्च किए। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91 पर 91। इस ओवर में अब तक 1 ही रन खर्च किया इस लंबे चौड़े ऑफ ब्रेक बॉलर ने। उनकी गाड़ी थोड़ी सी रुक रुक के चलती है लेकिन पटरी पर आ जाती है। ये गेंदबाजी के लेंगे 2 स्टेप 3 स्टेप कराने में रुकते हैं और गेंद फेंकते हैं। ये मौका है, ये विकेट हो सकता है, लेकिन गेंद जाएगी जहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। 1 रन के लिए पैसिफिक ओशन में एक जगह है जिसे कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल, उस जगह पे बहुत सारे जहाज है, वो बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से गायब हो जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता, तो उसे नो मैंस लैंड कहते हैं। वैसे बस उसी तरह की ये गेंद जाकर गई थी उसी जगह पे नो मैंस लैंड में। 92 पे 4, 92 फॉर 4, एक निर्जन स्थल पे जाके गिरी जिसे कहते हैं हम हिंदी में। निर्जन मतलब कोई जन नहीं, कोई आदमी नहीं वहाँ पर। ये अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छी गेंद, क्या बेहतरीन मैच विनिंग ओवर डाल रहे हैं ये, बिकॉज एक ओवर से ही मैच का पलड़ा बदली हो सकता है। फिलहाल जो टीम तूफानी आराम से जीत की और अग्रसर लग रही थी, अब उनकी मुश्किलें बढ़ती आएंगी क्योंकि 8 से 8.5 से 9 पर वो उनका आरआरआर मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिक्वायर्ड रन रेट की बात कर रहा हूँ, जो 9 रन प्रति ओवर एग्जैक्टली हो चुका है। जब आप कहते हैं कि हर 2 गेंदों पे आपको 3 रन बनाने, मतलब हर गेंद पे आपको 1.5 रन बनाना है, तब 9 का औसत हो जाता है। मतलब 2 गेंदों पे 3 रन आपको बनाना है। ये काफी बेहतरीन शॉट है। यस, ये केडीसी इंपॉर्टेंट चौका है। ये इस टीम को रिक्वायर्ड रन रेट का ख्याल रख लेगी। ये शॉट पहला खराब शॉट आखिरी गेंद पर आता हुआ। उनके फिगर्स देखिए, 1 विकेट 23 रन 4 ओवर, 1 2 3 4। केडीसी कॉर्पोरेशन सुपर कड़क चौका। गौरव काफी इंपॉर्टेंट होंगे। गौरव अपने में रन बनाने हैं 62। सो 62 रन मतलब लगभग 9 रन प्रति ओवर, 8.36 यहाँ पर दिखा रहे। तो बेहतरीन गेंद थी, ये बेहतरीन गेंद थी। जयेंद्र की गेंदबाजी आपको ये मैच जिता सकती है। भले ही 13 रन उन्होंने खर्च किए हों, लेकिन उनकी गेंदबाजी काफ़ी सटीक है। उचित लाइन लेंथ पर उनकी गेंद पड़ती है। तो जयेंद्र और रौनक पिता पुत्र की ये जोड़ी एक दूसरे के सामने। फिलहाल तो जयेंद्र थोड़े से बैकफुट पर है, लेकिन उनकी गेंदबाजी में विकेट निकल सकते, चमत्कार हो सकते हैं। ये मौका बना है, एक ही रन यहाँ पे साहिल है, ये मौका बन सकता है फिर एक बार रन आउट का, लेकिन बेहतरीन रन विकेट प्रिंस द्वारा। 99 पे 4।
गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार जयेंद्र, 63 इयर्स के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक। योगेश भाई को हमने देखा था, वो भी 60 के आसपास होंगे। ये सीनियर खिलाड़ी, इनमें जोश देखिए, इनमें कमिटमेंट देखिए, बेहतरीन गेंद है ये। फिर एक बार साहिल की दिशा में, इनफैक्ट वत्सल की दिशा में गेंदबाजी काफ़ी बेहतरीन हो रही है ये। 100 रन पूरे और 58 रन बनाने हैं आने वाले 39 गेंदों में, और इतना आसान नहीं होने वाला ये, इतने आसान नहीं होंगे आने वाले 58 रन, क्योंकि गेंदबाजी देखिए अच्छी होगी। शॉट काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन एक ही रन होगा शायद वहाँ पर, नहीं, थोड़े से धीमे। 2 रनों के साथ 102 पर जो स्कोर जा पहुँचेगा। 6 रन आ चुके हैं, हर ओवर में 9 रन की आवश्यकता है, तो उतना अच्छा ओवर नहीं गया। मैं अपेक्षा कर रहा था कि शायद वो 1-2 डॉट डिलीवरीज निकाल लेंगे, उनकी टीम भी शायद अपेक्षा कर, बिकॉज अच्छे गेंदबाज है, लेकिन प्रिंस काफ़ी समझदारी से, सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए। ये काफ़ी बेहतरीन गेंद है, इसलिए मैंने कहा ये गेंदबाज खतरनाक है। इसे कहते हैं अनुभव। सबसे अच्छा खिलाड़ियों में से एक, उसको बिल्कुल धारा तीर्थ कर दिया। एक्सेल, सुपर विकेट, सुपर प्लेयर के द्वारा। पावर ड्राइव, वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज, प्रतीक्षा, बाप बाप होता है। रौनक देखो, पिताजी अभी भी लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जो आपने नहीं कर दिया आपके पिता ने किया है। विकेट, पहले ओवर में रनआउट के स्वरूप में विकेट आया था, इस ओवर में क्लीन बोल्ड। करती हुई उनकी टीम। सो स्कोर अब जा पहुंचा है 102 पे। पहली विकेट जयेंद्र के, और शायद वो 1-2 और पिक करेंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर, ये मिहिर इनकी टीम का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक वो आए हैं विकेट पे। काफ़ी कॉम्पैक्ट प्लेयर है, काफ़ी ज़बरदस्त सीम बॉलर है, और बैटिंग भी इनकी लाजवाब है। थोड़ी नीचे आए क्रम में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैच है, पोजीशन इनके लिए ज़रूरी है। 103, 5 विकेट के नुकसान पे जीत के लिए 55 रनों की ज़रूरत आने वाली 6 ओवर्स में। 9 रन प्रति ओवर, बस वो हिसाब उन्हें अपने दिमाग में रखना होगा। चाय कहाँ होगा? समोसा होगा। सारे टीम मेंबर्स अब राह देख रहे होंगे कि कौन सी टीम हमारे साथ। देखिए, पिछले साल की जो रनर अप टीम थी एचई वॉरियर्स, उनको पराजित कर कर डायनामाइट धमाकेदार तरीके से अपने नाम की तरह ही उन्होंने अपनी जगह निश्चित कर ली है अंतिम मैच के लिए, फिनाले के लिए, ग्रैंड फिनाले जो 18 तारीख को सरताज बनेगा। 18 तारीख विराट कोहली का जन्मदिन भी है, और इस टूर्नामेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन भी, क्योंकि इस टीम का, इस टूर्नामेंट का चैंपियन हम यहाँ पर निश्चित करेंगे। लेकिन उसके पहले ये दोनों टीम के बीच में लड़ाई चल रही है, खींचातानी चल रही है। तूफानी TVX जो पिछले साल की चैंपियन टीम थी, तो वापस जो उनका जो युद्ध होने वाला था, रीमैच होने वाला था, वो नहीं होने वाला। एचई 2 बार जीत चुकी थी, फिर फाइनल में पहुंच के हार गए थे। इस बार वो सेमीफाइनल में नॉकआउट हो गए, लेकिन इस बार TVX तूफानी जो पिछले साल की चैंपियन टीम है, फिर एक बार फाइनल में जाएगी कि नहीं। ये बेहतरीन गेंद बाहर की तरफ निकली। स्मिथ थोड़े से महंगे साबित हुए थे, तो स्मिथ से गेंदबाजी कराने का उनका ये इरादा। देखो, दर्शक के 2 ओवर्स खत्म हो गए, जयेंद्र के 2 ओवर्स बाकी है, वत्सल के 2 ओवर्स बाकी होंगे, और हेमंत ने भी शायद अपने काफ़ी सारे ओवर्स फेंक चुके हैं। तो ये दुविधा होगी अब, ये स्मिथ के ओवर्स उनको अच्छी तरह से स्मिथ ने गेंदबाजी करनी चाहिए। स्मिथ ने कम से कम और 2 ओवर्स तो स्मिथ फेंकेंगे, ये और एक ओवर, 3 ओवर तो उनको कम से कम डालनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे गेंदबाजी करते हैं। ये शॉट शायद लेग स्टंप की दिशा में गेंद निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे दूसरी रन की इधर मांग की है, और रन आउट होते होते बच गए। क्लीन कलेक्शन होता तो शायद बहुत बड़ी विकेट जाती।
105 पे 5, 53 रनों की दूरी है जीत के बीच में। 34 गेंदे माफ कीजिए और 53 रन। 19 का फासला है अभी भी। ये फासला लगातार उन्हें कम करना पड़ेगा। 20 गेंदों में 30 रन या फिर बाद में 15 गेंदों में 25 रन, उधर तक तो ये मैच लानी पड़ेगी उनको। शॉट बड़ा हिट लगाने के प्रयास में टाइमिंग चूकता है। जब आप सोच के बड़े हिट लगाने जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है। आप गेंद के लिए रुको, आराम से खेलो, और आपको हर ओवर में एक चौका मारना है, बस उतना आप याद रखो तो आपको काम बन जाएगा। तो मतलब 5 चौकों की ये मैच है, और 5 चौके तो आराम से मार सकते हैं 33 गेंदों में। मतलब हर 7 गेंद के बाद आपको एक चौका जड़ना है, तो वो उतना मुश्किल है नहीं। हर गेंद पर आपको छक्का जड़ने की जरूरत नहीं। लगातार शायद एक चौका छक्का भी 2 गेंदों पे आ सकता है, एक्स्ट्रास भी आपको मिलेंगे, तो वो प्रयास करना ज़रूरी है। फिर एक बार स्मिथ कमबैक करते हुए मिहिर जैसे अच्छे बल्लेबाज को बांध कर रखने का काम किया स्मिथ दोषी ने। विप्सा वॉरियर्स, ये दोषियों की टीम निर्दोष काम कर रही है। दोषी उनका सरनेम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या परफॉर्मेंस है। विप्सा, विपुल, प्रदीप, विरल, प्रदीप और संजय काफ़ी खुश होंगे। विपुल दोषी भी खुश होंगे क्योंकि वत्सल की टीम खेल रही है। ये स्लोवर डिलीवरी। फिर एक बार लगातार 3 बिंदी गेंदे। अब प्रेशर बढ़ेगा मिहिर पे। अब मिहिर को अपने बड़े शॉट्स के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच इनिंग ओवर ही डाल रहे लगभग, जैसा दर्शक ने ओवर डाला था आखिर की गेंद तक, आखिरी गेंद में चौका गया। तो ये ओवर बिल्कुल उसी तरह जो 9 की रिक्वायर्ड रन रेट थी आरआरआर, वो पहुंच गई है अब 10.5 पर, 10.26, 10.15 पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, और ये कवर्स की दिशा में मारा हुआ इनसाइड आउट शॉट। गेंद जाएगी 2 रनों के लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 107 पर। जीत 51 रन चाहिए आने वाली 5 ओवर्स में। 10.2 रन प्रति ओवर। इस ओवर में आगे एक शॉट मतलब 1 ही रन मिलेगा। 106 मतलब 52 रन बनाने हैं। तो 10.4 की औसत से बनाने पड़ेंगे आप। यस, बैक लाइव। ये थोड़ी सी यहाँ पे विचार विमर्श इसलिए हो रहा है क्योंकि मैच इस मोड़ पे आके रुक गई है कि हर एक ओवर यहाँ पे निर्णायक साबित हो सकता है, हर एक गेंद यहाँ पे निर्णायक साबित हो सकती है, हर एक विकेट यहाँ पर अंतिम झटका देके जा सकता है, हर एक चौका छक्का आपको जीत के करीब ला सकता है। तो एवरी बॉल इज एन इवेंट। जहीर खान जब इंग्लैंड में खेल कर आए थे आईपीएल के, उनका जो लास्ट सीजन था, तब उनमें ये विशेषता आई थी कि वो हर गेंद पर फील्डिंग चेंज करते थे। और जहीर खान ने जो लास्ट ओवर्स की, अगर उनकी 18, 19 या 20वीं ओवर होती थी, तो हर गेंद पे वो 4-5 फील्डर्स को यहाँ से वहाँ नचाते थे, और हर गेंद जैसा उनको गेंद फेंकना वैसे वो अपनी फील्डिंग लगाते थे। जब खिलाड़ी सीनियर हो जाता है, पुराना हो जाता है, बड़ा प्लेयर बन जाता है, तो अपनी फील्डिंग अपने हिसाब से लगाता है। अभी भी आपने देखा जब अर्शदीप सिंह खेलेगा तो रोहित शर्मा अपने हिसाब से गेंदबाजी करवाता है, फील्डिंग लगवाता है, और ये कई बार अच्छा नहीं होता। रनिंग बिटवीन द विकेट के दोनों के बीच में रिस्क लेते हैं। रिस्क है तो इश्क है, और अगर आप रिस्क लेंगे तो ही आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अंग्रेजी में कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। 108 पे 5, लेकिन मुझे लगता है कि जयेंद्र इस मैच के मैच विनर होने वाले। 22 रन खर्च किए हैं उन्होंने, लेकिन अभी और 1-2 विकेट निकाल सकते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी। ये संग्राम है, ये संघर्ष है, ये द्वंद्व है, ये युद्ध है, ये लड़ाई है, और ये जद्दोजहद है अंतिम मैच में जाने के लिए। और सामने है सबसे पुराने योद्धा इस टीम के, कटप्पा गेंदबाज जयेंद्र। अमरेंद्र बाहुबली तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जयेंद्र है, और ये जयेंद्र ने और 1 विकेट। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बंदा मैच विनर बन सकता है। मिहिर की सबसे बड़ी विकेट, मिहिर ने 4 ही रन बनाए, लेकिन वो एक मैच विनर हो सकता था इस मैच का। मिहिर बहुत बड़ा प्लेयर है, उससे चलता किया है जयेंद्र बाहुबली ने। केडी नहीं, माफ कीजिए, एक्सेल विकेट पावर्ड बाय वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज। मिस्टर प्रतीक शाह और राहुल शाह बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी से प्रभावित हुए होंगे।
जयेंद्र बाहुबली। देखिए, युद्ध की भूमि पर भी महाभारत में सबसे जबरदस्त और सबसे पुराने योद्धा थे भीष्म पितामह। तो ये इस टीम की भीष्म पितामह है। लेकिन जैसे महाभारत में हुआ था, वो अधर्म की तरफ नहीं, ये तो मित्रों की लड़ाई है। ये भीष्म पितामह बोल दो, इनको कटप्पा बोल दो, या शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जैसे सेनानी होते थे सीनियर, उनकी तरह ये एक सेनानी है, अपनी टीम के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जयेंद्र, ओ ये बिल्कुल क्लोज थी, लेग स्टंप से वाइड घोषित की गई है। उचित निर्णय। उनके आंकड़े देखो लगातार बदलते रहेंगे। 24 रन उन्होंने पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे, उसके बाद 9 गेंदों में उन्होंने मात्र 11 रन दिए। और बहुत बड़ी बात यह है कि उनके पहले ओवर में रन आउट आया, दूसरे ओवर में विकेट आया, तीसरे ओवर में, हर ओवर में उनके विकेट आया है। तीनों ओवर में एक रन आउट के स्वरूप में आया था, लेकिन 2 विकेट उनके खाते पर होंगे, और ये शायद और एक भी आ सकता है। बेहतरीन गेंदबाजी, फ्लाइट दे रहे, ललचा रहे, लॉलीपॉप कैंडी फेंक रहे हैं सामने, उन्हें आमंत्रित कर रहे बड़े शॉट्स के लिए। लेकिन वो देखिए, गेंद बिल्कुल विकेट से सटके और काफ़ी स्लो पेस से डाला जाता है, उसको आपको पूरी ताकत लगा के झोंकना पड़ता है शॉट को, और वहीं पे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। 111 पे 6, अब ये भी 26 गेंदों का खेल शेष। बेहतरीन शॉट है ये, गेंद जाएगी मिड विकेट का कॉर्नर के रीजन में। यहाँ पे 2 रन होने चाहिए, विकेट के ऊपर थ्रो आ रहा है, लेकिन 2 रन आसानी से पूरे हो रहे हैं। गौरव है, तब तक मैच है, गौरव है, देवांग, इन दोनों को अब भरपूर प्रयास करने पड़ेंगे। 113 पे 6, 45 रन 25 गेंदों में, 45 रन इन 25 बॉल्स, लगभग 11 की औसत से अब रन बनाने हैं। स्ट्राइक पे होंगे गौरव बखाई। गौरव खेल गए तो ये मैच जीत जाएंगे। इस गेंद पे चौका छक्का आना जरूरी है, या शायद जयेंद्र और एक विकेट भी पिकअप कर ले। काफी अच्छा शॉट, लेकिन मात्र 1 रन मिलेगा यहाँ पर। इस 1 रन के साथ 114 पे 6, जीत के लिए अभी रन बनाए 44, गेंद शेष है 24, 11 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने हैं आखिर के 4 ओवर्स में। So back live we are 114 पे 6, 44 रन। ये मैच बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अब इस मैच में थोड़ा सा रोमांच आने के लिए इस ओवर में कम से कम 12 से 14 रन आने चाहिए। अगर गौरव को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक मिलती है तो शायद इस मैच में हो, लेकिन अगर आप, हाँ, ये वत्सल का चयन किया है, वत्सल इस मैच को जिता या हरा सकता है। वत्सल अगर ज़्यादा उत्साहित हो जाकर विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालने के मूड में अगर आ जाते हैं और उसमें दिशा भटक जाते हैं, 5 वाइड्स चले जाते हैं या कोई एजेस फ्लाई हो जाते हैं और 12-13 से ऊपर रन खर्च कर देते हैं, देखो ये अच्छा निर्णय है। उन्होंने क्या किया है, अपना जो थर्ड मैन है, लॉन्ग लेग, फाइन लेग है, उसको लॉन्ग लेग पे भेज दिया है, लेकिन वो थोड़ा स्क्वायर करना उन्होंने रखा, उसको सीधा रखना ज़रूरी है, कि जो एज निकल के जाएगा। हाँ देखो, वत्सल स्मार्टली, अगर आपको उस कैमरा में दिखाए दूसरे,
सेकंड स्विच। वत्सल क्या कह रहे, देखो वत्सल उसे उसे प्लेस कर रहे ठीक से, उनको स्क्वायर सीधा कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट खिलाड़ी की निशानी है। वत्सल ने जो फाइन लेग है उसको सीधा कर लिया, वो ज़्यादा स्क्वायर, क्योंकि एज जो फ्लाई होगा उसको रोकना है। ये क्या बेहतरीन गेंदबाजी, अब ये स्मार्ट गेंदबाजी कर रहा है ये बंदा। पिछले मैच में काफ़ी तेज़ी से डालने का प्रयास कर रहा था, अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी गेंद को अच्छी लेंथ पे डालने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी लाइन पे। अब उनको हीरो नहीं बनना है, कुछ अधिक से नहीं करना है, उन्हें बस 6 अच्छी गेंदें डालनी है जिनमें वो चौका ना खाए। अगर चौका नहीं खाते तो 6-7 रन के ऊपर ये गेंदबाज देगा नहीं, और हर गेंद पर रन निकालने की इच्छा तो होगी अब सामने वाली टीम की। उसमें अगर एक चौका लग जाता है तो अपने आप ये 10 रन का ओवर बन जाता है। अगर 10 से ऊपर चले गए तो सामने वाली टीम को एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा इस मैच को जीतने का। क्या बेहतरीन गेंदबाजी है, जबरदस्त यॉर्कर पद्धति की गेंदबाजी। अब तो पुटिंग द बॉडी ऑन द लाइन, वैसे पैरों से गेंद रुका रहे हैं, जो शरीर का जो भाग है उसका इस्तेमाल करके वो गेंद को रुकाने का प्रयास हो रहा है। इस ओवर में अगर 12 से 13 रन आ जाए तो मज़ा आ जाएगा इस मैच में। हमें तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीते, हमें तो बस भरपूर मनोरंजन चाहिए। टीवी तूफानी जीते या विप्सा वॉरियर्स जीते। मैच अखरी गेंद, शॉट कड़क है, प्रहार कड़क है, लेकिन क्षेत्र रक्षक वहां पे जयेंद्र बाहुबली। और देखिए 63 ईयर ओल्ड बंदे हैं, पैर से नहीं रुकाने के, वो झुके थे उस गेंद को रुकने के लिए। तो सीखो उनसे कि आदमी जब कमिटमेंट देता है तो लगातार जबर, और 30, 35, 40 साल के लड़के हैं जो पैर से गेंदें रुका रहे, तो वो ठीक नहीं है। 35, 40 के लोग आपको भी गेंदें रुकानी पड़ेंगी। ये मौका है इनसाइड आउट, 1 रन पूरा, यहां पर 2 रनों की दरकार नहीं होगी। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 118 पर, 118 पे 6, 40 रन इन 20 बॉल्स। अब ये मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, 12 पर जब रन रेट पहुंच जाता है तो मुश्किलें बढ़ जाती है। ये अंतर लगातार कम होना जरूरी था, जो 20 का अंतर है वो निरंतरता से उसी पर रुका है, वो धीरे धीरे कम होना चाहिए था। बेहतरीन गेंद विकेट कीपर से, गौरव वहां पे खड़े हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये अब ये मुश्किल होती जा रही है। इस ओवर में कम से कम 12-13 रन आना जरूरी था। उसके विपरीत ये 4 रन की ओवर आई है, जिससे चीजें और मुश्किल बन गई है। अगर 12-13 रन आ जाते तो 10 के नीचे आ जाता और रन रेट अब तो वो लगभग 13 के आसपास पहुंच गया है, 12.63, बराबर 13 रन प्रति ओवर अब जरूरत होगी। 18 बॉल्स 39 रन, 13 का अगर टेबल आपको आप स्कूल में याद किए होंगे, मैं थोड़ा सा वीक था, अभी भी हूँ। 13 3 39, सो रिक्वायर्ड रन रेट है 13 रन पर ओवर फ्रॉम हियर ऑन। हाँ वो एडिशन 1 चल रहा है, ये एडिशन 2 हो जाएगा। एमसी बाई सेम ही 35 है। सो 100 एंड क्या है कि जर्सी 119 for 6। में फाइनल के पार्टी में लास्ट जो टॉप 4 टीम्स रहेगा ना, वो फाइनल में रहेगी, फाइनल यहाँ पे देगी। सो 119 for 6। 17 गेंदे और रन बनाने हैं अभी भी 39। बेहतरीन शॉट है डाउन द ग्राउंड, काफी तेजी से गेंद निकल के जा रही है। स्मिथ जो पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, क्या जबरदस्त ओवर फेंका, उसके बाद उन्होंने सिर्फ 3 रन का, फिर एक बार उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है कि वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर डालकर इस मैच को क्लोज कर दे। अगर मैं कप्तान होता तो मैं शायद किसी और गेंदबाज को भी आमंत्रित करता और उसके बाद वत्सल को देता, लेकिन स्मिथ पर भरोसा दर्शाया गया है। ये गेंद ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर क्लोज थी, लेकिन
ये उचित निर्णय, ये चीज़ें उनको अवॉइड करनी होगी विप्सा वॉरियर्स को। ये 2 वाइड के साथ आशाएं फिर जागृत होंगी और गौरव और देवांग, गौरव को खासकर अब बैट अपना स्विंग करना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं उस धारणा से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। इस आने वाली जो 4 गेंदें हैं उसमें कम से कम 10 रन निकालने का प्रयास करना होगा। इसमें इसके लिए 1 छक्का 1 चौका अगर आ गया 2 चौके आ गए तो भी बात बन जाएगी। इनसाइड आउट मारने का प्रयास, जयेंद्र वहां पर 1 रन पूरा। अब ये मुश्किलें बनती जा रही है। 1 2 3 4 6 15 गेंदों में ये बाकी रन बनाने हैं अब 35 माफ कीजिए। नहीं वो नहीं, अभी पैटर्न चेंज किया। 14 गेंदों में 35 रन। हाँ, उससे अच्छा बेटर है। मैं आपको भेजता हूँ पूरा लिस्ट और जो भी स्मिथ अपनी टीम के लिए मैच विनिंग गेंदबाजी कर रहे हैं। दिवांग बैट और बॉल का संपर्क नहीं, थोड़ी सी दूर थी गेंद। 14 बॉल्स 35 रन टू विन, 15 रन प्रति ओवर बन चुके हैं। मैच का ना, हाँ मैच का कंफर्म है, मैं भेजता हूँ, शेड्यूल भेजता 15 रन प्रति ओवर मतलब 2.5 रन। 2 गेंदों में आपको 5 रनों की जरूरत है, हर 2 गेंदों में 5। ये इनसाइड आउट मारने का प्रयास, गेंद जाएगी सर के ऊपर से, दिशा जाएगी 4 रनों की दिशा में। 2 रन पूरे यहाँ पर। 2 रनों के साथ स्कोर जहाँ पहुंचेगा अब 125 पर। 33 नीडेड इन 13 बॉल्स। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी को लास्ट ओवर समझ के खेलना चाहिए। अगली ओवर में ऐसा सोचना है कि हमें इसमें 30-35 रन बनाने, उस हिसाब से हर गेंद पर प्रहार करना जरूरी है। अगर ये मैच जीतना है तो आपको कम से कम 3 छक्के अब जड़ने पड़ेंगे या 4 चौके जड़ने पड़ेंगे, तब आप इस मैच में वापस आ सकते हो। आने वाली 13 गेंदों में 3 बड़े छक्कों की जरूरत है। बारह गेंदों में अब रन बनाने हैं 33। 16.5 रन प्रति ओवर। और इसके बाद वत्सल का ओवर है, मतलब आपकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाती है। एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, उस तरह की उनकी अब परिस्थिति आ चुकी है। लेकिन गौरव, अभी भी मुझे लग रहा है कि गौरव इस मैच के हीरो बन सकते हैं। अगर इस टीम को कोई जिता सकता है यहाँ से तो गौरव। गंभीर की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज जो जयेंद्र ने चटकाई, तो इस बार तो पिता तो भारी होता हुआ दिख रहा है रौनक के। रौनक का भी यहाँ पर मौजूदगी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती थी। रन बनाने हैं अभी भी, और राजीव ने जो विकेट दे दिया रनआउट के स्वरूप में वो काफ़ी गलत था। 28 माफ़ कीजिए 33 रन 12 गेंदों में। जयेंद्र देखिए बिल्कुल हाथ से गेंद उठा रहे, 63 उम्र है और अभी भी वो बेंड हो सकते हैं प्रॉपरली। बाकियों की तरह नहीं कि आप पैर से गेंद रुका दी फिर उठा ली और फिर फेंक दी, प्रॉपरली दोनों हाथों में गेंद को रुका रहे। तो ये पैशन है खेल का, और अभी भी उनकी सेहत उतनी ही लाजवाब है। हेड्स ऑफ टू यू सर। 126 पे 6। ये फ़ायदा होता है अच्छे वेजिटेरियन खाने का। ये अपील है। और गौरव, सबसे बड़ी आस उनकी वो अब निकल चुकी है। रनआउट के स्वरूप में थोड़े से धीमे हो चुके थे, जिसका पूरा लाभ उठाया वत्सल दोषी ने। ये एक्सेल विकेट पावर्ड बाय वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज और एक जबरदस्त विकेट। सो बैक लाइव हियर, और जीत के लिए अब जो गुंजाइश है, ये बल्लेबाज थोड़ा सा नीचे आ रहा है मेरे हिसाब से। इसको देवांग और गौरव के पहले आ सकते थे। रितेश ये काफ़ी पॉजिटिव खिलाड़ी है और काफ़ी तेज़ी से भागते हैं, तो जब आपको 9 रन 10 रन प्रति ओवर चाहिए थे तब ये बल्लेबाज आ सकता था, क्योंकि ये भागते बहुत अच्छा है और सिंगल डबल अच्छा निकालते। देखा चौका तो बीच में इनका भी लग सकता है।
तो इस बल्लेबाज का इतना नीचे आना शायद से गलत निर्णय था। तो 10 गेंदें बाकी हैं और बहुत ज्यादा रन 32 रन बनाने हैं। अच्छा कितना बेचना था बोलो मैं बेचता हूँ। लगभग 20 रन प्रति ओवर। किसको करूँ मैं? चलेगा हाँ ठीक है चलो। एक रन के साथ 9 गेंदे। देखो पिछले साल के चैंपियन और पिछले साल के रनर अप दोनों ही इस टूर्नामेंट से बाहर होते नजर दिखाई दे रहे हैं। जो रनर अप टीम थी वो बाहर जा रही है और अगर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बल्लेबाजी नहीं होती है तो यहाँ से शायद लास्ट ईयर की चैंपियन टीम, डिफेंडिंग चैंपियन टीम भी इस प्रतियोगिता से बाहर चली जाएगी। 1 रन मात्र। इस 1 रन के साथ रिक्वायर्ड रन रेट देखिए अब 21 के आगे चले जाएगा। 8 गेंदे और 30 रन बनाने हैं यहाँ से, 22.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से। मतलब लगभग आपको 2 गेंदों के पीछे 5.5-6 रन बनाने हैं। हर गेंद पर चौका छक्का आना जरूरी है अब। और रितेश मंत्री बैट अपनी स्विंग कर रहे हैं। 1 रन के साथ और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब रिक्वायर्ड रन रेट जो 22.5 का था वो और चले जाएगा। 7 गेंदों में 28 रन मतलब 24 का रन रेट हो गया है। और वो शायद अंतिम ओवर में आते आते 26-27 तक का भी पहुंच जाएगा। 129 पे 7 मैच बहुत ही बेहतरीन जा रहा था 2x तूफानी के लिए। अचानक से वो विकेट्स राजीव और बाकी खिलाड़ियों का और उसके बाद सारी चीज़ें बदल चुकी है। तो 130-28 रन चाहिए अब आखिर के 6 गेंदों में, मतलब 28 रन प्रति ओवर। विप्सा वॉरियर्स, विरल, प्रदीप और संजय काफ़ी खुश होंगे अपनी इस टीम के साथ। विप्सा वॉरियर्स, विप्सा बैरिंग्स, मनसुख जोशी, विरल जोशी, प्रदीप जोशी और संजय जोशी काफ़ी खुश होंगे अपनी टीम। पिता-पुत्र की लड़ाई में पराजय की ओर बढ़ती हुई और टीम जो सेलिब्रेट करेगी वो जयेंद्र की टीम होगी, विप्सा। अगर चीज़ें जैसे अपेक्षित है वैसी गई तो, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। शायद कुछ 5 वाइड्स आ जाए कहीं से मन और कुछ चौके लग जाए, 1-2 नो बॉल्स हो जाए थोड़े से। आखिरी 6 स्मिथ जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी पहले ओवर में 12-13 रन खर्च करने के बाद क्या कमबैक किया इस गेंदबाज ने, स्मिथ ने, और मैच विनिंग गेंदबाजी की है। 3 ओवर में उन्होंने अगले 2 ओवर में मात्र 11 रन खर्च करके अपनी टीम को एक ज़बरदस्त पोजीशन पे लाकर रख दिया है। आखिर की 6 गेंदे रन बनाने हैं 28। सत्ताईस रनों की दूरी, 5 गेंदों में 27 रन। स्मिथ दोषी क्या गेंदबाजी की है। 32 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया, मतलब अभी हर गेंद पर आपको छक्का जड़ना पड़ेगा। छब्बीस रनों की दरकार, 4 गेंदे और 26 रन। अब तो लगभग नामुमकिन सा हो गया ये टारगेट। अब तो पिछले साल की रनर अप टीम एचई वॉरियर्स टूर्नामेंट से बाहर सेमीफाइनल में पराजित हो गई डीपीएक्स डायनामाइट की टीम के सामने। और ये टीम पिछले साल की चैंपियन टीम तूफानी, क्या शॉट मारा है देखिए, ज़बरदस्त। इसलिए रितेश ऊपर आना ज़रूरी था, देवांश, रुपेश। अब 3 गेंदों में 25 रन। विप्सा वॉरियर्स, मनसुख भाई, विरल भाई, प्रदीप भाई और संजय भाई की टीम। और ये क्लीन बोल्ड, रितेश को वापस भेज दिया है। 2 गेंदे शेष। विप्सा वॉरियर जीत की ओर अग्रसर होते हुए काफ़ी एक तरफा ये मुकाबला
आखिर के ओवर्स में पासा पलट गया। एक टीम जिसने 140 रन चेस कर दिए और जो आखिर के जो 3 चौके लड़े हैं ना, वही निर्णायक साबित हो रहे हैं। सुनील होलानी है अगले बल्लेबाज। ये काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने, सुनील ने, लेकिन आखिर के ओवर में जो चौके लगे उसके बाद चीज़ें बदल गई। प्रिंस के खिलाफ शायद वो चौके आए थे। 133 फॉर 8, 2 गेंदे शेष, 25 रनों की दूरी और विप्सा वॉरियर्स जश्न मनाएंगे। वत्सल की टीम फिर एक बार फाइनल्स में होगी। बेहतरीन स्टॉप विकेट कीपर द्वारा भी। तो जिनहर्ष टिमकेन अडोर 2023 के फाइनल्स में लगभग पहुंच चुके हैं। विप्सा वॉरियर्स, डीपीएक्स डायनामाइट्स जो टीम है उनके खिलाफ भिड़ेंगे। ये केशरी रंग की टीम विप्सा वॉरियर्स, और सेलिब्रेशन हो सकता है। अब 24 रन से जीत हासिल की है विप्सा वॉरियर्स ने और जश्न होगा, भरपूर होगा। अंतिम मैच में इन्होंने अपना प्रवेश निश्चित कर दिया है सेमीफाइनल्स में, एक बहुत ही तगड़ी टीम को पराजित करके। विपुल संघवी, वत्सल दोषी, जयेंद्र जी, उसी के साथ स्मिथ दोषी, इनकी टीम ने फाइनल में अपना दर्शक की गेंदबाजी भी याद रहेगी। काफ़ी एक ज़बरदस्त कैच लिया गया था कवर्स में, सबसे बेहतरीन कैच वो दिख रहा है आपके स्क्रीन में जो खिलाड़ी, हेमंत की भी गेंदबाजी अच्छी हुई थी। और सबसे बड़ा खिलाड़ी इस मैच का साहिल पारेख, वही होंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी।